everyone here, I extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Mr. Bhupendra Kuldeep Sir, Registrar of Hemchand Yadav University Group. Your presence today honors us and adds immense value to this gathering. We look forward to your insights and guidance as we embark on this journey of knowledge and inspiration. Thank you for joining us, sir. A very dynamic and a very intelligent guest of honor, Dr. Prashant Srivastava, sir, Assistant Professor, Head of Geology Department, BYT College, is also with us. Thank you, sir, for taking the time to join us today and most welcome, sir. I also welcome our respected chairperson of Prism School of Education, Mr. Rupesh Kumar Gupta, sir, our Director Ma'am of Prism School of Education, Mrs. Kathy Sahu Ma'am, Director Sir of Prism School of Education, Mr. Asim Sahu, sir, GM of PSP, Mrs. Paramita Manthan ma'am, and our Principal of Prism School of Education, Dr. Anjana Sharad ma'am. Welcome, sir and ma'am. With this, I would also like to welcome our control guest, Dr. Meena Pandey ma'am, Dr. Ishwar Singh sir, Dr. Chaya Sonpitri ma'am, Usha Singh ma'am. Thank you ma'am and sir for joining us today and making this event more successful and knowledgeable. हम बहुत आभारी हैं आपके, आप आए इस इवेंट में हमारे कॉलेज का मान रखने आपके. As we continue with the program, let's take a moment to seek the blessing of Goddess Saraswati, the deity of knowledge, wisdom, and the arts. For that, I would like to invite our chief guest, Mr. Kuldeep sir, on stage to light the lamp. Please, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Success is not defined by the destination, but by the journey we undertake with dedication, learning, and resilience. As we begin today, let us remember that every step we take brings us close to growth and understanding. May this event be filled with meaningful exchanges and
moments for all of us. After this, I would like to say a few things about today's national seminar. The topic of today's national seminar is Quality Enhancement in Higher Educational Institutes, a NAAC Perspective. Quality enhancement in higher education in India needs an overhauling of the whole system. Though India has one of the largest higher education system in the world, quality enhancement is the process of improvement. It has two strands. First, it is the enhancement of individual learners, improvement of his attributes, knowledge, ability, skills, capacity, and thereby his potentials. Before we move forward, let us take a moment to introduce our esteemed chief guest, Mr. Bhupendra Kuldeep Sir. Sir has achieved significant milestones and his dedication and contributions have left an impactful legacy. To provide you with glimpse of his remarkable journey and accomplishment, I will now read his profile. Mr. Bhupendra Kuldeep Sir is a delegate professional currently serving as the registrar of Premchand Yadav University in Chhattisgarh. With a strong background in various fields, Bhupendra Sir has held several positions including Assistant Commissioner Provident Fund, Scientific Officer, Food Security Officer, Assistant Auditor, Assistant Veterinary Field Officer, and Income Tax Inspector. However, beyond his professional accomplishments, Kuldeep Sir finds solace and fulfillment in pursuing his hobbies. He is an avid writer, pouring his thoughts into books that captivate readers. Additionally, Bhupendra Sir is a voracious reader, constantly seeking knowledge and expanding his understanding of the world. In his spare time, he has also dedicated himself to helping disabled children, displaying his compassionate nature and desire to make a positive impact in society. For welcoming our chief guest, I would like to request Dr. Anjana ma'am to honor him with pot and memento. And Paramita ma'am to welcome him with gift. Welcome, sir. I would like to say a few words about our chief guest of honor, Dr. Prashant Srivastava, sir. Dr. Prashant Srivastava, sir, currently is Assistant Professor in Geology Department in VYT College and was Dean of Student Welfare at Premchand Yadav University in Chhattisgarh. He has achieved many academic accomplishments, including obtaining his MSc in Geology with first position in merit in 1989, his MPhil in Geology with first position in merit in 1990, his PhD in 1999, all from Pandit Ravi Shankar Shukla University in Raipur. Dr. Srivastava has received numerous awards, including the Best Teacher Award in 2020 from the Institute of Scholars Bangalore and the DST Young Scientist Award in 1995. He has also been a recipient of the Commonwealth Academic Staff Fellowship in 2008, the UGC Postgraduate Research Award in 2009, and the US India Fulbright Visiting Lecture Fellowship in 2009. To honor him with pot and memento, I want to request Asim sir. And with gift, I want to request Anjana ma'am. Thank you, ma'am. Now it's time to welcome our foreign dignitaries. For that, I would like to request our B.Ed students to welcome on stage and honor them with plants. Our chairperson, sir, Mr. Rupesh Kumar Gupta, sir.
Our director ma'am, Mrs. Kathy Sahu ma'am. Our director sir, Mr. Asim Sahu sir. GM of PSP, Mrs. Paramita Mohanty ma'am. And at last, our principal ma'am, Dr. Anjana Sharad ma'am. Thank you, everyone. We are so excited to have you with us today. To set the tone for a wonderful event, please enjoy the special welcome song by our third and lead student, Chinmay Sahu. यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए तिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए तिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से है हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। Very warm welcome to you all. Thank you, Chinmay, for the wonderful song. Now, to honor our control guest, I would like to request Rekha ma'am, Dr. Meena Pandey ma'am, Assistant Professor in Sanjeevani Academy, Dr. Ishwar Singh sir, Principal of Kalyan Shiksha Sansthan, Dr. Chaya Sumtikre ma'am, Assistant Professor in Education Department, Kalyan College, Thank you, Rekha ma'am. Now, I would like to invite a respected Principal ma'am, Dr. Anjana Sharad ma'am, for the welcome speech. Thank you, Reshma ma'am. Thank you very much.
विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ उपस्थित आज की सभागार में सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षकों को और हमारे विशेष चीफ गेस्ट और सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। शुभ प्रभात, very very good morning to all my dear students, very very good morning. First of all, I am indebted to Goddess Saraswati for giving me an opportunity to excel in my efforts to begin this national seminar Manthan with full energy. I, Principal of Prism School of Education, on behalf of Prism Institution, from the bottom of my heart, I welcome all of you. We are very much fortunate. आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं चीफ गेस्ट रजिस्ट्रार सर श्री कुलदीप उपेंद्र कुलदीप सर। We are highly privileged to have a such intellectual and eminent chief guest with us. Welcome, sir, from the bottom of my heart. I feel honored and privileged to offer my gratitude to honorable chief guest. A warm welcome to the guest of honor, Dr. Prashant Srivastava sir, Assistant Professor, VYT College. I must feel heartfelt gratitude to sir for his kind support to conduct the national seminar Manthan. Welcome, sir. From the core of my heart, I welcome you, sir. I welcome Srimati Paramita Mohanty ma'am, Executive Member of Saroj Gopal Educational Society. Welcome, ma'am. I welcome Sri Asim Sahu sir, Director, Prism Institution. Welcome, sir. I would like to welcome Director Khyati Sant ma'am. Welcome, ma'am, and thank you for boosting us. Without you, it was not possible to organize such huge event. I welcome our chairperson, sir. Welcome, sir. It's a time to thank our sir for his excellent suggestion, for creating such ideas, and for making this topic of our national seminar. Thank you very much, sir, and giving me opportunity, sir. I welcome all the distinguished guests, keynote speakers, and panel speakers in today's national seminar, Manthan. इस सभागार में उपस्थित सभी जनों को मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा नेशनल सेमिनार मंथन, ये हमारे प्रिज्म इंस्टीट्यूट का ये 3rd नेशनल सेमिनार है एंड मैं एक बहुत ही प्राउड प्रिंसिपल हूँ इसको कहने के लिए कि इस वर्ष हमें 2024 में ये हमारा दूसरा नेशनल सेमिनार हम कंडक्ट करने जा रहे हैं और इस नेशनल सेमिनार के टॉपिक को बनाने के लिए हम लोग कुछ दिनों से बहुत सोच विचार कर रहे थे कि किस विषय पर हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का टॉपिक को हम बनाएं, डेवलप करें। तो एक ही चीज हमेशा से माइंड में रहता है कि NAP 2020 जो हमारे शिक्षा का आज आधार बन चुका है, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन क्यों ना हो, या कोई भी स्कूली एजुकेशन हो या फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो, तो हायर एजुकेशन सिस्टम को हम बहुत अच्छा बनाने के लिए हम इंडिपेंडेंस से ही हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे कमीशन थे जिसमें राधाकृष्ण कमीशन एक था जिसने यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया था उस समय 1947-49 में। तो आज हम यहाँ पे विकसित भारत 2047 में जब हम यहाँ पे इस प्रयास के साथ इनिशिएटिव के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ रहा है और जो हमारा अमृत काल चल रहा है पूरे भारत का 100 वर्ष पूरे होने को है और उसमें ऐसे कई कार्य है जो हम दिन प्रतिदिन हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट वो सारे कार्यक्रम हमारे सामने रखते हैं और वो सारे इनिशिएटिव कार्यक्रम को हम फॉलो भी करते हैं और उसको हम क्रियान्वित भी करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य एक हमारे लिए होता है शिक्षण संस्थानों को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कि हम इन सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स को सोचे समझे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लाए, इसमें एक चर्चा करें, संगोष्ठी रखें और इसमें डिस्कशन भी हो और जिसके लिए हमारे साथ आज जो हमारा टॉपिक है
हायर एजुकेशन का जो एनहांसमेंट है, क्वालिटी एनहांसमेंट एक संस्थान में या पूरे भारत में किस प्रकार होना चाहिए, इस पर बहुत सारे ऐसे सेमिनार, नेशनल सेमिनार बहुत हमारे भारत में हर स्टेट में, हर राज्य में इस पर बहुत सारे विचार और इस प्रकार के वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हमने भी एक छोटा सा यहाँ पे आज प्रयास किया है प्रिज्म संस्थान में कि क्वालिटी एनहांसमेंट इन हायर एजुकेशन और नैक पर्सपेक्टिव के ऊपर में एक हम टॉपिक बनाए। हमारा जो आज का जो विषय है, टॉपिक है, बहुत ही एक हम कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी आज हम प्रिंसिपल्स जो हमारे आज एजुकेशनिस्ट, जो हमारे सिलेबस मेकर, कैरिकुलम मेकर, जितने भी आज हम लोग इतने वर्षों से 2020 के बाद से जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे विचार हम कर रहे हैं कि NAP 2020 को आधार बना के हम अपने हायर एजुकेशन को कितना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो उसमें कुछ क्रेडिट सिस्टम भी आ गया है, उसमें चेंजेस हो गया है। अब हमारे इस ग्रुप जिला में भी, हमारे हिमचंद यादव यूनिवर्सिटी में भी आज हम भी प्रिज्म कॉलेज, हमारे पास भी हमारे कॉलेज में भी ग्रेजुएशन है, BSc, BCom एंड BA, PGDCA, BA, BSc और BCom में भी हमने आज 2020 जो हमारा सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, जो सिलेबस है, उसको भी हमने यहाँ पे भी अभी 2024 से हमने भी इसमें यहाँ पे फॉलो किया है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस तो है, नो डाउट। सिलेबस बहुत अच्छा है, हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने अपकमिंग न्यू जनरेशन को, अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को जो स्कूल के बाद में जस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं, हम उन्हें एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन देना चाहते हैं। और किस प्रकार का इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम देना चाहते हैं, उसमें उसको मल्टीलिंगुअल होना है, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ वो हम अपने देश में ही, अपने राज्य में ही वो वर्क ना करे, अपने राज्य में ही कार्य ना करे, अपने राज्य के भी बाहर जाए और देश के भी बाहर जाए, एशियन कंट्री में जाए, अब्रॉड जाए, उसके पास में बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके पास में एक वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए, जो आज हमारे इस NAP 2020 में एक आधार के रूप में डाला है, वैल्यू एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन नॉलेज को हमने एक प्राइम इसमें एक कंटेंट माना है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम भी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, हर एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। तो हमारा आज का जो मेन जो हमारा थीम, जो टॉपिक है आज का हमारे नेशनल सेमिनार का, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ में जुड़े हैं, ऑनलाइन भी हमारे कुछ स्टूडेंट और एस्पिरेंट इसको सुन रहे हैं, इस नेशनल सेमिनार को। आज जो हमारा जो ये मंथन, जो हमने नेशनल सेमिनार का नाम दिया है, वो सही मायने में मंथन है। जो हमने इस थीम को, सब थीम्स को इतना सारा स्प्लिटेड किया हुआ है, उसके लिए हमने सागर से मंथन करके चुन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमने यहाँ पे बुलाए हैं एज ए कीनोट स्पीकर और एज ए पैनलिस्ट। मैं चाहती हूँ हमारे स्टूडेंट को कि इनके लिए बहुत एक बढ़िया सी ताली हो जाए। थीम 1 है हमारा न्यू डायरेक्शंस इन हायर एजुकेशन, जिसके अंदर में सब थीम्स और है, और उसके बाद है हमारा थीम नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन HEI। थीम 1 इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द न्यू डायरेक्शंस इन हायर एजुकेशन, जिसमें अभी जो हम NAAC के प्रोसेस में जो भी कॉलेजेस हैं या जो NAAC करने वाले हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस है। NIRF के बारे में भी कुछ यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कीनोट स्पीकर्स से, पैनलिस्ट से इस पे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि कुछ एक पेपर प्रेजेंटेशन भी कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं जो बाहर से आए हैं और ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, वो अपना पेपर प्रेजेंटेशन भी करेंगे। और इस थीम में, थीम नंबर 1 में हमारे साथ में पैनलिस्ट, कीनोट स्पीकर ऑनलाइन जुड़ेंगे और उसके बाद में पैनल डिस्कशन होगा। पैनल डिस्कशन में हमारे साथ में जुड़ेंगे आज हमारे पैनल स्पीकर डॉक्टर सरोजा मैम, शी इज द मॉडरेटर ऑफ थीम नंबर 1। और इसके अलावा हमारे जो भी क्वेश्चंस रहेगा हमारे जो ऑडियंस की तरफ से, उसको जो है हमारे सरोजा मैम और हमारे जो पैनलिस्ट है उसका आंसर देंगे। उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन होगा। थीम नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम सबको पता है कि रिसर्च एक अपने आप में नाम में ही बहुत बड़ा एक मायने है, भारी भरकम शब्द है रिसर्च। ईच एंड एवरी एरिया में, चाहे वो हम कह सकते हैं कि लाइफ साइंस हो या स्पेस साइंस हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर जगह रिसर्च हो रहा है। हमने बहुत सारे ऐसी दवाइयों का इन्वेंट किया है जिससे लोगों का प्राण तो बचता है और कृत्रिम हम शरीर में अंग भी लगाते हैं। तो
अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है तो किस प्रकार से रिसर्च करेगा, तो उस मुद्दे पर उस पार्ट में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। थीम 2 हमारे जो कीनोट स्पीकर्स है डॉक्टर अनिल चौधरी है, उसके साथ पैनल स्पीकर्स भी हैं और इसके मॉडरेटर रहेंगी हमारी डॉक्टर शिशिर कौरा भट्टाचार्य मैम। वेलकम मैम। थीम 3 डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। शुरू में ही मैंने कहा, प्रारंभ में मैंने कहा कि डाइवर्सिटी की बहुत जरूरत है। भारत एक विभिन्नता लिए हुए एक देश है, विभिन्न धर्म, जाति, धर्म, संप्रदाय, बोली यहाँ पे बोली जाती है, थोड़ी थोड़ी दूर में हमारी बोली बदल जाती है और यहाँ पे हम अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का एक शिक्षा अपने कॉलेज के अंदर में, एक रूम के अंदर में दे सकते हैं। क्या हम उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वो एक ह्यूमन बीइंग बने, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं क्या? क्या वो जब यहाँ से पढ़ के जाएगा अपने संस्था से, अपने कॉलेज से, तो क्या वो अपने देश के साथ, वो अपने ग्लोबली वो कुछ सोच पाएगा? इन्हीं सब थीम्स को लेकर आज हमारे बीच में पैनल डिस्कशन होगा और इसमें हमारे मॉडरेटर रहेंगे संतोष मिश्रा सर, बहुत जल्दी वो हमारे साथ भी जुड़ेंगे। थीम नंबर 4 इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेन पाथवेज टू टीचिंग। ये सबसे मैं मानती हूँ कि हमारे इस रिसर्च आज के हमारे इस नेशनल सेमिनार का एक बहुत ही मुख्य हमारा एक टॉपिक है, जो कि आज हम सब चाहते हैं, हर संस्था, गैर संस्था ये चाहती है कि हम अपने कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम हम शुरू करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसमें कुछ कॉलेजेस जो है कुछ परसेंटेज, कुछ मार्क्स के लिए चूक जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, सिर्फ अगर अभी ग्रेडिंग से ही हमें अगर आकलन हमारा किया जाए तो क्या ये सही है, या उसके अलावा भी अगर कॉलेज में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, तो क्या हम ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज नहीं ला सकते? ये मेरा एक सोच है। तो इसी को हम एक मंथन में यहाँ पे हम लाए हैं कि बहुत ही एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। उसके लिए हमारे साथ में आज एससीईआरटी से डॉक्टर दीपा दास मैडम आज हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव मैडम हमारे साथ जुड़ेंगी और इसमें आज की जो थीम 4 की जो मॉडरेटर है डॉक्टर दीपा दास मैम, इनके लिए मैं चाहती हूँ कि एक जोरदार ताली हो जाए। हमारा जो लास्ट थीम रहेगा आज का वो न्यू टेक्नोलॉजीज इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हम लोग बीएड ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, हम शिक्षक बनाते हैं, हमारे साथ में बहुत से स्कूल जुड़े रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। हमारे ही संस्था में हमारा खुद का प्रिज्म पब्लिक स्कूल है जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है। एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर 12 क्लासेस हमारे यहाँ चलती है। अभी हमारे यहाँ से 2 बैच जो है 12 बैच निकल चुका है 12 बोर्ड का। आने वाले सालों में हम यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें लाना चाहते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा जो यहाँ का स्कूल का जो स्टूडेंट है जो एकदम न्यू बडिंग स्टेज में है, एडोलेसेंस है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत नॉलेज है, बहुत ब्रिलियंट है और बहुत कुछ सोचता है वो करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने एक यहाँ पे थीम रखा है न्यू टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। और इसकी जो कीनोट स्पीकर है बहुत ही रिनाउंड एक हमारी टीचर है ईपीएस बड़ौदा की गीता झुंझानी मैम, वो हमारे सेकंड हाफ में हमारे साथ में जुड़ेंगी और वो कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ रहेंगी। और इसमें हमने कुछ सब थीम्स भी रखा हुआ है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एजुकेशन, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द स्कूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इन लर्निंग स्टाइल। इसलिए मॉडरेटर के रूप में हमारे प्रिज्म पब्लिक स्कूल के मिस्टर उमेश कुमार जुड़ेंगे एज ए मॉडरेटर। क्लास फॉर हिम, वो हमारे साथ में बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर आलोक शर्मा जी एससीईआरटी से वर्चुअली वो हमारे साथ इसी थीम पर बोलेंगे। उन्होंने अपना टॉपिक आज ही मुझे सेंड किया है और वो बहुत इच्छुक है, बहुत क्यूरियस है हमारे साथ इस नेशनल सेमिनार में वर्चुअली जुड़ने के लिए। तो मैंने अभी अपने यहाँ के नेशनल सेमिनार के थीम्स एंड सब थीम्स को मैंने बहुत अच्छे से मैंने डील किया और क्वेश्चंस तो बहुत रहेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे हमारे विद्यार्थी। बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है, टॉपिक है, तो हमारे पास तो इतना कुछ नॉलेज नहीं, हमने सिर्फ एक टॉपिक को बनाया
और आप जैसे एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ पे बुलाया। तो हम शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा नेशनल सेमिनार मंथन है, इसको हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा और मैं कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि एक प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे मिला हुआ है। आज हम इसका एक ओपन फोरम यहाँ पे रहेगा, हमारे स्टूडेंट भी क्वेश्चंस कर सकेंगे। हमारे स्टूडेंट्स आज फ्री है क्वेश्चन करने के लिए। आपके सामने हमारे स्टूडेंट के सामने बहुत अच्छे स्पीकर्स रहेंगे जो कि स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कैरिकुलम बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं। आप लोग उनसे क्वेश्चन करिएगा और वो आपको आंसर देंगे। जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हमारे इस सेमिनार में जो रहेगा वो होगा NIRF overview and significance, methodology and metrics of the NIRF ranking framework. Analysis will be done. Participants will acquire the knowledge of AI and its application, how to develop deep learning networks for developing of all the systems. तो ये हमारा एक आउटकम रहेगा। हम सब जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म अगर मिला हुआ है तो ये कहना उचित होगा बहुत आज इस प्लेटफॉर्म से कि एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। एजुकेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमने अपने एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे हमने इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हम लाए हुए हैं। अपने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हम मील देते हैं, उनके लिए हम कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं, उनको NCC करवाते हैं, NSS में लेके जाते हैं, गाइड स्काउट एंड गाइड जैसे हम छोटे बच्चों के लिए रखते हैं। उनको मसल्स पावर उनका अच्छा रहे, वो सोसाइटी के साथ जुड़ सके, वो इंटरैक्टिव बन सके, उनका बिहेवियर अच्छा हो सके। साइकोलॉजिकली भी हम अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। एजुकेशन जो है पर्सन टू पर्सन ही कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा वेपन है। ये सारे दरवाजे खोल देता है, हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाता है एजुकेशन। हम अपने जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ग्रहण करिए। नॉलेज किताबों में तो मिल जाता है पढ़ने से, एग्जाम हॉल से हम अपना एकेडमिक अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए। जो हमारा हम कहते हैं कि गन्स एंड जो वेपन्स है, जो आज जिसका प्रयोग न्यू टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है, साइंस इतना डेवलप है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो वॉर करता है, युद्ध करता है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से ये कहती हूँ कि कंस्ट्रक्टिव बने, कंस्ट्रक्शन की ओर ध्यान दें। गन्स एंड वेपन्स पे बिल्कुल भी कभी विचार ना करें। अगर आप साइंटिस्ट बनते हो तो वो अलग बात है, पर कंस्ट्रक्टिव नेचर होना आपके अंदर में बहुत जरूरी है। ये बहुत आज का एक नीड है। मैं चाहती हूँ कि इस मंच से जो भी सुन रहे हैं कि हम पूरे विश्व की शांति चाहते हैं, ना कि हम युद्ध चाहते हैं। पुनः मैं आप सबको इस मंथन में नेशनल सेमिनार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे भारत में कुछ ही दिनों के बाद में बहुत ही अच्छा एक रिलीजियस एक मेला लगने वाला है, हमारा आस्था का मेला लगने वाला है, महाकुंभ। सबको इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, Principal Ma'am. Now, I would like to request Prashant sir for his message. आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। मंच पर आसीन इस महाविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर गुप्ता जी, मुख्य अतिथि मेरे मित्र आदरणीय श्री भूपेंद्र कुलदीप जी, डायरेक्टर ख्याति साहू मैडम, असीम साहू सर, कमिला मोहंती मैडम, इस महाविद्यालय की सम्मानित प्राचार्य अंजना मैडम, और मेरे सामने विराजमान विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षा संकाय के प्रबंधक और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जितने भी टीचर्स बैठे हैं मैं सबको बाय नेम जानता हूँ और सबके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला, चाहे सुशील कन्ना मैडम हो, चाहे लड़की हो, चाहे प्रतिभा हो, प्रभा हो, शबाना, सभी उषा है, छाया मैडम है, पांडे मैडम, सभी को निर्मल है, ईश्वर सर, सभी मित्रवत हम लोग साथ में रहे और सबसे बहुत सारा चीज सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं प्रिज्म एजुकेशन
सोसाइटी कहिए, प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन कहिए, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग कोई भी जो कार्यक्रम कराते हैं वो बहुत ही वेल मैनेज्ड कार्यक्रम होता है। कुलदीप सर मैं अभी यही बात कर रहे थे कि इनका हर कार्यक्रम जो है वो वेल मैनेज, किसको बुलाना है, कब बुलाना है, क्या बोलना है, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनकी पहले ट्रेनिंग की जाती है। ये क्योंकि हम लोग को विश्वविद्यालय में रहते हैं तो बहुत सारे कॉलेजों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन दूसरे कॉलेजों और इस कॉलेज में डिफरेंस दिखाई देता है। इसके लिए इनका प्रबंधन, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूंगा आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं अभी आपको बताऊं, टॉपिक में अपन 2 मिनट बाद बात करेंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो आपके डायरेक्टर सर और नवीना मैडम हम लोग के साथ थी गाड़ी में, तो हम लोग कुलदीप सर के घर गए उनको लेने के लिए और आ रहे थे, तो जो 10-15 मिनट का हमारा जो समय था, मैंने देखा आपके डायरेक्टर सर एज वेल एज नवीना मैडम, उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो ख्याति मैडम और असीम सर मिले। ये चारों से जब आप बात करिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ऑलवेज वो लोग पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। गुप्ता जी ने बताया सर हम अगले साल ये करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, मैंने ये सोचा है, मैंने ये जमीन ली है, मैंने यहाँ अप्लाई किया। ऑल द टाइम जो है वो प्रॉस्पेरस वाली बात है। कभी भी इन चारों लोगों में मैंने नेगेटिविटी नहीं देखी। और आपने मुख्य अतिथि भी ऐसा बुलाया है कुलदीप सर को जो ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग कुलदीप सर मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमेशा मैंने देखा कुलदीप सर ने हमेशा पॉजिटिव, कभी उनका नेगेटिविटी मैंने नहीं देखी। कह रहे सर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कैसे कर पाएंगे, करेंगे सर अपन लोग मिलकर करेंगे, आप ये कर लीजिएगा मैं ये कर लूंगा। तो अरे अभी आप देखिए 2 और महान विभूतियां पधार रही है, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा मैडम और ये तो काफी देर से निकले हैं और इनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो ये फटक लेके आपका कॉलेज नहीं मिल रहा था। इनका जीपीएस जो है वो काम नहीं कर रहा था, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। बैठिए आप लोग। तो इसके लिए मैं जो प्रिज्म कॉलेज का प्रबंधन है, मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने बड़े चुन-चुन के लोगों को बुलाया है। प्रदेश का एकमात्र A+ कॉलेज और उसकी हमारी 2 सीनियर मैडम, मैं सच कहूं तो अस्थाना मैडम और तनुजा मैडम से मैंने जैसे उंगली पकड़ के बच्चा सीखता है वैसे मैंने सीखा इन लोगों से। और इन लोगों का बड़प्पन है कि वो कभी भी अपना क्रेडिट नहीं लेती है और कहती है कि प्रशांत बहुत अच्छा है। प्रशांत कुछ अच्छा नहीं है, तो बेसिकली इन लोगों ने इसको ऐसा बनाया है, मजबूरी में अच्छा करना पड़ता है। तो जो प्रिज्म कॉलेज है, प्रिज्म कॉलेज को आप देखिए लगातार जो 3रा साल है इनके मंथन का, और भी एक्टिविटीज करते हैं और 2-3-4 एक्टिविटीज में गुप्ता जी की कृपा रहती है मुझे आने का अवसर मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हमेशा आगे बढ़ने की लालसा। आज का जो टॉपिक रखा है इन्होंने क्वालिटी एनहांसमेंट इन हायर एजुकेशन, उसमें भी आप देखिए कि आप लोग ने जब एडमिशन लिया होगा और उसके बाद से कुछ ना कुछ इस कॉलेज में हमेशा पॉजिटिव होता है। अंजना मैडम यूनिवर्सिटी आती तो हम लोग घबराते हैं, ये कुछ ना कुछ अपने कॉलेज के फेवर की बात करते हैं। अरे भाई अंजना मैडम आई कि नहीं बोलेंगे हमारे कॉलेज में ऐसा करा दीजिए, हमारे कॉलेज में ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोगों को क्या है, अपना 10 बजे आए 5 बजे चले गए, कॉलेज उतना जाना है अपने क्या करना। लेकिन पूरा स्टाफ, अभी आपने देखा कि हेमलता की बेटिया ने बहुत अच्छा गाना गाया है ना। हेमलता मैडम यहाँ पहले पदस्थ थी, फिर पार्लियामेंट पार्टी से एंट्री कॉलेज चली गई और बेटिया ने बहुत अच्छा गाना गाया है। सरस्वती वेलकम साहब। तो हर चीज को मैंने देखा गुप्ता जी और पूरी टीम जो है अप्रिशिएट करते हैं। एक छोटी सी बात भी रहेगी, मैंने कभी भी आपके प्रबंधन से आपके अगेंस्ट नहीं सुना कि हमारे यहाँ पुरानी मैडम तो पढ़ाती नहीं है, मेरे को तो उसको हटाना है, सर हमारा का स्टाफ बहुत बेकार नहीं। ऑलवेज ये चाहे कपिला मैडम हो, चाहे गुप्ता जी हो, चाहे ख्याति मैडम या आसिफ सर, हमेशा स्टाफ की, स्टूडेंट्स की हर चीज को वो लोग बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लेते हैं और यही एक सफल संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यदि कोई 55% भी लाएगा तो हम लोग ऐसे बोल अरे यार सेकंड डिवीजन लाए तो पढ़ते नहीं है, लेकिन गुप्ता जी और कपिला मैडम को मैंने देखा कि अरे सर 55 नेक्स्ट ईयर ही विल 60%। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला इन लोगों ने खूब के करी हुई, जो हम सबको सीखना चाहिए।
मैं इनकी तारीफ इसलिए भी कर रहा कि इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनसे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। ये नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं हमेशा इनकी तारीफ करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लायक है जो हम लोगों में नहीं। दूसरी बात जो क्वालिटी एनहांसमेंट की बात आज आपने टॉपिक रखा है, इसके लिए एबीपी में देखिए, अभी अस्थाना मैडम जब पहले डिस्कशन करेंगे तब भी आप देखिएगा, एबीपी में मेन जो है वो उन्होंने सबसे बड़ा जो चेंज किया है कि टीचर सेंट्रिक क्लास को कन्वर्ट किया है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास। अभी तक क्या होता था, वन वे ट्रैफिक होता था, हम लोग क्लास में जाते थे, हम जैसा चाहते थे वैसा पढ़ाते थे, जो हम टॉपिक चाहते थे वो पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स का काम केवल सुनना था। लेकिन एनईपी में ऐसा नहीं, अब वो टू वे ट्रैफिक किया उन्होंने कि स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेटिव लर्निंग होगी, वो भी उतना ही हिस्सा लेंगे और टीचर भी वैसा ही हिस्सा लेंगे। तो इन दोनों में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के मन में सीखने की ललक होती है। अभी परसों बीआईटी में प्रोग्राम था, मैं उसमें गया था, मुझे वहाँ गेस्ट करके बुलाया गया था, वहाँ एक बच्चे ने बताया कि सर मैं ऐप बना रहा हूँ ये, और उस ऐप का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि जैसे अपन लोग जैसे अभी मोती मैडम और गुप्ता जी यहाँ आ गए, अब तालपुरी में रहते हैं, इनके घर खाली है ना, तो हो सकता है कि कोई इसकी रेकी करे या कोई उस घर के सामने घूम रहा है, तो यदि आपके घर के सामने कोई अननोन पर्सन घूम रहा है मोर देन हाफ एन आवर, जिसको आप नहीं जानते, तो व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा गुप्ता जी को कि भाई आपके घर के सामने आधे घंटे से कोई अननोन व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब ये गुप्ता जी का दायित्व है कि वो बोले कि नहीं वो तो हमारे मामा का लड़का आया हुआ है, तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि गुप्ता जी को लगता है कि अरे हम तो इसको जानते नहीं है, क्यों घूम रहा है आधे घंटे से, तो ही कैन टेक एक्शन, अपने पड़ोसी को बोलेंगे या घर में बिटिया होगी, बेटा होगा, जो भी होगा, कि देखो तो बाहर कौन आधे घंटे से हमारे घर के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि अननोन व्यक्ति। तो ये कितनी बड़ी बात है बताइए, एक बीआईटी का 4th सेमेस्टर का बच्चा उसने डेवलप कर लिया, और नॉट ओनली मैन, यदि आपके सामने कोई गाय कुत्ता है, उसको भी वो बताएगा कि आपके घर के सामने जो है वो गाय आधे घंटे से खड़ी है। तो वो बोला कि सर बस मेरे को अभी दिक्कत ही आ रही है कि मैं केवल पशु आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ये नहीं बता पा रहा हूँ कि गाय खड़ी है कि कुत्ता खड़ा है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप देखिए जो क्वालिटी एनहांसमेंट है वो ऐसे ही होगा। आप सोचे कि पूरी टीचर की जिम्मेदारी है, वही मेरे को बताए, वही सब कुछ समझाया, हम केवल आए चले जाए, तो ऐसा नहीं। आपको भी ठीक इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि आपका एक टीचर करता है। 40 मिनट पढ़ाने के लिए टीचर घर में 4 घंटे पढ़ के आता है। जब हम लोग शुरू में नौकरी में आए थे तो समझ में ही नहीं आता था, हम लोग बहुत तैयारी से 40 मिनट का पूरा रेडी करके जाते थे, वो 25 मिनट में खत्म हो जाता था सब। 15 मिनट ऐसा होता था कि अब क्या करें, क्योंकि वो बैलेंस करने की आदत नहीं थी। तो आपको इन चीजों को अडॉप्ट करना है, और जितनी मेहनत आपके टीचर्स कर रहे हैं उतनी मेहनत हमको करना है। और दूसरा, क्लासरूम में जरूर आइए। आजकल स्टूडेंट्स का पता नहीं क्या हो गया है कि क्लासरूम करना वो जो है वो बहुत ही कम हो गया। आप लोगों के मन में क्या है ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप क्लास में क्यों नहीं आना चाहते। तो आप सोचेंगे कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे, नेट से पढ़ लेंगे, किताब घर में ले जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो सब स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट बंद कर देती है। जब तक टीचर आपको कोई बात को संप्रेषित नहीं करता है, नहीं बताता है, अपने समझ में नहीं आता। तो टीचर का बताना, टीचर की अभिव्यक्ति और उनका जो अनुभव, अंजना मैडम 30 साल से पढ़ा रही, तो वो जो आपको बताएंगी वो आप खाली मोबाइल या उससे नहीं पढ़ सकते। तो क्लास में आप जरूर से आइए, और जो हम लोग कर रहे हैं उसको आप जस्टिफाई कीजिए। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जयपुर, तो वहाँ बात भ्रष्टाचार की करता हूँ, तो सब लोग ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो अंत में हल क्या निकला, कोई बोला कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, तो बोले सब कुछ ले दे के खत्म कर लेंगे। तो अब आप बताइए कि आप भ्रष्टाचार पे कॉन्सेप्ट पूरा सेमिनार कर रहे हैं, आगे में डिस्कस कर रहे हैं कि ले दे के खत्म कर दो, तो फिर शुरुआत हो गई भ्रष्टाचार। तो जो बात हम कह रहे हैं उस बात को हमको करना भी चाहिए, तभी वो आप जीवन में सफल होंगे। तभी आप देखिएगा कि आप पूरी लाइफ में आपको, क्योंकि ये जो आपके 2 साल 3 साल जो आप पढ़ रहे हैं, यदि इसमें आपने आराम कर लिया तो जीवन भर कठिनाई है, और इसमें आपने थोड़ा सा कठिनाई से अच्छे से पढ़ लिया तो जीवन भर आराम। इस बात को आप बिल्कुल ठान बात लीजिए कि ये जो 2-3-4 साल आपके बहुत खुशियां है, और आप लोग बहुत लकी है जो आप लोग स्कूल ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लिया है। अभी आपका एक और फ्लोर बनने वाला है, जैसे गुप्ता जी ने बताया, आपके पढ़ते पढ़ते ही फ्लोर भी तैयार हो जाएगा।
तो कुल मिला के बात यह है कि यदि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई प्रिंसिपल, कोई डायरेक्टर, कोई टीचर यदि आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो हमको उसको पूरा 100% लाभ उठाना चाहिए। कोई भी मौका ऐसा मत छोड़िए कि प्रिज्म स्कूल में कोई अपॉर्चुनिटी है, आपकी अच्छी गैलरी है, अच्छा गार्डन है। आप अभी हम लोग आज देखें, बहुत ही सुंदर एकदम वेल मेंटेन गार्डन। आप जाइए देखिए, आपको पता नहीं होगा इस पौधे का क्या नाम है, इसमें फ्लावरिंग कब आती है, इसमें ब्रीडिंग कब होती है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में करिए कि अपन ने गमला देख लिया, ये झाड़ देख लिया कि हाँ ये कैसे बनता है, इसकी पत्तियां क्या नाम है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, मेडिसिनल प्लांट है क्या। आप एक झाड़ किसी कुछ मत बोलिए, रोज आते हैं कॉलेज, आप 5 मिनट देखिए क्या, आप देखिएगा आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और आपकी मास्टरी हो जाएगी कि उस प्लांट के बारे में आप जो है वो बता पाए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब आपको कॉलेज प्रोजेक्ट अलॉट करें तो आप उसी प्रोजेक्ट को करेंगे। अभी मैंने देखा था, मैं डीपीएस स्कूल में मुझे बुलाया गया था। नॉर्मली क्या होता है, एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम लोग कॉलेजेस में भी ऐसी प्रैक्टिस थी कि वो एक पॉल्यूशन पे लिख के लिया, तो बच्चा जो है वो 10-20 पेज में वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन लिख के कुछ के लिए आता है, जमा कर देता है, उसको 25 नंबर में से 20-22 नंबर आराम से मिल जाते हैं। लेकिन वो कहीं से बच्चे लिखना इसलिए लिख के ले आता था, वो जान नहीं पाता था कि एक्चुअल में यदि वो 25 पेज जो वाटर पॉल्यूशन लिख के लाया है उसको भी अच्छे से पढ़ता है तो कम से कम जल प्रदूषण के बारे में जानता है। अब उन्होंने कैसा कर दिया है कि हर बच्चे को एक अलॉट कर दिया है, उनको जो बीज है, सीड्स जो होते हैं वो दे दिए, उनको अपने घर में गमले में लगाओ और वो पौधे को देखो कि ये कैसे डेवलप होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका क्या बॉटनिकल नेम है, उस पौधे की क्या पैसे दिख रहा है, वो मर कभी जा रहा है पौधा, उसको अपने को छाया में रखना है, इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है। ऐसा उन्होंने 10th क्लास के सभी बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, मैं डीपीएस के साथ कर रहा था। तो हर बच्चे में इतनी क्यूरियोसिटी थी, इतनी एक्टिविटी थी, उन्हें 2-3 बच्चों को मेरे सामने मिलवाया भी, तो बच्चा बड़े उससे बताया सर मैंने वो जुलाई में लगाया था, सब अगस्त तक ऐसा हुआ, फिर ये पता नहीं उसमें क्यूरियोसिटी थी। और सबसे बड़ी खुशी कि मैंने वो पौधा लगाया, आज वो पौधा आप कभी लगा के देखिए पौधा, और वो जब पौधा बड़ा होता है तो इतनी खुशी होती है कि वो खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो ऐसे छोटे छोटे आप स्टेप करेंगे। बाकी कोई रशिया यूक्रेन का युद्ध या इजराइल और हमास का युद्ध, उसके लिए आपको जिम्मेदारी नहीं, उसके लिए बाइडेन और ट्रम्प और मोदी जी हैं। आप जो कर सकते हैं वो उसको करिए। दूसरी एक बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कभी भी छोटे से शुरुआत करिए। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा कोई चीज ले लेते हैं, पीएचडी में हम लोग सेल्फ एजुकेशन और हम लोग की बात करते हैं अक्सर कि लोग कुछ भी टॉपिक ले लेते हैं, खासकर एजुकेशन में मैंने देखा कि वो बड़े किसी तरीके से रिपीटेड टॉपिक आते हैं। थोड़ा सा नया सोचिए, चाहे साइकोलॉजी देखिए, आजकल बच्चों की साइकोलॉजी बहुत बदल गई है, उस पे काम करना चाहिए। वही वो जो पुराने चले आ रहे हैं वैसा बिल्कुल मत करिए। तो आप देखेंगे कि कुछ नयापन आएगा। नहीं तो विश्वविद्यालय में मेरे ख्याल से 100 पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, उसमें से कम 60-65 जो है वो एजुकेशन फील्ड की, पर किसी में भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि सेम रिपीटिशन, किसी ने छात्राओं के ऊपर किया, दूसरे छात्र के ऊपर कर दिया, किसी ने हायर सेकेंडरी के छात्र के ऊपर किया, किसी ने हाई स्कूल के छात्र के ऊपर कर दिया, बस इससे ज्यादा और कोई चेंज नहीं होता। तो कुछ नयापन होना चाहिए। जब कभी भी आप देखेंगे कि कुछ नया करेंगे तो आपको बहुत खुशी होती है। तो मंथन जो आज आपका नेशनल सेमिनार है, इतने सारे पैनलिस्ट मैडम करेंगे, मैं मैडम अंजना मैडम को या गुप्ता जी या झांकी मैडम जिसने भी जो पैनलिस्ट सेलेक्ट किए विभिन्न जगहों से, सामने मेरे बैठी हुई है और आने वाली भी है, एक बड़ी ज्ञानी है, बहुत ही डायनामिक प्रिंसिपल अभी आने वाली भगवान। तो इन लोगों को जो सेलेक्ट करके बुलाना, कोऑर्डिनेट करना और एक ही समय पे एक ही दिन का आपका कार्यक्रम है बुलाना। अस्ताना मैडम इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती, पता नहीं कैसे अंजना मैडम ने उनको टैकल कर दिया। झांकी मैडम वहां रहती है तो उनका क्रेडिट होगा, अदरवाइज ऑल द टाइम दे आर बिजी, चाहे वो संजय मैडम हो चाहिए। तो 10 मिनट के लिए इन लोगों को यहाँ बुला, वो भी इतनी दूर बुलाना, ये क्रेडिटेबल है। तो हमारा मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि कॉलेज में 2 टाइप के सेमिनार होते हैं। एक ये होता है कि कराने के लिए बैठ के दिखाना पड़ता है तो भाई हमने राष्ट्रीय कराया, अंतरराष्ट्रीय कराया, वैसे सेमिनार होते हैं। और एक सेमिनार ऐसा होता है जो कि वास्तव में स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हो। तो प्रिज्म इंस्टीट्यूशन में मैंने हमेशा देखा कि ये लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि वास्तव में कुछ कराना है इसलिए कराते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू सो मच।
Thank you so much, sir. मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये आशीर्वाद हमेशा हम पे रहेगा. Now, I would like to invite Paramita ma'am. She is executive member of Saroj Gopal Educational Society, and currently she is pursuing PhD in management as well as she is GM in PhD and wife of our chairperson, sir. Very good morning. Good morning to the students and our chief guest, Deep sir, Prashant sir, and all the senior faculty members from UP Live. इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल एक गैदरिंग में मेरे लिए एजुकेशन फील्ड थोड़ा सा अलग है, तो मैं उसी अलग पर्सपेक्टिव से कुछ बोलना चाहती हूँ. मंथन हमारा सेमिनार ये तीसरा साल है, जैसे मैम ने बताया, और मंथन जैसे आप लोग उस शब्द से जानते हैं कि सागर के मंथन से दोनों चीज उत्पन्न हुई थी. ये हमारे ऊपर था कि हम उसमें से क्या लें. दो तीन चीज जो प्रशांत सर ने बोला, मैं वहीं से अपनी शब्द को आगे ले जाना चाहूंगी. लास्ट में यही बोलते चले गए कि हेमचंद जो विश्वविद्यालय है उसमें 100 करीब पीएचडी अभी तक अलॉट मतलब अभी तक अवार्ड हो चुकी है. इसमें से मोस्टली एजुकेशन से है जुड़ा हुआ, और उन्होंने बोला टॉपिक्स में बहुत ज्यादा नया कर रही है. मैं वहीं से अपनी इस चीज को शुरू करना चाहती हूँ कि जो हमारा टॉपिक भी है क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन. क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जहाँ एजुकेशन की बात आती है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही उसके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो टीचर पे सारा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, स्टूडेंट तो ये मिट्टी की तरह है जिसको आप जैसा बनाते चले जाएंगे, मोल्ड करते जाएंगे, वैसे बनेगा. तो टीचर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे सर ने भी बताया कि पहले टीचिंग जो है वो वन वे होती थी. बस टीचर आया, अपनी क्लास में जो भी तैयारी करके आया उसने बताया, और बस स्टूडेंट को उसको नोट करके ले जाना होता था, और उसको एग्जाम्स पेपर में जैसा क्वेश्चन आया उसको छाप दिया, नंबर मिल गया. उसको ये नहीं पता कि इसका क्या एप्लीकेशन है, उसका सोसाइटी में क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, उसको आगे अपनी लाइफ में ले जाके उसको कहाँ यूज करना है. ये दिन अब चलेगा, इससे नहीं होगा. आपके इसीलिए जो रिसर्च भी है वो भी इसी तरह पे चल रहे हैं, बहुत ही कन्वेंशनल, जिसका यूज बहुत ज्यादा सोसाइटी, इंडस्ट्री और प्रैक्टिकल भी है. अगर आप इसी को लेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है, स्टूडेंट बेस बहुत बड़ा है, हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्रीज में जाते हैं, सब जगह. बट हमारे रिसर्च का जो क्वालिटी है, व्हाई इट इज नॉट वर्ल्ड स्टैंडर्ड, वहां हम लैग करते हैं जाके. तो उसको उस लेवल में ले जाना है तो उसको बोलते हैं प्रयोग धर्मी बनाना पड़ेगा. इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, more useful to the society rather than just हम उस तरह पे चल रहे हैं कि हाँ पेपर किस तरह से बनता है, एक पूरी फॉर्मेट है, इसमें इतनी आपका लिटरेचर रिव्यू है, इतना इसका इस चीज से लिखना है, इस पेपर से देखिए, उसका कुछ पैरामीटर चेंज कर दीजिए तो बढ़िया है, पेपर बन जाएगा. और क्योंकि हमारे एपीआई पे बहुत ज्यादा फोकस है कि आपका एपीआई बहुत अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ अ फैकल्टी, तो टीचर फोर्स्ड है कि कुछ भी उसको पेपर बना के किसी भी मैगजीन मतलब किसी भी जर्नल में उसको छापना है. The quality of the journal, the quality of the article may not meet the world standard. तो इस तरह का रिसर्च का ना तो सोसाइटी पे कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ना ही आपके स्टूडेंट पे, ना ही आपके इंडस्ट्री पे. तो इसी से रिलेटेड आपका जो मतलब ये जो टॉपिक है मंथन, उसका नैक पर्सपेक्टिव, एनआईआरएफ का क्या रोल है, ये सारे पैरामीटर्स हैं आपकी क्वालिटी के. नैक की टीम आई थी लास्ट ईयर, हमको बहुत सारे पैरामीटर्स पे उसने नंबर दिए. उससे एक चीज तो लर्न ये भी, अगेन प्रशांत सर को कोट करूंगी, उन्होंने बोला कि दो तरह की सेमिनार होती है, एक तो करने के लिए कि नैक में हमको दिखाना है, दूसरा ये होता है कि हम एक्चुअली
उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फैकल्टीज के लिए करना चाहते हैं, एंड प्रिज्म इज पार्ट ऑफ दैट। इस जो सेकेंड टाइप के सेमिनार्स होते हैं जिसमें इम्पैक्ट हम लाना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो थैंक यू सर, आपने इस चीज को सबके सामने रखा। तो हम लोग नैक को खाली पेपर में नहीं करना चाह रहे हैं, उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, उसका जो फिलॉसफी है उसको अपनी बेसिक फैब्रिक में लाना चाह रहे हैं कि अगर हम सोचें तो ही उसी तरह से सोचें। ऐसा नहीं सोचे कि नैक आएगा तो हमको फाइल दिखानी पड़ेगी तो हम फाइल बनाएंगे, नहीं, उसको डे टू डे हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसी में ले आए कि अगर सेमिनार है तो सेमिनार के टॉपिक्स, उसके फीडबैक, उसमें हमारा क्या हमने अचीव किया, उसका एक एनालिसिस, उसके कुछ ग्लिम्सेस, उसके प्रॉपर रिकॉर्डिंग और उसका स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट, उसको हम अपने उससे ले आए ताकि अगले साल अगले सेशन में हम उसको इम्प्रूव करें। तो ये चाहता है नैक, और नैक जो चाह रहा है उसमें इंडिविजुअल एंड आपकी सिस्टम का इम्प्रूवमेंट चाह रहा है। जो इंडिविजुअल है, जो आपका स्टूडेंट है, उसका जो कैपेबिलिटी है, उसका एनहांसमेंट पे उस पे फोकस है, एंड आपका सिस्टम जो प्रोग्राम है, आपका स्टडी प्रोग्राम है, उसका एनहांसमेंट पे सिस्टम। तो दोनों पे आपको नैक का उस पे काम करना है, एंड उस क्वालिटी को इस तरह से ना लें कि हम एक दिन की तैयारी करें ना, उसको डेली हम अपने काम में लें। इसमें जहाँ रिसर्च और उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करना चाहूंगी, अभी मैंने कल ही पेपर में यूजीसी के चेयरपर्सन जगदीशन का पढ़ा, उसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट का जो 2018 का गाइडलाइन है, उसको उस पे बहुत सारे चेंजेस प्लान है। पिछले 6 महीने से उस पे काफी एनालिसिस चल रही है, एंड दे हैव कम आउट विद अ ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट को मैं भी थोड़ा सा और मॉडिफाई करके नाउ वी पुश टू यूज आफ्टर ऑल प्रॉपर अप्रूवल। उसमें उन्होंने लिखा कि मल्टी डिसिप्लिनरी हमारा जो एजुकेशन है उसको, सपोज करो किसी ने ग्रेजुएशन लेवल में कोई टॉपिक पढ़ा, पीजी में कुछ टॉपिक पढ़ा एंड पीएचडी किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया, तो भी दे विल बी एलिजिबल फॉर द फैकल्टी पोजीशन। अभी ऐसा होता है, अभी इट इज नॉट द सेम वे। अभी ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी आपके सेम ही टॉपिक में होता है, तब जाके आप एलिजिबल होते हो फैकल्टी पोजीशन के लिए। नाउ दे वांट टू चेंज दैट। They want to bring a multidisciplinary approach to this system, and they want to give more weightage to the faculties who are having entrepreneurial some activities, some innovative ideas, some startup ideas. Also, those things will be built into the faculty recruitment. Those things will also have points when the faculty will be recruited for this colleges and universities, because उसमें देखा गया कि जो टीचर है उसपे इतना ज्यादा प्रेशर है एपीआई मेंटेन करने के लिए, तो वो पेपर लिख के उसको पब्लिश कहीं भी बस कराना है, उसको उस पे ज्यादा उसका फोकस है, ना कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना एंड उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे। तो उस मे बी उस प्रोग्राम से उसको उस चीज से उसको हटा के उसको एक जो सोसाइटी के लिए ज्यादा जरूरी है उसमें ज्यादा उसको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। सर ने बताया कि छोटा सा 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट, उसके अंदर एक स्टार्टअप आइडिया है, उसने एक ऐप डेवलप किया, मेरे ख्याल से उसकी डिग्री से ज्यादा उसको यूज हो जाएगा वो चीज। तो मे बी इस तरह की चीजों को हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में एनईपी 2020 जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है। मैंने अभी उसको अप्लाई करने में तकलीफें है, और उसका भी जो एसेंस है उसको समझने में हम लोगों को और जरूरत है। तो सकता उसको थोड़ा एकदम प्रॉपर जिस उससे आया है उसको उस तरह से लाने में समय लगेगा थोड़ा सा, बट कोई भी चीज नया होता है तो उसको थोड़ा समय लगता ही है। एंड जब वो उस फॉर्म में आ जाता है जिस सोच से उसको बनाया गया, एजुकेशन, तो आप सबके सामने मंथन है, मैम ने बताया
जो भी उनके सेमिनार के टॉपिक्स हैं, बहुत ही लर्नेड पैनलिस्ट हैं और कीनोट स्पीकर्स हैं। आज हम लोग सुनेंगे और स्टूडेंट्स इससे ग्रुप स्टूडेंट्स फैकल्टीज और हम सभी इसका एक बहुत अच्छा अपने अंदर कुछ नया लेके जाएंगे इसमें। तो बेस्ट विशेस फॉर दैट and I'm thankful for all the dignitaries who have come here and raised the occasion. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for such warm welcome. हमारे बीच और टीम्स के पैनलिस्ट एंड इन्फ्लुएंस स्पीकर्स उपस्थित हैं, मैं उनको मेरे दिल से वेलकम करती हूँ। Now I would like to invite our chief guest, Mr. Kuldeep sir, for his presence. आप सभी को नमस्कार। आज के वर्कशॉप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव संस्था के चेयरपर्सन आदरणीय गुप्ता सर, मोती मैडम, असीम सर, ख्याति मैडम, अंजना शरण मैडम, अस्थाना मैडम, सुजीत कुमार मैडम और जितने भी फैकल्टीज आज यहाँ पे पैनलिस्ट के रूप में आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपनी ओर से। जैसा कि अंजना मैडम ने बताया कि ये मंथन का तीसरा साल है और तीसरे साल में ये टॉपिक आया है क्वालिटी एनहांसमेंट, जो सुजीत कौर मैडम ने भी बहुत मेहनत की है इसके लिए हमारे साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था NAAC 2020 का, तो सबसे ज्यादा तकलीफ साइंस कॉलेज को उठाना पड़ा था और हम तो इन्हीं के ऊपर में निर्भर थे कि NAAC 2020 को लागू कैसे करना है करके। हमको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था और इन्होंने दो अलग अलग फ्रेम में उसको ढाला हुआ है। आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है कि क्वालिटी एनहांसमेंट इन हायर एजुकेशन, और उसमें लिखा हुआ है द पर्सपेक्टिव ऑफ NAAC 2020। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। क्वालिटी एनहांसमेंट की बात तो पहले भी होती रहनी चाहिए थी, जब NAAC 2020 लागू नहीं था तब भी क्वालिटी एनहांसमेंट की बात होती थी एजुकेशन में। और NAAC 2020 के पर्सपेक्टिव में अभी किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाना है, थिंक टैंक्स हमारे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोग स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उन लोग ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्वालिटी एनहांसमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मुझे इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है, आप सभी के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, और उनका एनालिसिस या उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना मेरी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को चेक करना या बच्चों को एनालाइज करना ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। तो प्राथमिक जिम्मेदारी आप सभी की है कि आप लोगों ने टीचिंग को कितना गुणवत्तापूर्ण बनाया है, बच्चों को कितना अच्छे ढंग से सिखाया है, या NAAC 2020 को किस तरीके से डाइवर्ट किया है बच्चों के माइंड तक पहुंचने के लिए। ये हमको समझ में आएगा जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के परिणाम आएंगे। उसके बाद ही हमको ये समझ में आएगा कि बच्चे जो है वो कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजों पे जो आपको काम करना चाहिए। हम पहले जो शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से थोड़ा परे था। मुझे ऐसा लगता है कि तब हम जब पढ़ते थे ना, उस समय में हमको सवाल हल करने वाला एटीट्यूड सिखाया जाता था, परीक्षा देने वाला एटीट्यूड सिखाया जाता था। मुझे पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा तुमको फर्स्ट डिवीजन आना है, बेटा तुमको सेकंड डिवीजन आना है, परीक्षा में अच्छे नंबर्स आने चाहिए। आज भी हमारे बहुत सारे जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों को यही बोलते हैं, बेटा तुमको तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए।
कि अभी मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, मैं बोलता हूँ बेटा आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे नंबर्स आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं ना, तो जैसे मोंटी मैडम ने बोला, प्राथमिक चीज होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मतलब मानसिकता पे काम करना। मानसिकता पे कौन काम कर रहा है? कौन डिसाइड करेगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे अगर 3 सेकंड बाकी है तो वहां पे रुका जाएगा, 3 सेकंड बाकी रहता है, ग्रीन लाइट जली भी रहती है और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कौन डिसाइड करेगा कि मेरा बेटा एमबीबीएस करेगा और किडनी निकाल के बेचेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन पढ़ाएगा? उसको मोरल वैल्यूज नहीं दी जाएगी। वो अच्छा डॉक्टर तो बन जाएगा, अच्छा इंसान कब बनेगा? तो एनईपी 2020 में जब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया वैल्यू बेस्ड एजुकेशन 2.0, तो हमने अभ्युदय संस्थान करके एक मानव विकास चेतना मूल्य केंद्र है, उनके साथ एक एमओयू किया। अभी मैडम ने अपनी बात चालू की रिसर्च के साथ। हमने सारे रिसर्चर्स को नेसेसरी किया कि वो जाके 5 दिन का शिविर अटेंड करें, ताकि थोड़ा तो नैतिक मूल्यों के बारे में उनको उनके रिसर्च पेपर में समावेश हो सके। जब वो रिसर्च पेपर लिखे तो कुछ नैतिक मूल्य जो है वो भी तो सीखे, वो भी तो आवश्यक है। अभी वो रटिंग लर्निंग जो सिस्टम है उससे हटा के हमको अपने बच्चों को एक्टिव लर्नर्स बनाना है, मतलब सवाल पूछने वाला बनाना है। जैसा भी मंत्री मैडम बता रही थी, तो रटना नहीं है, उनको आपको ये सिखा रहा है कि आप सवाल पूछें। अभी मैडम ने बताया, सर ने भी बताया, प्रशांत सर ने, कि अगर आपके सामने पैनलिस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं तो आपको सवाल पूछने आना चाहिए। तो किसी के हाथ में भी कोई कॉपी नोटबुक देख नहीं रहा हो, आपके टीचर्स लोगों के हाथ में नोटबुक है, सबसे सीनियर मैडम बैठ के देखिए, मैं बात कर रहा हूँ तो मैडम उसको नोट डाउन कर रही है। How many of you are active learner? That is very important for a quality enhancement in education. That's really important. आप में जिज्ञासा की प्रवृत्ति कितनी है, लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आप कितना जिज्ञासु है। सर ने भी बोला, प्रशांत सर ने, कि आप गार्डन में जाइए, किसी प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए। ईपीएस ने बहुत अच्छा सिस्टम लागू किया है। एक जगह ईपीएस में जीपीएस था फुलवारी में, उन्होंने भी सेम सिस्टम लागू किया है। पौधा दे दिए बच्चों को, उसको ग्रोथ करे, उसके बारे में सारी चीजें जाने, बिकम एन एक्टिव लर्नर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रट्टे वाली लर्निंग से आपको क्या है, एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी लोगों के लिए एक ही तरीका लागू ये सही नहीं होता। मतलब हर एक जो बच्चा होता है वो एक स्पेसिफिकेशन, एक इंटेल के साथ धरती पे आया हुआ है, इसकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। आप सबके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा जो है वो ठीक ढंग से गति प्राप्त करेगा। सबके लिए अलग अलग तरीके हैं, सबको एनहांसमेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। Being a teacher, being a management, being an institution, you have to find out the ways, or how many ways you can make your proceedings further to the students, you can transform to the students. आपको ये तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम ये 20 बच्चे या 100 बच्चों को किस तरीके से संप्रेषित करें, ताकि हर एक बच्चा उतनी ही मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में आपके संप्रेषण को, आपकी तकनीकों को सीख सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो टीचर्स है ना वो बहुत थोड़े ओल्ड एज के हो गए। यंग लर्नर्स चाहिए, डिजिटली सशक्त चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम में से जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, पीपीटी बनाना नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं, हम ठीक से सीख नहीं पाते कि हमको पीपीटी कैसे बनाना है, हमको नहीं मालूम। आज के जो बच्चे हैं जिनको आप 2024 में ट्रेन करना चाहते हैं, आपका छोटा सा बच्चा आपसे ज्यादा डिजिटली सशक्त है, वो सोशल मीडिया के बारे में, मोबाइल के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, आप कम जानते हो। तो आपको भी डिजिटली बहुत सशक्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्वालिटी एनहांसमेंट इन एजुकेशन चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी तकनीकों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके जो लर्निंग है वो मजेदार बन सके। अभी सर बोल रहे थे कि अटेंडेंस की मात्रा बहुत कम हो गई है कॉलेजेस में, लोग एडमिशंस नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उनके दिमाग में ना यूपीएससी पीएससी हावी हो गया। मेरे पास बच्चे आते हैं और
मुझे बोलते हैं कि सर मैं प्राइवेट बीएससी करूंगा, बीए करूंगा और उड़ान आईएएस में जाके या किसी कोचिंग में जाके बीएससी की तैयारी करूंगा। They do not want even to come to classes. टीचर्स हमारे इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे जो है वो क्लास तक आ पाए अंदर। उनको विद्यालय इतना मजेदार, महाविद्यालय इतना मजेदार क्यों नहीं लग रहा है? क्या चीज की कमी पड़ रही है? तो इसी में मंथन करिए कि हम बच्चों का अटेंडेंस 75% से ज्यादा कैसे कर सके, बच्चों को किस तरीके से खींच सके, किस तरीके से अपने लर्निंग को मजेदार बना सके। स्मार्ट क्लासेस लाए। मैं एक स्कूल में गया था सर, पहुना करके एक कार्यक्रम चलाती है गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जो जिलाधीश महोदय है, कलेक्टर कार्यालय की ओर से पहुना करके कार्यक्रम होता है। मैंने विद्यालयों में गेस्ट बुलाए जाते हैं जो अपनी फील्ड में थोड़े सक्सेसफुल हो, जो मोटिवेट कर सके बच्चों को। तो मैं पोटिया करके एक गांव है पास में, वहां पे गया हुआ था और मैंने वहां जाके, आप जरूर विजिट करिए एक बार, मैं पवन सिंह सर का नंबर ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार स्कूल विजिट करिए। केवल 8वीं तक के बच्चे हैं वहां पे, 9वीं क्लास नहीं है सर वहां पे। उसको भारत का सबसे स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ स्कूल का अवार्ड मिला हुआ है, भारत का ना। मैं सिर्फ, मुझे ऐसा मौका मिला, अवसर मिला, सौभाग्य मिला कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया पहुंचा कार्यक्रम में, तो मैं गया। मैंने वहां उनके लर्निंग के तरीके देखे। 8वीं तक के बच्चों के लिए उन्होंने वहां पे थिएटर बना के रखा हुआ, सिनेमा हॉल, इनसाइड अ गवर्नमेंट स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट, सिनेमा हॉल। वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज जो दिखाई जाती है, इट वाज रियली फैबुलस, सरप्राइज टू सी दैट। स्मार्ट क्लासेस, और उनके जो एक्टिविटीज थी, जो लर्निंग एक्टिविटीज थी, जो बुक्स थे ना, उनके मॉडल्स अवेलेबल थे वहां पे क्लासेस में। उनको प्रैक्टिकली उन चीजों को पढ़ाया जाता था जिनको वो क्लास में पढ़ते हैं, शो करके, डिजिटली दिखा करके, उस तरीके से उनको पढ़ाया जाता था। तो 8वीं के बच्चों को, मैं एक बच्चे को, 5वीं के बच्चे को वहां पे सुना, उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में वो चीजें मुझे बताई जो मुझे ज्ञान नहीं, वो चीजें वो मुझे बता पा रहे थे। मैं बोला बच्चे आप लोग सीख कैसे रहे? तो उनके टीचर्स ही इतने इनोवेटिव तरीके से उनको लर्निंग दे रहे हैं कि मैं सरप्राइज था एकदम जाके। मतलब जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे चांद बनाते हैं सर, डिग्री 20 डिग्री, 22 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो दरवाजे पे उन्होंने बना के रखा हुआ है। बच्चा जब खोलता है ना, तो वो नीचे देखता है कि मैंने दरवाजे को 35 डिग्री खोला है, 45 डिग्री खोला है। एक 8वीं के बच्चे को कंपास में निकाल के चांद ऐसे रख के 35 डिग्री बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो दरवाजा खोलते ही सीख जाता है कि 35 डिग्री और 45 डिग्री। क्यों ये इनोवेशन हम नहीं ला पा रहे? हमारे पास क्यों नहीं है? हमको इसी को मंथन करके ट्रांसफॉर्म करना है बच्चे तक, ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाए। हैप्पीनेस करिकुलम में दिल्ली गया था, कुछ स्कूलों को विजिट किया, अभी भारत सरकार ने मुझे इनवाइट किया था, मैं दिल्ली गया था। वहां पे सब ये इनोवेटिव आइडियाज है, बच्चों को खुश रहना सिखाया जाता है। हम तो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं ना, बच्चों को खुश रहना भी सिखाइए, ये भी महत्वपूर्ण है। इतनी तनावपूर्ण जिंदगी में आप आगे जाके उनको झोंक देंगे। वेयर इज हैप्पीनेस करिकुलम इन योर सिलेबस? कहां पे है मोरल वैल्यूज की किताबें? ये टीचर है जो इनके संस्थान है, इंस्टीट्यूशन। You are the institution for giving happiness curriculum. Even all the, मतलब माँ बाप तो सिर्फ परवरिश कर रहे हैं, इंसान एक्चुअली में आपको बना रहे हैं। तो अच्छा इंसान बनाना भी क्वालिटी एजुकेशन का एक हिस्सा है। ये जो जी या कम हो रहा है ना, हमको टारगेट दिया जाता है कि 2047 तक आप इसको 50% करो, जिन पर मैडम ज्यादा कर जाएंगे, 50% करो। कैसे ये टारगेट अचीव होगा? बच्चा क्लास तक कैसे आएगा? ये आपको तय करना है। मेरा काम एग्जाम लेना है, टीचर का काम है बच्चे को खींच के यहाँ इंस्टीट्यूशन तक लाना। महत्वपूर्ण है। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि एक दिन के इस मंथन में ऐसी कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी कि जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, उनके यहाँ जी या जो है वो बढ़ेगा। और वो जो 65-63% बच्चे जो कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं या स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनके तक ये बात पहुंचेगी कि आज के मंथन में ये बात
निकल के आई कि उनको इस वजह से कॉलेज जाना है, इस वजह से स्कूल जाना है, उनका इंटरेस्ट आना चाहिए। तो मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के जितने वीडियोस हैं वो अपने वेबसाइट पे डालें, विश्वविद्यालय को भी अवेलेबल कराएं, 7 ईयर बनाए एक अच्छा, जिसको लाइब्रेरी में हम रखें, और वीडियोस को हम कोशिश करेंगे कि अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड करें ताकि लोग, हजारों लोग उसको देख सके और इससे इंस्पायर हो, आम बच्चे तक रहे। एक क्यूआर कोड बनाएं, अगर आप डिजिटली चाहते हैं क्यूआर कोड बनाएं जिसमें वो वीडियोस अपलोड हो, हम सारे कॉलेजेस को क्यूआर कोड भेज देंगे, वो लोग उसमें सूचना पटल में चिपका देंगे, बच्चे उसको क्लिक करके स्कैन करके वो वीडियोस को देख सके जो यहाँ मंथन में एनालिस्ट जो है वो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ करिए, कुछ नया इनोवेटिव, हर एक कॉलेज तक इस मंथन के बात को पहुंचाए, ऐसी कोशिश करें, ऐसा कोशिश करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं मैनेजमेंट कमेटी से कि ये सब इनोवेटिव आइडियाज को लागू करेंगे ताकि आम जनता के क्लास से बाहर भी जितने लोग इस चीज तक जिनकी पहुंच हो सके वहां तक पहुंचे, आखिरी बच्चे तक पहुंचे, उनका लाभ मिले। धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ थैंक यू सर आपके इतने सुंदर वचन के लिए और हेल्पफुल सजेशंस के लिए। हम चाहते हैं कि आप हर साल ऐसे ही यहाँ आए और आपके आशीर्वाद में मिलते रहें। Now, I want to request our chairperson, sir, Mr. Rupesh Kumar Gupta, sir, for vote of thanks. Very good morning to all the individuals present here. आज के विद्यार्थी सुदीप सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इस एक दिन के मंथन कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से मंथन हमारे बीच में हुआ उससे भी कि इस विषय को हम कैसे चुने, क्या क्या विषय रखें। डॉक्टर अंजना मैम ने ऑलरेडी डिटेल में बताया कि इस बार के थीम्स क्या हैं, सेशंस क्या हैं, कौन कौन स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने नैक के प्रोसेस को फेस किया और क्वालिटी इंस्टीट्यूट में बढ़ाने के लिए ऑलरेडी कई सालों से हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रयास करते थे, बट कहीं शायद वो रिकॉर्ड नहीं करते थे या बहुत व्यवस्थित रूप से उसको नहीं कर रहे थे। तो नैक की प्रक्रिया ने हमको क्वालिटी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज वे में समझने का मौका दिया और जैसा और भी वक्ताओं ने बोला कि आप उस क्वालिटी प्रोसेस को हम एक हार की तरह नहीं बल्कि एक सुविधा की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहते हैं। ऐसे सेमिनार वर्कशॉप के माध्यम से साल में एक आध दिन अपने जैसे एजुकेशनिस्ट, सीनियर एजुकेशनिस्ट, उनके साथ एक चर्चा करके, मंथन करके जो विषय जो साल भर में परेशान करते हैं, चिंतित करते हैं, उनके कुछ हल ढूंढना चाहते हैं। और अंत में कुलदीप सर ने जो बोला वही मेरा भी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर नहीं था, मैं इंजीनियरिंग करके ज्वाइन किया था, पर टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने उस जॉब को छोड़ करके टीचिंग लाइन को चुना और कई सालों तक कोचिंग में पढ़ाया, अपना खुद का कोचिंग रन किया। उसके बाद कॉलेज स्कूल स्टार्ट किए, छात्रों से जोड़ना, उन्हें कुछ देना, ये मेरा पैशन है और आज भी पढ़ाना मेरा सबसे पहला शौक है। मैं जब भी समय मिलता है विद्यार्थियों के साथ समय स्पेंड करता हूँ और सुनहरी चमकती आंखों में मुझे बड़े सारे सपने दिखाई देते हैं, तो उनको उनकी गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करना है, मुझे लगता है बड़ा एक्साइटिंग जर्नी है। पर वो चेहरे आने तो चाहिए क्लास में, वो क्यों नहीं आ रहे? कहाँ वो ये देख रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्लास में
शायद उनके करियर को, उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उनको इतना मददगार नहीं। मैंने खुद भी कोचिंग रन की है, बट मैं उनके अगेंस्ट में बोलता हूँ, क्यों उसको उड़ान जाने की जरूरत पड़ती है, या उसको जो भी IIT की क्लासेस हैं, MBBS की क्लासेस हैं, वहां जाने की आवश्यकता क्यों होती है? हम 8 घंटे के 6 घंटे के स्कूल में, कॉलेज में वो सब क्यों इंक्लूड नहीं कर पाते? क्यों हम बन गए हैं एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस से? कोई गाइडलाइन है? मुझे लगता है एज ए टीचर आपके पास बहुत फ्रीडम है, आपकी एक सोच है, और मुझे लगता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बैठा है वो आपसे बेहतर है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी ही क्लचेस से बाहर निकलना है, अपने सिलेबस को, अपने स्टूडेंट, उसके माहौल, उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ रीडिजाइन करना है, और जो भी उसको चाहिए वो मेरे क्लासरूम से मिलना चाहिए, मेरे संस्थान से मिलना चाहिए। संस्थान का मतलब केवल क्लासरूम नहीं है, एक बहुत बड़ा माहौल है, लाइब्रेरी है, लर्निंग है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो एक छोटा सा स्कूल और उसके क्रिएटिव टीचर्स उसको कर रहे हैं, उस क्रिएशन की संभावना है हर जगह। हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, हम दूसरों से सीख भी सकते हैं। प्रॉब्ली ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे वर्कशॉप्स, उसको लर्निंग का माध्यम भी होना चाहिए। अब मुझे तो एक आइडिया ये मिल गया है कि हम स्कूल फोकस भी इनका प्रोग्राम जरूर रखेंगे, जिसमें हम क्रॉस लर्निंग्स करें। ऐसे स्कूल जहाँ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, जहाँ अनुभव हो रहे हैं, हैप्पीनेस करिकुलम में पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूँ, बट एक्जैक्टली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या ऐसी गतिविधियां करें जो हमारे बच्चों को मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। इतना एक्सपोजर आज बच्चों को है, प्रॉब्ली हमको कुछ भी नहीं था। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, कोविड के बाद से तो हक से उसने मोबाइल ले लिया, और वो किस चीज से एक्सपोज नहीं, वो आज 2 शब्द टाइप करता है तो उसको पूरा दुनिया भर की नॉलेज मिल जाती है, जिससे वो गाइड भी होता है, मिसगाइड भी होता है। टीचर का रोल तो वहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ इतनी इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों है, तो वो क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ देना है, वो कंफ्यूज है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये तो दिन भर उसकी लाइफ में हो रहा है। तो ऐसे में हम देखते हैं बच्चे मानसिक तनाव भी बहुत फील करते हैं, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। वो छोटे से लाइफ में पता नहीं क्या क्या कर लेना चाहते हैं, वहाँ उनको समझाना भी पड़ता है कि अपनी लिमिटेशंस को कैसे समझना है, और अल्टीमेटली तो खुश रहना है। हैप्पीनेस करिकुलम कैसे उसको छोटी छोटी चीजों से इम्प्लीमेंट करें, बच्चों को मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। 1 दिन के इस मंथन में प्रॉब्ली ऐसे बहुत सारे विषय हम चर्चा करेंगे। इतने सारे जो एक्सपर्ट्स अनुभवी हमारे साथ हैं, सुनेंगे, प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने का दायित्व केवल स्टूडेंट्स का ही नहीं होगा, फैकल्टीज का भी होगा। जाने, पूछें, और इस फोरम को बहुत फॉर्मल ना रखें, इनफॉर्मल रखें, पार्टिसिपेट करें। एंड सर मैं एश्योर करता हूँ इस सेशन की लर्निंग्स को यहाँ बैठे 100-125 लोगों तक नहीं रखेंगे। ऑलरेडी इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स हो रही है, मुझे लगता है 100 से 150 और लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस सेशन को देख रहे हैं। हम इसकी रिकॉर्डिंग्स को अवेलेबल कराएंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। विद्यार्थी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कई बार विद्यार्थी क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम उसका रीजन ये भी है कि वो दूसरे भी कुछ ऐसे कामों में बिजी है जिनको वो आज छोड़ नहीं पाते। आज कितने विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स ले लेते हैं, और हम पीजी में वो एडमिशन जरूर लेते हैं लेकिन क्लास नहीं आ पाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सीखना नहीं चाहते। तो हमको शायद टीचिंग में कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है। प्रिज्म में हम लोग रिकॉर्डेड क्लासरूम की तरफ मूव कर रहे हैं, बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन क्लास ऑनलाइन रखते हैं। ऑफलाइन क्लासेस को हम सैटरडे संडे भी रखते हैं कई बार, ताकि
बच्चे जब फ्री है, जब अवेलेबल है, तब हम उनको दे पाए। तो वहाँ हम कुछ लिमिटेशन से अपने आप को छुटकारा दिलाते हैं कि नहीं, मैं संडे को नहीं आ सकता, नहीं मैं संडे को आ जाऊंगा, मंडे छुट्टी ले लूंगा, जब मुझे आवश्यकता होगी तब ले लूंगा। तो हाँ, मैनेजमेंट को भी फ्लेक्सिबल होना होता है। और ये सब नए नए प्रयोग है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम शायद यंगस्टर्स को जो आवश्यकता है, जो उनकी नीड है, वो दे पाएंगे, उस फॉर्मेट में दे पाएंगे और उनको नॉलेज के साथ जोड़ पाएंगे। तो इस सेशंस को हम डेफिनेटली ऑनलाइन कन्वर्ट करेंगे और हमारा प्लान भी था कि इस पूरे मंथन का एक सोवेनियर हम निकालेंगे। 2 दिन की एक आउटपुट रिपोर्ट हम बनाएंगे, जिसमें क्या हमारा डिस्कस था, क्या क्या डिस्कशन हमने किए, उसका एक 2-3 पन्ने की समरी जरूर बनाएंगे। जितने पेपर्स प्रोजेक्ट होंगे उनको हम सोवेनियर का हिस्सा बनाएंगे और उसको यूनिवर्सिटी में और बाकी संस्थानों के साथ शेयर करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। टीम प्रिज्म डेफिनेटली मेहनत काफी कर रही थी और करेगी थी, और आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा तो और अच्छे मंथन हम सालों साल करेंगे और एजुकेशन कम्युनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा अमृत उसमें से निकालते हैं। आप सभी का आज यहाँ उपस्थित होने के लिए, आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के सेशंस को हम बहुत क्यूरियोसिटी से इंतजार कर रहे हैं, सुनेंगे आप सभी को स्टेज पर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable words. Thank you once again for that warm welcome and for being here with us today. We are thrilled to have such an amazing group gathered together. Let's make this a memorable experience as we continue with the program. Now I want to request all our dignitaries and special guests to please take the front row. Let us move to the next segment, that is theme 1 of today's Manthan. The topic of session 1 is New Direction in Higher Education. For session 1, I would like to invite Dr. Sandeep Kumar Padi sir as a keynote speaker. He is Associate Professor in Guru Ghansdas Vishwavidyalaya and he will be online with us.
I want to say few words about sir. Dr. Samit Kumar Pari sir is Associate Professor in Department of Education School of Studies, Guru Ghasidas Central University, Glasgow. He holds PhD in Education. He is also MPhil in Education, and he holds multiple postgraduate degrees including MA in Education, MSc in Chemistry, and PGT MA. He published so many books and research papers in international and national journals. He is also a program designer of BA MA program, integrated MPhil PhD program in education, and also he is a program designer of PhD in education. He has done so many research projects. He has professional membership of All India Association of Educational Research, Indian Association of Teacher Educator, Bharatiya Shiksha Shodh Sansthan. टेक्निकल इश्यूज के कारण वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं जब तक वो हमसे जुड़ते हैं मैं पैनलिस्ट को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करती हूँ I'm excited to learn more about our panelist background and interests. Before diving in, I want to get a sense of what drives you and your work. Looking forward to explaining your profile and finding ways we can connect or collaborate. I will start with Dr. Jagdeep Kaur Saluja ma'am. Dr. Jagdeep Kaur Saluja ma'am is an experienced professor of physics in Government BYT College with over 35 years of teaching in UG and PG. She holds PhD degrees in physics. She has published 157 research papers in national journal and 125 in international journals. She has attended international and national conferences also. She has published so many books. Under her guidance, 10 students were awarded PhD. She had worked with so many research projects also. She has life memberships of Luminescence Society of India. Ma'am, please join us on stage. Our next panelist is Dr. Shabana ma'am. Dr. Shabana is an assistant professor in Department of Education, Kalyan PG College, with experience of 20 years in educating teaching. She holds PhD in education and she has done postgraduate in MSc Botany, MA and PG diploma in psychological guidance and counseling. She is also NET qualified. She achieved gold medal in MA and MSc. She is also a receiver of gold medal in All India of NCC course. She published so many research papers in national and international journals. Please join us, ma'am. Most welcome, ma'am. Next, Dr. Anupama Sthana, ma'am. Dr. Anupama Sthana, ma'am, was a professor and head of Department of Chemistry, DST FIS. Chemistry, DST FIS sponsored Government BYT College and currently she is the principal of Government College Risali. She has 38 years of teaching experience. She is awarded with PhD in chemistry. So many research projects are done by Dr. Sthana. She has published so many research papers in national and international journals. Most welcome, ma'am. And last, Dr. Prabha Al ma'am. She is the head of Department BA, Vilai, Vetri College, with 20 years of enriching experience in education. She holds multiple postgraduate degrees, including MCom, MA in Sociology, MA in History. She has qualified NET in Education and earned PhD in Education from Pandit Ravi Shankar University, Raipur. Her academic excellence has been recognized through various esteemed awards, including the University Gold Medal. She has been facilitated by the Rotary Club, BNS, Shiv Shakti Foundation, and honored with the Best Teacher Award by former Chief Minister Shivpesh Patel. As a researcher, she has published 9 research papers and guided teams to research scholars, in which 2 have submitted their reviews. Most welcome, ma'am. To honor our panelists, now I would like to request Rekha ma'am
To honor them with gift, memento, and award. Okay, the gift for something. Dr. Shalana. Dr. Anupama Hanagan. Dr. Prabha Akhurut ma'am. Most welcome ma'am. After this, I would like to introduce sub-themes of theme number 1, that is, new grading system for NAAC and the role of NIRF, financial planning and management in higher education, holistic multidisciplinary education, transforming higher education and skilling towards Bharat. We have very talented and intellectual member between us, Dr. Jagjeet Kaur Saluja ma'am, who will be moderator of theme number 1. Let's begin with today's discussion. Hello. आज के इस मंथन कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों और टीचर्स का स्वागत है। हमारे बीच एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रजिस्ट्रार कुलदीप जी, एक्सपर्ट प्रशांत श्रीवास्तव जी और इस महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स और सभी का स्वागत करती हूँ। में और दो चीजें हुई हैं।
पहले NAAC में हम ग्रेडिंग सिस्टम में चले जाते थे सीधे। अभी जो NAAC की मंशा है कि ग्रेडिंग सिस्टम देने से कुछ कॉलेजेस में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में इस अलग तरह की कॉम्पिटिशन से स्टार्ट हो गया है, उसे रोकने के लिए और वास्तव में इंस्टीट्यूट्स को क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए, जज करने के लिए NIRF जो नेशनल रैंकिंग देता है इंडिया का इंस्टीट्यूट, उसमें कुछ उन्होंने फेरबदल किया है कि ग्रेडिंग सिस्टम। उस ग्रेडिंग सिस्टम में सारी चीजें और आज का एजुकेशन सिस्टम में जो NEP है, क्योंकि हमें NIRF को, NEP को, NAAC को एक ही फ्रेम से देखना होगा और सभी ये कह रहे हैं कि हमें सब चीजों को स्टूडेंट सेंट्रिक करना है। अभी तक हम मन में चलते थे टीचर्स अपने हिसाब से पढ़ाना लिखाना या जो भी डिसीजंस लेते थे वो टीचर्स लेते थे या इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स मैनेजमेंट जिस तरह से भी होता था। NIRF ने जो एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जो जब आप कभी NIRF रैंकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चंस एंड सेम हर एक चीज नए पैरामीटर्स में डाल दिए। पहले हम 7 क्राइटेरिया में जाते थे, हम 10 एट्रीब्यूट्स में जा रहे हैं और आज की जो जरूरत है स्टूडेंट्स को चैलेंज, जैसे सभी ने अपनी चिंता जाहिर की है कि महाविद्यालय में या स्कूल्स में तो फिर भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है, कॉलेजेस में स्टूडेंट की अटेंडेंस एडमिशन के लिए बहुत जोर रहेगा। हमारा कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है और शायद आवागमन के साधन वहाँ आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए शायद अट्रैक्शन स्टूडेंट्स को कॉलेज में आने का, तो एडमिशन के समय बहुत जोर रहता है उनका। जब 2000 सीट है हमारे पास तो हमारे पास 20-22 हजार एप्लीकेशन है, तो हमें ये लगता है कि पूरे 22,000 में से हम 2000 को एडमिट कर पाएंगे और फिर भी हम देखते हैं कि कुछ एक सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन होने के बावजूद स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन नहीं ले रहे। तो चैलेंज तो है सब इंस्टीट्यूट के पास सबसे पहले अटेंड करने का स्टूडेंट्स को। दूसरी ये चीजें जैसे अभी भी मंथन हुआ है वो लगभग मंथन के जैसा ही डिस्कशन का विषय है कि स्टूडेंट क्लासरूम में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक बहुत जो आ भी रहे हैं वो भी, क्योंकि मैं फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है तो इंटरेक्ट करे जब मैं किसी चीज को पढ़ा रही हूँ। तो इंटरेक्टिव सेशंस तो टीचर्स लेते ही हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में बिना इंटरेक्शन के पॉसिबल ही नहीं होता है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि स्टूडेंट के हाथ में कॉपी पेन नहीं है। विगत 10 वर्षों से स्टूडेंट क्लासरूम में भी ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें लिखना जरूरी है बिल्कुल नहीं लिखा है। आप देखेंगे, आप लोग एजुकेशन वाले हैं, आपके साथ कुछ साइकोलॉजी वाले टीचर्स भी जुड़े हुए होंगे। ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स में क्यों बनी रहती है कि क्यों वो पेन और कॉपी उठा के नहीं लिखता है। मैं डेलीगेशन करती हूँ शुरू से लेके आखिरी तक, बच्चा उसकी फोटो क्लिक कर लेता है, लिखना चाहता ही नहीं। दूसरा चैलेंज मैंने इसी का रिजल्ट मैंने ये देखा कि जब ऑटोनोमस कंट्रोलर में मैंने उनकी कॉपियां देखी तो 3 घंटे या मैं विजिट पे जा रही हूँ, इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूँ, राउंड ले रही हूँ, तो बच्चा 3 घंटे लिख ही नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लिखना, उनको क्वेश्चंस के आंसर मालूम है लेकिन उनका हाथ उतना स्पीड से नहीं लिख पा रहा। तो क्यों? इसमें हमें बहुत जरूरत है काम करने की। और सभी टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि जब आप अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, उनको कोशिश करिए कि उनके हाथ का पेन चले, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेन और माइंड को एक साथ चलता है। जो बच्चा लिखता है उसको याद भी जल्दी होता है। बच्चा आलस कर रहा है लिखने का क्योंकि उसको सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है, उसे हमारी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें उसे खींचना है अपनी साइकोलॉजी से, अपने डिस्कशन से, अपने लेक्चर से, अपने इनोवेशन से, या किस तरह से ताकि वो मेरी क्लास में आए। मैं उसको ऐसी कौन सी नई बात बताना चाहती हूँ जो गूगल पे या सोशल मीडिया से या कहीं से भी नहीं जान सकता।
दूसरी और चीज है जो चैलेंज है हमारे सामने स्टूडेंट्स का, वो है कि साइकोलॉजी की जो मैंने बात की, आप सबने अनुभव किया होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसका काउंसलर उसका स्टूडेंट फ्रेंड भी है। आप घर में भी देखेंगे कि आपकी बात को नहीं सुनेगा। यदि आपका खुद का बच्चा है और आप जानते हैं आप बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत अच्छी चीजें आप बता सकते हैं उसको, तो वो हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन वही बात है कि उसका दोस्त बोलता है, उसको सुनता है। तो हमें जरूरत है उसके ऐसे दोस्तों को सिलेक्ट करने की और उसके उन दोस्तों को मोटिवेट करने की जो बात हम उनसे कहना चाहते हैं उनके दोस्तों के थ्रू। आप देखेंगे कि उनके काउंसलर उनके दोस्त होते हैं। कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स में हम शायद ऐसा पढ़ाते हैं क्योंकि हम ये सोच के आते हैं। अभी मेरे सामने बड़ा चैलेंज था कोरोना के बाद आने वाले विद्यार्थी, हमारे सामने चैलेंज था कि हम, क्योंकि उनकी सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हुई और वो बच्चे जो है वो किताब से देखकर या कॉपी से देखकर ही आंसर करते रहे, तो उन्होंने उस सब्जेक्ट को सीखा ही नहीं। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो सब चीजें सीख कर आ रहा है, हम तो आगे का ही पढ़ा रहे हैं। जो पीछे का कुछ जानते ही नहीं है तो आगे आप कुछ पढ़ाते रहिए, वो आपको पीछे सोता है। तो आ भी जाता है फिजिकली क्लास में, वो बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि वो तो जान ही नहीं रहा है कि पीछे क्या है। जब एक स्टूडेंट को काउंटिंग नहीं आएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, तो आप आगे भी वो ऑपरेशंस कैसे कर पाएंगे। तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें स्कूल से बेहतर विद्यार्थी चाहिए। बाकी कॉलेज में क्योंकि मैं अपना एक लेवल है पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड है, मैं उससे नीचे नहीं जा सकती, मैं उसको हर चीज नहीं बता सकती। तो ये चैलेंज तो हमारे सामने है, लेकिन हमको पीछे पढ़ाते पढ़ाते हमको कोर्स ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक टाइम बाउंड है, हमको कोर्सेस उसमें खत्म करने होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा ये स्टूडेंट्स जो है वो डर के मारे खड़ा होकर बोलता भी नहीं कि मैडम ये कहते पढ़ा ही नहीं है जिसको मैं आगे पढ़ा रही हूँ। या दूसरी चीज ये होती है कि आज मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और कल उसी से रिलेटेड आगे पढ़ना है, बच्चा पहले दिन आया दूसरे दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन आया, मैं तो कोर्स आगे बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स की रेगुलरिटी और सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। अभी एक बार सौभाग्य मिला मुझे आईआईटी भिलाई में जाने का, वहाँ पर 20 स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स जर्मन से आए थे, पूरा एक समूह आया था, ग्रुप आया था। तो मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में कैसा चल रहा है एजुकेशन का सिस्टम, क्योंकि मैं जानना चाहती थी क्या ये चीजें हमारे ही देश में हो रही है कि सब जगह हो रही है। तो उनका, क्योंकि वो लोग सब विभाग अपनी बात रखते हैं, वो सामने हमारे यहाँ थोड़ा बहुत विभाग हमारे स्टूडेंट भी लेते हैं, तो वहाँ वो विभाग अपनी बात रखते हैं, अपने टीचर्स से भी वो फ्रेंडली बात करते हैं। उनके गाइड भी आए थे साथ में जो आईआईटी में रिसर्च कर रहे थे और उनका लंबा 15 दिन का वर्कशॉप था जिसमें सब आए थे। तो उसने सीधा 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हम लंच में थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। उनका सीधा ये कहना था कि वी डोंट वांट टीचर्स, हमें टीचर्स की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपकी क्लास फिर पढ़ते कैसे हैं आप? तो बोले एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। मेरे पास बहुत अच्छा एक टीचर है जो क्लासरूम में अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसका यूट्यूब पे कोई चैनल है ना, किसी ऑनलाइन उसने कुछ अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया, और उस स्टूडेंट को मालूम है कि ये वाली क्लास होने वाली है और इसके लिए टॉपिक स्टूडेंट उसको गूगल में सर्च कर लेता है और उसको बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं। उसे लेक्चर सुनना है तो वो उसको ऑनलाइन सुनता है। तो फिर आप एडमिशन क्यों लेते हैं, मैंने ये पूछा। यदि आप क्लासरूम में नहीं आना चाहते तो आप एडमिशन क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम एडमिशन वहाँ के एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट होने के लिए और चीजें जानने के लिए लेते हैं, न कि क्लासरूम टीचिंग। हमें एक मोटिवेटर की और एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो हमें सही रास्ता दिखाए कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। तो मुझे लगा कि ये चैलेंज हमारे सामने भी आ रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वास्तव में स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत नहीं होगी, वो हर चीज को ऑनलाइन कर लेंगे। क्योंकि आज पहले थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ करता था साइंस का, साइंस के विद्यार्थी डरते थे कि साइंस के टीचर से कि वो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल्स होते हैं और प्रैक्टिकल्स की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट पढ़ सकते हैं या हमें मार्क्स कम मिल सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि साइंस के स्टूडेंट्स की भी पहले की अपेक्षा बहुत कम अटेंडेंस होती है क्लासरूम में और इवन प्रैक्टिकल्स में। उसका भी मैंने देखा कि क्यों वो कर रहे हैं, यूट्यूब पे सारे एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, प्रॉब्लम करके चेक कराते हैं, उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जहाँ तक हम उन 10 एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, उन 10 एट्रीब्यूट्स में पहले आप लोगों का फर्स्ट जो होता है पहले भी था करिकुलम डिफाइंस का, सिलेबस अभी एनईपी का जो स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी चीजें हमने स्टूडेंट्स से की है। जिस बात की चिंता हमें है उस चिंता को भी एनईपी ने लागू किया है और आपने देखा होगा सबके पास फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें आईएएस भी इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी न्यूटन को जानते हैं लेकिन हमारे खुद के जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं या गणितज्ञ भी है उनको नहीं जानते। उनका हमारे जो भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है या सामाजिक इकोनॉमिक्स है या कुछ भी सब्जेक्ट्स है जिनकी उनके कंट्रीब्यूशन है और जहाँ से शुरुआत हुई है हमारे विद्यार्थी नहीं जानते। तो उसको लागू किया गया है और उसको सब सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। दीप सर बता रहे थे, इवन मैडम भी बात कर रही थी कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज बहुत कम है। घर में भी वो क्योंकि उसके पास बहुत सारा सोशल मीडिया है, उसके पहले भी हुआ करता था, अभी भी टीवी और टीवी में ये सब चैनल्स इसमें हुआ करते हैं ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों घर में भी नहीं कर सकते। आप उसको दूर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें हमारा नियंत्रण जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो। हमारी देख रेख में यदि उस चीज को इस्तेमाल करना है तो डिसाइड नहीं होना है। तो जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो सारी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत सारी चीजें हम उनसे सीख भी रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को एक लिमिट तक यूज करना ये हमारे कंट्रोल में जरूर होना चाहिए। हर किसी स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, चलता फिरता लैपटॉप है उसके हाथ, तो हर कुछ कर सकता है। तो उसमें जो नियंत्रण की जरूरत है कि आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे देश जो हैं मोबाइल को बैन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जरूरत है उस चीज की, लेकिन हमेशा उसकी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं हम अपने इंस्टीट्यूट्स को समय तक बैन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ता है। बाकी समय वो जो भी करे, लेकिन कुछ समय नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि उनकी जो एज है ट्रांजिशन एज है, कॉलेज में जब आते हैं वो स्कूल से पास करके आते हैं, फर्स्ट ईयर में डिसिप्लिन इतना उनका बढ़ जाता है कि स्कूल में ऊपर डिसिप्लिन कॉलेज में आते हैं तो टीचर समझ जाते हैं कि ये बड़ा हो गया बच्चा, इसको डांटने की हमें जरूरत नहीं है, इसे जबरदस्ती पढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमें उसको रोकना जरूरी है। ये हमारा दायित्व है कि हम उसे इस गलत बात को कर रहा है उसे रोके, और हमारा दायित्व है कि हम उसे रोके क्यों कर रहा है। हो सकता है उससे हमें गलत जवाब भी मिले, लेकिन हमें अपनी मैच्योरिटी का, अपने एक्सपीरियंस का फायदा लेते हुए उसे समझाना है कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं और बहुत अच्छे से आप पढ़िए। निश्चित रूप से पढ़ाई ही से उसको जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि बार-बार एनईपी में भी और बार-बार हमारे पीएम भी कहते हैं कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट किया स्किल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि सारे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर आप देख रहे हैं, आप यदि पीडीएफ खोलते हैं हायर एजुकेशन का तो उसमें पूरे 8 सेमेस्टर का सिलेबस है हर सब्जेक्ट, और हर सेमेस्टर में उसको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी डाले गए हैं, और बच्चे की रुचि जिसमें है उस स्किल को पढ़ सकता है। तो जरूरी नहीं है उसको कि वो फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स के स्किल पढ़े, उसे लगता है कि मुझे कंप्यूटर की स्किल में जाना है तो कंप्यूटर का स्किल ले सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्किल ले सकता है, चाहे तो आर्ट्स के किसी स्किल प्रोग्राम में जा सकता है। तो सभी सिलेबस में हालांकि अभी भी उसमें सुधार
ने भी स्किल ओरिएंटेशन के लिए एमएसएमई से बात की है, लघु उद्योग निगम है जो, ताकि वास्तव में स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें और कुछ चीज बना पाए, कुछ कर सके, वो अपना कम से कम एक रोजगार उपलब्ध करा सके अपने लिए। और उनसे बात कर यही कहा जा रहा है कि आप अपने स्किल का यूज करिए, जो क्वालिटी आप में आप उसका यूज करिए, और आप नौकरी पर निर्भर मत रहिए। आप ऐसी चीज बना दीजिए जिससे इनोवेशन हो जाए, कोई नई चीज आ जाए और वो आगे बढ़ सके, स्टूडेंट अपना ही रोजगार इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बहुत जोर दिया है। रिसर्च की जहां तक बात है, सब बच्चे रिसर्च नहीं करते हैं। एनईवी में आप लोगों ने देखा होगा दो तरह का प्रोग्राम, उसमें एक रिसर्च ओरिएंटेड है 7th और 8th सेमेस्टर के, और एक रिसर्च नहीं है, उसमें सिर्फ ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और 5वें साल के कोई जिक्र नहीं है एनईवी में। अभी भी जो कल चेयरपर्सन यूजीसी के जगदीश कुमार जी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के बाद ही स्टूडेंट जो है वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। अगर वो पीएचडी कर लेता है और वो किसी भी इंस्टीट्यूट में नेट क्लियर है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो जो दो तरह का कार्यक्रम है उसमें रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम ही स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चीजों को एनईपी को समझे। 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम जो है उसमें चाहे तो निकल सकता है, लेकिन फिर वो बीएड एमएड जो भी 2 साल शायद चलेगा, 2 साल या 3 साल, और उसके बाद वो इंटीग्रेटेड कोर्स में ही आता है। नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में ऐसी बच्चा है हायर एजुकेशन की इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, इंटीग्रेटेड बीकॉम बीएड चलेंगे। तो अभी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनका 3 इयर्स में यदि डिग्री हो रहा है, वो चाहते हैं कि हम 3 इयर्स भी निकल जाए, 4 साल में कर जाए। हालांकि उनके पास 4 साल आने के सभी स्टूडेंट के पास ऑप्शन है। ऐसे बच्चे जिनका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा होगा 3 साल मिलाकर, वो रिसर्च वाले 7th और 8th सेमेस्टर को ले सकता है, उसको कंपल्सरी नहीं है। इस तरह से किसी को भी भ्रमित नहीं होना है कि 7.5 से ऊपर जिसका सीजीपीए है उसको कंपल्सरी रिसर्च में जाना है, उसको नहीं करना है प्रोफेसर, तो उसको जरूरत नहीं है। वो 7th और 8th सेमेस्टर सिंपल वाला ले सकता है जिसमें ऑनर्स की डिग्री से मिलेगी। उसमें 7th और 8th में वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जाएगा। बाकी तीनों साल को जैसा पुराने में ईयरली पढ़ रहा था वैसे ही कॉम्बिनेशन में अभी भी पढ़ रहा है। उसके साथ वो लैंग्वेज के पेपर पढ़ रहा है और एनवायरमेंटल के पेपर पढ़ रहा है जैसे पहले पढ़ता था। तो 3 साल में चाहे तो निकल सकता है। उसमें ये भी है अभी जैसे मेरे पास कुछ केसेस आ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पढ़ लिया उसने और उसके बाद अचानक उसको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है और वो बोल रहा है कि मैं 2 साल की कोर्स करके वहां से आना चाहता हूँ। तो उसे उस समय सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट उसको हम दे देंगे कि उसने 2 साल पढ़ लिया है। 2 साल पढ़ने के बाद यदि आता है 2 सेमेस्टर पढ़ लिया है और 2 साल के बाद यदि वो आता है तो बोलता है कि मुझे रेगुलर एडमिशन चाहिए, तो मैं रेगुलर एडमिशन 3rd सेमेस्टर में दूंगी। तो स्टूडेंट यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ लेता है और वो बीच में फिर कहीं जाना चाहता है तो उसे हम डिप्लोमा दे देंगे। और 2 साल के बाद फिर आ जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो विदेश चला गया हो, चाहे वो किसी दूसरी जगह चला गया है, चाहे उसने रोजगार घर की मजबूरी में से कुछ रोजगार करना पड़ गया हो, तो फिर 2 साल के बाद आता है तो उसमें फिर से 5th सेमेस्टर में ये उसका पुराना वाला जो है वो सब चीज कैरी फॉरवर्ड। तो ये सारी चीजें एनईपी ने बच्चों के सहूलियत के लिए बनाई है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे सामने तो स्टूडेंट्स को किसी वजह से निकलना पड़ता है और बाद में फिर वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट नहीं आ पाता। तो ये चीजें अब एनईपी में लागू हो चुकी है। और रिसर्च वाला जो पार्ट है वो निश्चित रूप से बच्चों को पहले ही सोचना होगा कि हम रिसर्च वाले में जा रहे हैं मतलब मुझे प्रोफेसर ही बनना है, ये तो जबरदस्ती रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। तो रिसर्च में भी हम बार-बार कहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो इंटरनेशनल लेवल का पेपर्स है या हमारे टीचर्स की पेपर्स है, हमारी क्वालिटी है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं कल देख रही थी इस पर्पस में हमें एक्सेस मिला है स्कॉपस का, तो हमारे इंस्टीट्यूट का स्कॉपस आप लोग भी देख सकते हैं एक्सेस नहीं मिलता है। पिछले फिगर जब नेट हुआ था तो 15 था, अभी कल ही मैंने देखा 20 हो गया। एक बहुत बड़े प्राउड की बात है कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स का भी स्कॉपस जो होता है वो कम हो गया है।
इसका मतलब है कि हम हायर लेवल की रिसर्च कर रहे हैं और सीनियर स्टाफ वहाँ पर है, कुछ जूनियर स्टाफ मोटिवेट होकर हमारे कामों को देखकर हमारे साथ जुड़ रहा है और रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च डेडिकेशन से करना होता है। ऐसा नहीं कि आए और आधा घंटा बैठे हुए चले गए। फुल टाइम जब बच्चे काम करते हैं निश्चित रूप से उनको फल भी मिलता है, थोड़ा सा धीरे काम होता है, लेकिन आउटकम नहीं होता है। निश्चित रूप से उसको 4 या 5 साल लगते ही हैं, उतना उसको पेशेंस रखना होता है और एक बार इंटरनेशनल जर्नल के साइंस के टीचर जो है वो आसानी से पब्लिश कर पाते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोगों के माइंड में इन 3 फैक्टर्स की कोई बात आती है तो ये बातें की आज रिसर्च की और ट्रेनिंग की। यदि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हो तो शायद मैं और कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक्सपर्ट करना भी है, मुझे भी बातें बोलना चाहिए। और शबाना मैडम आप उनसे भी पूछ लीजिए, फिर आपके कोई क्वेश्चंस हो, इंटरेक्शन हो, क्योंकि कोई भी सेशन इंटरेक्टिव जब होता है और आपकी जो क्वेरीज हैं तो सकता है कुछ बातें आगे बता पाऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों की तरफ से, खासकर स्टूडेंट्स की तरफ से। और स्टूडेंट शायद एजुकेशन के हैं, मेरा फील्ड एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो निश्चित रूप से मुझे बता पाऊंगी, या आप लोग टीचर्स में भी कुछ पूछना चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। और अब मैं माइक मैडम को स्थान देती हूँ और कुछ बातें आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले प्रिज्म इंस्टीट्यूट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माय स्पेशल थैंक्स टू ऑल टीम मेंबर्स। मेरे साथ रिस्पेक्टेड कुलदीप सर है, प्रशांत श्रीवास्तव सर है, गुप्ता सर है, परमिता मैडम, फातिमा, पूरी टीम है और बहुत टैलेंटेड फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरे पैनलिस्ट साथी हैं। मैं पहले एक क्वालिटी एजुकेशन जो हम कहीं पीछे हो रहे हैं स्टेट में, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कैसे हम उसको बढ़ाएं। तो सबसे पहले नेक की बात अगर हम करते हैं तो नेक का जो एक विजन है हमारे स्टूडेंट्स को कैसे हम डेवलप करें, नेशनल लेवल पे वो स्टैंड कर पाए या ग्लोबल चैलेंजेस मीट कर पाए। इंस्टीट्यूट्स 2 कैटेगरी में रखे गए हैं, आइदर एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड। अभी जो राधा कृष्णन कमेटी है उसने 2 कैटेगरीज के इंस्टीट्यूट को रखने का फाइनल किया है, फाइनल हो चुका है इस फाइनल रिपोर्ट। 10 एट्रीब्यूट्स पे काम करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट्स। ओवरऑल 7 क्राइटेरियाज हो ही थे, अब 10 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें जो प्रोसेस हमारी रहेगी वो हम क्या दे रहे हैं, हमारा क्या इनपुट है, क्या हमारी प्रोसेस है और क्या आउटपुट है। मींस हम जो स्टूडेंट्स के फेवर में इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, क्या हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग, लर्निंग एंड इनोवेशन। तो हमारा क्या इनपुट है और हमारी क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस अगर हम टीचिंग, लर्निंग और इनोवेशन की बात करें जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी, हम कैसे बच्चों को क्लासरूम में लाएं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। बहुत छोटी चीजें मैं जैसे कभी कभी देखती हूँ यूट्यूब चैनल से या कहीं पर वीडियोस आते हैं, बहुत मिडिल स्कूल की टीचर्स हैं, बहुत क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं। हम सब देखते हैं जैसे डांस टीचर है तो वो खुद बच्चों के साथ परफॉर्म कर रही है, आपने भी देखा होगा, खुद परफॉर्म कर रही है और बच्चे साथ में उनकी कर रहे हैं। भले छोटे बच्चे स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल के हैं या मिडिल स्कूल के हैं, तो बच्चों को एक इंटरेस्ट आता है कि मेरी टीचर कर रही है साथ में, तो वो खुद उस चीज को एंजॉय करते हैं और जल्दी लर्न करते हैं। हमारे लिए क्लास होता है जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, कैसे हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करें। तो उसमें एक हमारा सभी इंस्टीट्यूशन करते हैं
हमने बच्चों को ग्रुप्स में बांटा है हाउसेस में। हाउस एक्टिविटीज रेगुलरली होती है, जैसे हमने नाम दिया चंद्रशेखर आजाद हाउस, मतलब एक या साइंटिस्ट के नाम पे या किसी हमारे ऐसे लीडर जो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, उनपे हम हाउसेस के नाम दें और उस हाउस में टीचर्स फैकल्टी भी रहे, तो एक बच्चों में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है कि मैं इस हाउस में हूँ, मेरे को अपने हाउस को ऊपर ले जाना है। तो एक एक्टिविटी ये है और बच्चों में एक चैलेंज आता है, भाई हम सैटरडे एक्टिविटी करेंगे या जब हमें टाइम है, तो आज हम एक ओपन फोरम देंगे, बच्चों का एक टास्क दे दिया कि इस बारे में आपको बोलना है, चाहे वो सोशल साइंसेस का हो टॉपिक या साइंस का हो या कोई करंट टॉपिक हो, और हाउस एक्टिविटी में इंटर हाउस कंपटीशन। तो हमने जो अभी ऑब्जर्व किया हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत मुश्किल कि 7000 स्टूडेंट से हाउ वी कैन हम कैसे करेंगे हम इसको, पर हमने एक चैलेंज लिया हमारे फैकल्टी मेंबर्स से। इसमें जूनियर फैकल्टी मेंबर्स जो है उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उनमें भी एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ कि मेरा हाउस आगे आना चाहिए। तो बच्चों को मोटिवेट किया। हम लोग देखते हैं लगातार उस हाउस के बच्चे अगर क्रिकेट में जा रहे हैं तो टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है कि बच्चा आपको आगे जाना है, तो अपने आप बच्चों में डेवलप होता है इंटरेस्ट और वो आगे बढ़ते हैं। हम एक और चीज देखते हैं, जैसे बच्चे कहीं हम लोग जाते हैं पिकनिक या इंडस्ट्रियल विजिट, सभी इंस्टीट्यूट ले जाते हैं या फील्ड वर्क में ले जाते हैं, उस दिन अटेंडेंस पूरी होती है, बच्चे अपने आप आ जाते हैं, पर क्लासरूम में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अभी थोड़ी सी कम हो रही है। एक जो टीचिंग का मेथड जिसमें हर स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है जैसे कुलदीप सर ने बताया कि छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हम जरूर बच्चों को दिखाएं जो उनको मोटिवेट करें, कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशन मिले कि मुझे इस तरह केस स्टडी थोड़ी सी, जैसे हमने एक उनको पार्ट दे दिया, कुछ टास्क दे दिया, थ्रू केस स्टडी और थ्रू स्टोरी टेलिंग। मैं एक जनरल बहुत छोटी चीज बता रही हूँ, कोई शॉर्ट स्टोरीज हमने एक बता दी और इसमें ओपन डिस्कशन करना है कि इस स्टोरी से आपने क्या लर्न किया। तो बच्चों में बहुत स्टूडेंट्स में एक इंटरेस्ट आता है कि ये स्टोरी मेरे लिए बहुत अच्छी, मुझे इसको ध्यान करना और उसे मैडम के साथ इन्वॉल्व होना है। तो स्टोरी टेलिंग से हम बच्चों को एक इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा प्लेट होकर, जैसे केमिस्ट्री की बात करूं मैं, बच्चों को टास्क दिया कि तुम हाइड्रोजन बनोगे, 2 बच्चे हाइड्रोजन बनेंगे, एक बच्चा ऑक्सीजन बनेगा, तो कैसे बॉन्डिंग होगी। मेरी फ्रेंडशिप है हाइड्रोजन के साथ, तो मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, मेरी फ्रेंडशिप है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कहीं अट्रैक्शन है और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन से के साथ फ्रेंड है। तो कैसे वो हाइड्रोजन वाटर बनाना है, एक छोटा सा प्ले हम कर सकते हैं। बहुत इजी टास्क होते हैं ये और बच्चे बहुत इंटरेस्ट देते हैं। ये हम लोग ने देखा हमारे कॉलेज में कुछ थ्रू मॉडल्स, थ्रू प्ले और क्विज कॉम्पिटिशंस, इससे आगे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूट इस बारे में आगे आ सकते हैं। एक हमारे लिए चैलेंज होता है कि हमारे बच्चे स्लो लर्नर्स, कुछ पैसिव हैं जैसे सर ने कहा था और कुछ एक्टिव हैं। बहुत एक्टिव हैं, वो जल्दी से बता देते हैं कि फिर हाथ रेज करेंगे कि आंसर और लिखना रॉन्ग है, पर उनमें कॉन्फिडेंस है बच्चों में। पर स्लो लर्नर्स जहाँ पर हमारे साथ में बच्चे, तो उनके लिए हमें स्पेशल प्लेटफॉर्म, बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज टीचर स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना, तो जो हमारी क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो उनका इन्वॉल्व करना उनके लिए हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो इस तरह का एक हम बच्चों के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करें, चाहे वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें, चाहे फील्ड वर्क में ले जाएं, या हमारे बहुत आसान है कि हम उनको बाहर एक इजीली ले जा सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बहुत
करते हैं और करते होंगे और करेंगे। बच्चों को कहीं भी रिमोट एरिया में ले जाए कि यहाँ की पानी की एनालिसिस करनी है, आपने हर जगह का पानी का सैंपल ले लिया, उसकी एनालिसिस करनी है, तो वहाँ बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको फ्री वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कराता है जहाँ बच्चे जाके सीख सकते हैं। वहाँ हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बच्चे सीखते हैं, सॉइल एनालिसिस है, वाटर एनालिसिस है, टेक्निकल स्किल्स कैसे उनकी डेवलप हो, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप दी जाती है। ये तो बात हुई हमारे बच्चों की। हमारी फैकल्टी, अब फैकल्टी को कैसे, कुछ जैसे हम सीनियर्स हैं, हम इतने आईसीटी कंफर्टेबल नहीं है, जैसे जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हमारे बहुत स्मार्ट है, स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं आईसीटी टेक्निक्स यूज करने में। तो आईसीटी टेक्निक्स का यूज जो हम, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि चॉक एंड डस्टर टीचिंग वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, सबसे अच्छी है, क्योंकि हम फेस टू फेस पर जहाँ पे हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो हम इनकी कुछ ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में टीचिंग, हाइब्रिड मोड भी है, अभी टीचिंग कर सकते हैं, लर्निंग मेथड डेवलप कर सकते हैं। जैसे लैब में बच्चों का आना, कभी कभी बहुत सेमेस्टर शॉर्ट होता है तो बच्चे लैब में हम उनका टाइम नहीं दे पाते, तो बहुत इजी उसमें सॉल्यूशन होता है कि दो फैकल्टी मेंबर्स या जो भी आप करना चाहें, फैकल्टी मेंबर्स उस प्रैक्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेट करें, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे किसी दूसरी सब्जेक्ट का हो, साइंस या आर्ट्स, वो डिमॉन्स्ट्रेट करें और उसका एक क्लिप बना लें, वीडियो बना लें, बच्चे शाम हेलो, स्टूडेंट्स इवनिंग में या जब फ्री हैं उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो से प्रैक्टिकल कैसे हमको परफॉर्म करना है वो बहुत इजीली सीख सकते हैं। आजकल एक बहुत जो लेटेस्ट कंसेप्ट चल रहा है वो इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ रेप्यूट, बहुत अच्छे जैसे आईआईटीज है, एनआईटीज है या कोई और दूसरे इंस्टीट्यूट्स है, उनके साथ कोलैबोरेशन से वर्चुअल लैब्स, थ्रू वर्चुअल लैब्स बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। तो वर्चुअल लैब्स का जो कंसेप्ट है वो आजकल बच्चों में वो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और बहुत ज्यादा इजी मेथड है बच्चों के लर्न करने का। तो हम कभी कभी सब बच्चों को लेने क्लास में और वर्चुअल लैब उनको मतलब उसमें ज्वाइन कराएं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे और इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं उसमें, तो हम कर सकते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अभी जो हमारे लिए चैलेंज है, कैसे हम बच्चों को ऑल राउंड, कैसे उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग करें, पर्सनैलिटी डेवलप करें। तो चैलेंज बच्चों के लिए सबसे पहला काम है कि हमको उनको प्लेटफॉर्म देना है। टीचर्स के साथ साथ टीचर एक मेंटर होगा। अभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मेंटरिंग सिस्टम हम समझते हैं कि हम केवल मेंटर हैं और बच्चे हमारे साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो ग्रुप टास्क हमारे लिए, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना, टास्क देना, ये हमारे लिए एक ये भी चैलेंज होता है और बच्चों में इंटरेस्ट उनके बीच इनकलकेट होता है, इंटरेस्ट हमको डेवलप करना है। अब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात, तो नेक्स्ट उसमें आएंगे। मेरे साथ मैडम भी है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, जो इंस्टीट्यूट्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम ले तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूजीसी से अभी प्रोजेक्ट्स कम हमको सैंक्शन हो रहे हैं इंस्टीट्यूट्स को,
माइनर मेजर रिसर्च पार्ट अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट्स है, टू प्रोजेक्ट्स, और हमारे जो स्टेट में है वो है सी कॉस्ट। तो सी कॉस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स को, बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को भी वो बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, सी कॉस्ट, जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत मिनी प्रोजेक्ट्स भी है उसमें, 50,000 से 5 लाख तक की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सी कॉस्ट से। बस उस प्रोजेक्ट में हमको जस्टिफिकेशन देना है या ऐसा काम बताना है, ऐसा काम करना है जो हमारी सोसाइटी को वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो, या हमारी सोसाइटी को वो प्रोजेक्ट मतलब हमारा आउटपुट क्या है सोसाइटी के फेवर में। बहुत आसानी से सी कॉस्ट के फंड्स जनरेट किए जा सकते हैं। बहुत छोटी स्कीम्स है, जैसे साइंस डे सेलिब्रेशन है, उसमें कुछ थीम होती है नेशनल साइंस डे की, वहां से हमको फंड्स मिलते हैं। बच्चों को बहुत उसमें एक एटमॉस्फेयर मिलता है, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है जब साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, सी कॉस्ट सपोर्ट करता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, पीएम उषा की स्कीम है, तो वो सभी इंस्टीट्यूट्स को पीएम उषा स्कीम में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो या रिसर्च फंड हो, उसमें पीएम उषा स्कीम से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट्स को सबको सपोर्ट मिला है, जिससे प्लानिंग कमीशन, स्टेट प्लानिंग कमीशन है, वहां से हमको सपोर्ट मिलता है और वहां से हम सपोर्ट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में कहूँ मैं, तो स्टूडेंट्स जो पीजी कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं, जिनको जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, उनको अप टू पीएचडी लेवल, वहां तक गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम है, वहां से सपोर्ट मिलता है, फंड्स मिलते हैं। रिसर्च करने के लिए भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम थोड़ा सा फैकल्टी मेंबर्स और इंस्टीट्यूट मिलके उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। समर इंस्टीट्यूट्स, समर इंटर्नशिप को बहुत एंटरटेन करते हैं इंस्टीट्यूट्स, जैसे आईआईटीज है, एनआईटीज है, टीएस है, सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लैब्स हैं, जो बच्चों के लिए समर इंटर्नशिप कैंप्स लगाते हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इन कैंप्स में जाते हैं और वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट से फंडिंग है, अगर बच्चे अप्लाई करें, और या बच्चे खुद कभी-कभी मैनेजमेंट से, इंस्टीट्यूट से कुछ फंड्स लेंगे, क्योंकि उनको रहने की फैसिलिटी मिलती है किसी अच्छे फैकल्टी के साथ, लर्नेड फैकल्टी के साथ काम करने का बच्चों को एक मौका मिलता है। बाहर में जा सकते हैं, कैट में जा सकते हैं, या किसी नेशनल आईआईटीज में, सब में जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमको इसमें वर्कआउट करना है कि हम कैसे बच्चों को समर इंटर्नशिप कैंप्स में उनको एक सपोर्ट करें। फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम और कहते हैं, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम सभी फेस कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। हमारे पास कंटीजेंसी फंड, कंज्यूमेबल्स या कंटीजेंसी फंड्स हमारे पास कम होते हैं, वो शायद इंस्टीट्यूट को खुद ही थोड़े जनरेट करने होते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जो काफी इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जो चलते हैं, उससे हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। जो फीस स्ट्रक्चर है उससे भी सपोर्ट मिल सकता है। इसमें रिसर्च फंड बच्चों के लिए, जो मैं बोलना चाह रही थी, बच्चे अगर नेट क्वालिफाई करते हैं, मैडम ने भी जैसे बताया, तो वो जेआरएफ के लिए इंटाइटल्ड है। एक स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप फोकस करिए कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है या मुझे इस स्किल में आना है। बहुत क्लियर आपका विजन होना चाहिए कि मेरे को आइदर एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कोई सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है, या मुझे नेट क्वालिफाई करना है। अगर आपने नेट क्वालिफाई करा तो आपके पास फंड्स है, आपके पास कहना चाहिए खुद काम करने के लिए, आपको घर से नहीं लेना है, इंस्टीट्यूट से नहीं लेना है, आप केपेबल हैं अपने रिसर्च को सोसाइटी के लिए आगे बढ़ाने के लिए।
मैं ऐसा चाहूंगी मेरे साथ मैडम है वो ज्वाइन करे शबाना मैम। थैंक यू मैम। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम। आस्थाना मैम से मेरा एक क्वेश्चन था जी। जी मैडम। मैम आपने फंडिंग के बारे में बात की, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी गाइडेंशिप मिली हमको। मैम बीइंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सपोज अ मेंटर, मैं कुछ बच्चों को लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो लीनियर वे में मुझे किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा? मैडम अगर आप बच्चों को ज्वाइन कराना चाहती हैं तो एक बहुत, अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो आप उस प्रोजेक्ट को आप एज मेंटर सबमिट करिए सी कॉस्ट आप सपोर्ट करेंगी तो वो प्रोजेक्ट आपके नाम से सेक्शन होगा, सोसाइटी के फेवर में प्रोजेक्ट होना चाहिए, पर उसमें आपके स्टूडेंट साथ में आपके ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Respected dignitaries, my gurus, my dear colleagues, my students, very good morning to all of you. A very good morning to all of you. I am Dr. Shabana, Assistant Professor from Kalyan College. मुझे NEAC में एक कॉन्सेप्ट आया है, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इस पर बोलने के लिए कहा गया है, एक्सप्रेस माय व्यूज। और यहाँ जो ऑडियंस में जो बच्चे बैठे हैं, आई थिंक बीएड के साथ साथ स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, आईटी के बच्चे हैं, तो आई होप कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी। तो मैं कुछ 5 मिनट का मेरा एक प्रेजेंटेशन है, आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू। बच्चों देखिए, एलपीजी के आने के बाद, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद 1991 में जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद हमारी कंट्री में इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ। नेचर ऑफ जॉब बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में आई। तो जो हमारा सिलेबस था, कोर्स सिलेबस था, वो इंडस्ट्री बेस्ड हो गया। इंडस्ट्रीज में आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको मैनेजर्स चाहिए, आपको ऑडिटर्स चाहिए, आपको लॉयर्स चाहिए। तो आप देखेंगे इन कोर्सेज की पूरी फ्लडिंग थी उस समय, और अभी भी है। अभी आईटी सेक्टर की फ्लडिंग है। तो जो बच्चा बीएससी, बीए, बीकॉम कर रहा है, आप मुझे बताइए, आप बच्चों में से कोई भी खड़ा होके ये कोर्सेज करने के बाद आपको क्या जॉब मिल पाएगा? Is it easy to get a job for you after doing BSc, BA, BCom or MSc in any field or MA in any field? It's become very difficult. It has become very difficult. तो NEP का 2020 में कस्तूरी रंजन जी ने जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इसमें, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी आपने हमारे गेस्ट को सुना था कि मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा जा रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ में ज्यादा जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक मैन का, ह्यूमन बीइंग का वैल्यू सिस्टम प्लस उसका लाइवलीहुड, जिससे वो पैसे अर्न कर सकता है। बिकॉज अगर आप पैसे अर्न नहीं कर सकते, आप घर नहीं चला सकते, आपकी पढ़ाई बेकार हो जाती है, और एक अच्छा इंसान बने रहना कि काफी नहीं है। यू हैव टू अर्न समथिंग एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी आल्सो। तो ये बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अप्रोच NEP में था, दैट इज होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब आप देखेंगे NEP में जो था कॉन्सेप्ट होलिस्टिक अप्रोच का, कि आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, आपका सामाजिक ग्रोथ होना चाहिए, आपका फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए, आपके इमोशनल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट आपको अच्छा आना चाहिए, आपके एस्थेटिक, एथिकल, मॉरल कैपेसिटी सब डेवलप होना चाहिए। ये एक हिस्सा है हमारे एजुकेशन का।
दूसरा है आपका ब्रॉडर नॉलेज बेस में देखिए, नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट के अगर ज्ञान होने से आप अपना बहुत ही एक अच्छा बैलेंस लाइफ नहीं जी पाएंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताइए किस तरह का आप स्किल अभी डेवलप कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि आप कुछ अर्न कर पाओगे आगे जाके। आईटी के बच्चे हैं, आईटीआई के बच्चे, आप लोग किस तरह के स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं? यू आर डूइंग वेरी गुड कोर्स। देखिए जो बच्चा नॉर्मल डिग्री कोर्स ले रहा है और आप लोग जो ले रहे हो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भाई बिकॉज आप में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आप उस स्किल डेवलपमेंट से अपना एक स्टार्टअप शुरू कर पाओगे, आप लोगों को जॉब मिल सकती है वेरी इजीली, आप कहीं पे अप्लाई करते हो। वही ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे के लिए इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो एनईपी में ये कहा गया कि हम फोकस करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे भी। नाउ जो एम था एनईपी का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, वो लोग कैसे अचीव करना चाह रहे थे कि हम करिकुलम को फ्लेक्सिबल कर देते हैं। अब आप देखेंगे एनईपी में जो साइंस का बच्चा है वो कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, कॉमर्स का जो बच्चा है वो साइंस का कोई एक डिसिप्लिन लेके पढ़ेगा, आर्ट्स वाला या ह्यूमैनिटीज वाला जो बच्चा है वो साइंस का कॉमर्स का कोई भी एक डिसिप्लिन एक लेके पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे, उसका यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर कर सको, इसके लिए मिंगल किया गया है, इंटरडिसिप्लिन को मिंगल कर दिया गया है। अब आप देखेंगे जो एमर्जिंग सेक्टर्स है, ये स्लाइड मैंने पीआईबी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से निकाला है, जिसमें ये थोड़ा ये बताया गया है कि आजकल जो है जॉब जो है वो काफी सेक्टर्स में अवेलेबल है। अगर आप इन स्लाइड्स में हेडिंग्स देखेंगे जॉब अवेलेबिलिटी इन मेजर सेक्टर्स, तो आपको फील होगा कि जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो वो डाउटफुल क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है माइंड में कि आई एम एबल टू अर्न माय लाइवलीहुड और नॉट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें आज की डेट में पीआईबी एज पर पीआईबी रिपोर्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 3.5 मिलियन जॉब्स आर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसमें की जो स्किल रिक्वायरमेंट है जैसे कि आपको डाटा एनालिसिस करना आना चाहिए, एल्गोरिथम डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन स्मार्ट सिटीज में कई तरह की स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। देन यू सी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, इसमें 10 मिलियन जॉब्स हैं, लेकिन ये जो सेक्टर है इसके टच में हमारे बच्चे नहीं है, स्पेशली ऐसे स्टेट्स के जिनका बोलना चाहिए ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है दैट इज रूरल बेस्ड स्टेट, राइट। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स में देखिए वर्कफोर्स चाहिए जो जीनोमिक्स जानता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जानता है, जो वैक्सीन डेवलप कर सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखिए उसमें जो स्किल्स चाहिए, सैटेलाइट डिजाइन करना, फिर स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, रीयूजेबल स्पेस एसेट्स। फिर अगर साइबर सिक्योरिटी में देखें तो भी बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें कि प्रोफेशनल स्किल्स इन एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक तरह के फील्ड्स की जरूरत है, 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, डिमांड एक्सपर्टाइज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मॉडलिंग, मटेरियल साइंस, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। अगर आप इन मेजर सेक्टर्स को देखें तो आपको लगेगा कि ये सब तो हमारे बच्चे टच में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एनईपी में जो इंटरडिसिप्लिनरी किया गया है उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कि आपको एक ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि कई तरह के स्वयं पोर्टल्स हैं जैसे कि स्वयं है जिसमें कि मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन दीस टॉपिक्स। तो ये बच्चों के फ्यूचर में ध्यान में रख के किया गया है कि केवल बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीए करने के बाद बच्चा सोचेगा कि मेरे पास स्किल तो डेवलप हुआ नहीं, मैं ज्ञान लेकर क्या करूंगा, कुछ स्किल चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही अच्छा एवेन्यू ओपन किया है कि आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं इन फील्ड्स में। तो मेन फोकस इज स्किल कोर्सेज, वो स्किल्ड वर्क फोर्स की जो जरूरत है उसको पूरा करने की। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मेजर इश्यूज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो क्या था
और अभी एनईपी में इसको कितने अच्छे ढंग से टैकल करने की कोशिश किया गया है। जॉब एनवायरनमेंट वन ऑफ द मेजर इश्यूज, मतलब अभी आप देखोगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ गए, लेकिन हमारा जो स्टडी पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, जो हम एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जब बच्चा निकलता है वो क्या कहीं पे एम्प्लॉयड होने के लायक है कि नहीं है। जैसे मुझे याद है पिछले साल न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, एप्पल के सीईओ ने कहा था कि हमारे कंपनीज में आपके पास वर्किंग फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन दे आर वी कैन नॉट एम्प्लॉय देम बिकॉज़ उनमें स्किल भी नहीं है, राइट। तो जो जॉब का नेचर जो अभी मार्केट में है और जो बच्चों को हम दे रहे हैं उसके बीच का गैप कम करना इज वन ऑफ द मेन मोटो ऑफ एनईपी। तो एनईपी में जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आया है वो इस गैप को कम करने के लिए ही दे आर ट्राइंग टू फोकस। स्किल गैप जैसे मैंने अभी बताया, इनएडिक्वेसी इन रिसर्च के बारे में स्थाना मैडम और सत्य मैडम ने बहुत ही अच्छा बताया किस तरह के फाइनेंसेस अवेलेबल है। आप अपना स्टार्टअप को एक स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में करिए, बच्चों को आपको एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू देगा फॉर योर अर्निंग पार्ट आल्सो। नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कफोर्स इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। देखिए एनईपी में वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट इज एकेडमिक जो हमारा है और इंडस्ट्री है, वो दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड जो है जिस तरह का उनको वर्कफोर्स चाहिए वो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता है। केवल डिग्री लेने से और थ्योरेटिकल नॉलेज होने से आप इंडस्ट्री नीड को पूरा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एनईपी में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत जो कोर्सेज हैं, नॉट ओनली दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉम्बिनेशन का, उसके अलावा भी यू हैव टू गो फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उसी तरह का स्किल डेवलपमेंट इन मल्टीपल फील्ड्स आर अवेलेबल अगर आप देखेंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज वी लैक स्टाफ। सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको स्वयं से करने बोल रहा है, बट हायर एजुकेशन में नहीं करने का इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी लैक स्टाफ, वर्किंग स्टाफ जो फील्ड की एक्सपर्टाइज है। और जैसे कि एक मेजर प्रॉब्लम सर पेरेंट्स से मैंने सुना कि बच्चे क्लास में भी आना चाहते हैं, और यहाँ के चेयरमैन सर ने बहुत ही अच्छा फंड रेज किया क्योंकि उनके करियर वो एक वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि उनको करियर के लिए बहुत अच्छा बैकअप नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा है। दैट्स व्हाई एनईपी इसको कर्टेल करने के लिए आप बच्चों के लिए एवेन्यू खुला, इसको यूटिलाइज करिए। Now, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में। मल्टीडिसिप्लिनरी आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है क्या है। तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप, मेंटरशिप कर सकते हैं, कई तरह के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, प्रोवाइडिंग डाइवर्स कोर्सेज है जैसे हेल्थ केयर, आईटी, ग्रीन एनर्जी, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, सब के सर्टिफिकेट कोर्सेज आर अवेलेबल और आपको उसको अडॉप्ट करके, लेकिन आपको उसमें फीस पे करना पड़ेगा। कॉलेज इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉर दैट, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं। Entrepreneurship and innovation, implementing government scheme like PM internship scheme, Swiggy scheme, देखिए सब बहुत अच्छा schemes है जो कि एनईपी कोशिश कर रही है सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी आपने बजट में सुना होगा कि 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज पे इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, ये जो मौका मिल रहा है बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए, दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड सम स्किल्स, और वो स्किल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दोस सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि एनईपी का एक अहम हिस्सा है। Then women specific skills are there, जैसे working with women hostel and colleges and collaboration with industries। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जो जॉब और रिसोर्सेज जो आपके स्टेट में या आउट स्टेट में अगर जाते हैं दैट्स डिफरेंट थिंग। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस तरह का नेचर ऑफ जॉब यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर ये छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री तो एग्रो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट के अनुसार आप स्किल डेवलपमेंट करिए, और इस स्किल डेवलपमेंट के लिए एनईपी में जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब आप आर्ट्स के बच्चे भी हैं तो आप एग्रीकल्चर फील्ड का कोई सर्टिफिकेट कोर्स लीजिए और इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को सक्षम बनाइए। दिस इज द मेन फोकस ऑफ एनईपी कि आप अपना लाइफ और लाइवलीहुड दोनों में बैलेंस बनाकर चल सकें। एंड थैंक यू सो मच।
Prism College for giving me this opportunity to express my views, and thank you, my views. Any queries if you have, you can ask us. Hello. जो मेन थीम है न्यू डायरेक्शन इन हायर एजुकेशन, उसमें सब थीम है एक विकसित भारत अपग्रेड 2047। विकसित भारत शब्द से ही अपन समझ सकते हैं डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं अपन। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये एक विजन है कि जब 100 इयर्स कंप्लीट होगा अपने इंडिपेंडेंस का, तब तक ये जो सफर है हमारा, अभी हम जो भारतीय हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐड होते हैं, तो 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री में आ जाएंगे। तो उनका ये जो मिशन है सिर्फ उनके सिर्फ बताने से नहीं होगा, अपन सबको ज्वाइन करना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है। अब भारत जैसा कंट्री 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री क्या मानेगा? तो अब लगता है कि नहीं, शायद ना हो पाए, फिर बहुत मुश्किल रहेगा। ये एक सपने की तरह है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो सपना है इसको अपने को पूरा करना है, और इसमें जो मुख्य भूमिका रहेगी और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो टीचर्स का और स्टूडेंट का बिल्कुल। अपन बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअस, जब से सेशन स्टार्ट हुआ तब से हम सुन रहे हैं कि बच्चे क्लास में नहीं आ रहे। ये जो ड्रॉप आउट रेट है इसको अपने को गिराना है। ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है? क्यों बच्चे आधे क्लास अपने स्कूल में जब आते हैं तो आधे क्लास तक जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं? क्या रीजन? जैसे कि मैंने एग्जांपल बताना चाहूंगी, हमारे के बच्चे आते हैं, उनका कहना है कि मैडम रिजल्ट तक तो हम आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जब यहाँ बेचने का समय आएगा तो हो सकता है हम ना। मैंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, हम तुम्हें टेस्ट रखेंगे, आना पड़ेगा बेटा तुमको। मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज टीचर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, टीचर्स मॉरल वैल्यू कैसे डेवलप कर सकता है? अभी जो काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है इसमें मेरे 2 बच्चे अक्षर पात्र वाले स्कूल में पढ़ाते, तो उनका काम है कि इवनिंग आवर्स में उन लोग अपना जो भी बच्चे लोग को नॉलेज प्रोवाइड करना, मॉरल वैल्यूज को वो प्रोवाइड करने जाते हैं। तो उनका आदत है, उनके पास एक टीका लगाते हैं बच्चे को, और जब भी आते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं। 2-3 दिन आए, उसके बाद में बोले कि मैडम हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम जैसे ही आपको देखते हैं और विश करते तो बाकी लोग हमारी तरफ अलग सा देखते हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, पहले मैं बोलना शुरू करती हूँ, तुमको देख के मैं पहले बोलूंगी, तुमको कुछ नहीं बोलेगा, बाद में सब तुमको ज्वाइन करेंगे। जो मॉरल वैल्यू तुम शाम को देते बेटा मैं तेरी क्लास लगाने को तैयार हूँ, तू बस एक बार नाम बोल ले, फ्राइडे 1 आवर का क्लास मैं मेरे दोनों स्टूडेंट को देने को तैयार हूँ। वो बच्चे उसके लिए एग्री किए, और अभी जब हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, टाइम टेबल में हमने मॉरल वैल्यूज के लिए एक क्लास रख लिया है। कुलदीप सर ने बताया कि पहुना करके जो प्रोग्राम है उसमें वो गए थे और उनको बहुत अच्छा लगा उस स्कूल में जाके। मैं बता दूं कि उस प्रोग्राम के चलते मेरा एक स्टूडेंट बीएड का कलेश्वर, अगर फेसबुक कोई देखता है मैथिली का तो उसमें देखिएगा कलेश्वर का मैंने अलग से डाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर ने जो बताया वो चीज मेरे बच्चे ने अचीव किया है, और वो जब अचीव किया लास्ट ईयर पलटा मैडम से भी उसको सम्मानित किया गया है कॉलेज में बुला के। हमारी कोशिश रहेगी, हर टीचर की कोशिश रहना चाहिए, जैसे कि अभी समीक्षा मैडम ने बोला कि जो जर्मन के स्टूडेंट्स उन्होंने कहा वी आर नॉट कनेक्टिंग विद आवर टीचर्स। व्हाई? हमको कनेक्ट करना है अपने बच्चों के साथ में, कैसे कनेक्ट करें वो हम ही जानते हैं। टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बच्चे को उस हिसाब से मोल्ड करें जिससे कि नेशन का डेवलपमेंट हो। अब विकसित भारत की बात करें
तो ऐसे कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाला है, हमको उसका नॉलेज नहीं है। जैसे कि जनधन योजना हुआ, समग्र शिक्षा अभियान हुआ, सर्व शिक्षा अभियान हुआ जो उसके अंतर्गत आता है। अपने शिक्षा को हमको हर जगह तक पहुंचाना है। अगर एक महिला पढ़ेगी तो घर में जाके 2 व्यक्तियों को और पढ़ाएगी। फीमेल एजुकेशन को हमको ज्यादा महत्व देना है। हमको हर वो स्ट्रेटेजी अपनाना है जिससे कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे, जिससे कि भारतीय जो है वो शिक्षित हो सके। अपना ये एक और एग्जांपल मैं दूंगी। विकसित भारत में एक और चीज को बहुत इंपॉर्टेंस मिला है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और को इम्पोर्टेंट मिला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस प्रकार से उपयोग करें और कितने अच्छे तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उसका पॉपुलेशन। अपन उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन जिस दिन अपन उस पॉपुलेशन को पॉजिटिवली ले लें तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन अपन बहुत पावरफुल नेशन के साथ खड़े रहेंगे और हमारा नाम भी उसी में आएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब मैडम लोग बता रहे थे एग्रीकल्चर की बात आई, एग्रीकल्चर में भी अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े। विकसित भारत में उस एक पॉइंट को भी रखा गया है कि जब हम कृषि की बात करें तो केमिकल्स को छोड़ के हम न्यू टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें, लेकिन वो ऑर्गेनिक रहे। और ऑनलाइन कोर्सेज को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं विकसित भारत के अंतर्गत। जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, वैसे तो हमें उन्हें पहुंचाना है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे कारण से जिससे कि वो स्कूल तक नहीं आ रहे, तो उनको ऑनलाइन लर्निंग की भी सुविधा, डिस्टेंस लर्निंग की भी सुविधा हम दें। उसके लिए हमारा नेटवर्क अच्छा होना जरूरी है। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कही गई है विकसित भारत में, और ट्रांसपोर्टेशन की बात हो और अगर हम वंदे भारत और नमो भारत की बात ना करें तो ये गलत होगा। तो भारत अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 2047 तक अगर उसको हमको डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करना है तो मेरा मानना है कि टीचर और स्टूडेंट मिलकर वो एक ब्रिज तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा पाएंगे। थैंक यू। हाँ, क्राइटेरिया 4 रखा गया था पीएम मोदी जी के अनुसार, जिसमें एक मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन का था, एक एजुकेशन का था, और एक 2 और है सर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एक कम्युनिकेशन का। I have one question. यहाँ उपस्थित जितने भी एमिनेंट स्पीकर हैं, विकसित भारत कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे जानना चाहती हूँ, इनिशियल वे में हम शिक्षक को कहते हैं वो मेंटोर की भूमिका अदा करते हैं, वो कैसे विकसित हुए? शिक्षक कैसे विकसित हुए? शिक्षक के पास बहुत बड़ा एरिया होता है विकसित होने का। एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, यूजीसी के द्वारा भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, एकेडमिक कॉलेजेस के द्वारा होते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे अभी भी हम लोग की बात हुई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीनियर स्टाफ जो है वो पीपीटी नहीं बना पाता है, डिजिटली चीजें नहीं कर पाता है, ये गलत है। जिसके मन में इच्छा है वो टीचर भी कर पा रहा है उसको, चाहे कितना भी सीनियर हो। जरूरत है हमें पूरा टाइम टेक्नोलॉजी में जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी को हम टीचर्स में अडॉप्ट करें। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं वो हमें समझना है, उसके लिए तो टीचर का विकास तो हमेशा होता है, समय समय पर बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो भी पूरे विश्व में, क्योंकि अब हमारे लिए कोई भी कहाँ पर क्या हो रहा है ये हमें जानकारी है। पहले हमारे पास जानकारी का अभाव होता था, हम पेपर पे डिपेंडेंट होते थे, न्यूज़ पे डिपेंडेंट होते थे, लेकिन आज हम जो भी चाहे, आप गूगल में टाइप करिए, आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी। आप किसमें डेवलप होना चाहते हैं, आप कैसे विकसित होना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी यंग जो स्टूडेंट है, चाहे यंगस्टर है, जो भी है, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे वो नहीं पढ़ रहा, उसे बेसिक नॉलेज तो जरूर हमारी गवर्नमेंट दे रही है। उनकी अपनी चुनौतियां हैं, जैसे मैडम ने कहा कि हमारे कॉलेज में भी होता है कि जब अभी दिवाली के समय बच्चे अपने घर जाते हैं तो लौट के वो जल्दी वापस नहीं आते हैं, जबकि दिवाली की वैकेशन 4 दिन में खत्म हो जाती है। उनके पास चैलेंज है कि उन्हें वहां पर अपने खेत से धान कटाई करना है,
सामान को बेचना है वो भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम समय समय पे अपने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से जब बात करते हैं तो हम अपनी बात जरूर रखते हैं कि आप ऐसे समय में वेकेशन दीजिए जब बच्चा वास्तव में कॉलेज नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपकी 100% अटेंडेंस इसलिए भी नहीं हो रही है कि वो बच्चा गांव में जाता है, अपनी खेती कटाई करता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसके पास अर्निंग सोर्सेस कम है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसमें यही है कि हर जो यंग है वो बेरोजगार नहीं रहे, चाहे वो सेल्फ मेड हो, चाहे वो मीडिया से एंटरप्रेन्योरशिप करे, चाहे वो किसी भी तरह का काम करे, हर हाथ में रोजगार हो। तो ये जब तक हर स्टूडेंट के और हर बच्चे के और हर एक नागरिक के है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो विकास मुश्किल है, देश का भी मुश्किल होगा। और किसी को डेवलपमेंट की बात हो रही है, टीचर्स कैसे अपडेट करेंगे। तो अभी जो हमारी पॉलिसी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहें या हमारी अभी जो जरूरत आवश्यकता है, जो स्वयं के कोर्सेज हो रहे हैं, तो टीचर्स फैकल्टी खुद उसको ज्वाइन करे एज मेंटर, वो मेंटर रहेगा, फैकल्टी मेंबर कोर्स वो भी करेगा, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और बच्चा टीचर भी एग्जाम देगा, स्टूडेंट्स भी एग्जाम देंगे, साथ में उनको एक टास्क मिलती है। नॉर्मली वेडनेसडे को एक टास्क मिलती है, जैसे साइंस के सब्जेक्ट देंगे या हम टेक्निकल सब्जेक्ट देखें, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इस फील्ड में ज्यादा हमको और सीखना है, फैकल्टी को मैं बात कर रही हूँ, तो वो स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन होगा, वो भी एग्जाम देगा। हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स अपने को अपडेट करने के लिए रिसेंटली 3 और 4 फैकल्टीज ने हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही, वो स्वयं के कोर्सेज में स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन करना, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, चाहे वो मटेरियल साइंस हो या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और सभी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स ने भी कोर्स ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ। तो हम इस तरह से भी अपने को खुद को डेवलप कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इट्स मेंट टू जनरेट अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर आवर कंट्री। अगर आप पीआईबी का रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने कुछ इनपुट्स लिया था, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है गवर्नमेंट नीड्स टू फॉर्म 78.5 लाख जॉब्स इन नॉन फॉर्मल सेक्टर। अभी हमारा बच्चा बीएससी बीएड ये सब करके निकल रहा है, आप खुद सोचिए हमारे बच्चे में स्किल है क्या एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। उनको कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए फोकस करने के लिए विकसित भारत का कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है और एनईपी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ले रहे, बच्चे को स्वयं पोर्टल से कहीं से भी ऑनलाइन कोर्सेज से सर्टिफिकेट्स कोर्सेज को कर सकता है, जिससे उसको जॉब मिल सकता है। बट द पॉइंट इज, जैसा आपने कहा, टीचर को क्या करना है। अब बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है ये कि एनईपी में तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे आर फेलिंग इन दिस टू इंप्लीमेंट एनईपी। कई स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, स्पेशली साउथ स्टेट्स में कुछ स्टेट्स हैं। तो क्यों मना कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्ड टीचर्स। तो इतने सारे जो डिग्री कोर्सेज आप बोल रहे हैं ऑनलाइन, बच्चे का ले लो, उसके स्किल डेवलपमेंट करो, वो भी टीच दें। वो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, खुद ही जाके रजिस्टर कर रहा है, फीस पे कर रहा है। तो आईटीईपी का जो कॉन्सेप्ट अभी एनसीटी ने लेकर आई है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें बहुत सारा इनोवेशंस वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक आवर टीचर्स स्किल। और जैसे मैडम ने कहा कि खुद टीचर्स भी स्टेम पोर्टल में जाके वो कोर्सेज करें और फिर उन बच्चों को पढ़ाएं। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आई थिंक ये इसको इंप्लीमेंट करना टू सेंस में वेरी डिफिकल्ट है। टैक्टाइल और स्वयं के जो कोर्सेज है उसमें एक टीचर मेंटर होता है और उन टीचर्स के साथ ही स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं और वहां पे पढ़ाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, वो शाम को क्लासेस लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं और वो रोज असाइनमेंट्स देते हैं और 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का अलग-अलग कोर्सेज है। आप टैक्टाइल में जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर कोई क्लास बिल्कुल भी नहीं है तो वो जो क्वेश्चन देते हैं वो टीचर
बनाता था, वो स्टूडेंट कैसे कर रहा था, उसको टीचर अलग से नहीं पढ़ा रहा है, पर एक टीचर को मेंटर एज ए मेंटर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और चाहे तो आप वो सीख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पूरा 3 महीने 6 महीने और 1 साल सिखाते हैं, और उसके बाद यदि आपको परीक्षा देनी है और उस स्किल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर आपको पेमेंट करना होता है। और उसमें हमारे कॉलेज में हमने प्रोविजन रखा हुआ है कि यदि स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करता है, क्योंकि हम उसका लगातार ग्राफ बढ़ा रहे हैं, तो यदि वो स्टूडेंट उसको करता है टीचर के लिए, तो नहीं टीचर एफर्ट कर सकता है चीज को, स्टूडेंट उसकी परीक्षा दे देता है, वो यही भी पार्थिव कॉलेज उसमें उसकी ऑनलाइन एग्जाम्स होती है और उसको यदि वो पास कर लेता है, तो एक आध स्टूडेंट छोड़ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पास किया है, तो हमने उनसे बच्चों को एश्योर किया है कि यदि आप पास करते हैं, आप पास सर्टिफिकेट हमें दीजिए, हम आपने जो भी फीस दी है बहुत ज्यादा फीस नहीं है उसकी, किसी की 1000 है, किसी की 2000 है, किसी की 1500 है, किसी की 500 है, तो हम आपकी वो फीस रियलाइज करते हैं। तो ये चैलेंज तो टीचर्स को लेना ही पड़ेगा कि इट इज नॉट अ बिग टास्क, और हमारे टीचर्स कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी टीचर इसको कर सकता है। और उसमें से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम वो ये है कि वो सारे कोर्सेज अभी इंग्लिश में है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, नेटवर्क वाली टीम आई थी हमारे पास, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारा जो एनईपी में आप कह रहे हैं कि बोली में भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, और लैंग्वेज आप जिस स्टेट के हैं उसमें भी आप सब चीजें कर सकते हैं, फिर आप इंग्लिश में वहाँ कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जो है इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उन्होंने बच्चों में भी हिंदी के लिए रजामंदी दी है। और हमारे कुछ टीचर्स हैं जो कोर्सेज के ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, जो बुक्स और असाइनमेंट्स है कि उसको हिंदी में करें, और काफी काम उसको हो रहा है। तो जैसे ही हिंदी में स्टार्ट होगा हम आसानी से वो सारे कोर्सेज करेंगे। आप कोई भी देखिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है आपके फील्ड में, चाहे आप कोई भी फील्ड में, इतने सारे टॉपिक्स हैं, वास्तव में यदि मेरी ट्रेन की इच्छा है तो निश्चित रूप से मैं उसको ज्वाइन करूंगी। और मैं मुझे सर्टिफिकेट देके बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मैडम को तो 75% मिला, मुझे 80 मिला, तो ये चैलेंज है, बड़ा मजा एंजॉय भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि पीजी के स्टूडेंट्स खासकर उसमें अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका साइंस के सब्जेक्ट वाले हैं तो इंग्लिश में ही होती है, तो आसानी से कर पा रहे हैं। आर्ट्स में जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे कॉमर्स में भी धीरे-धीरे विकास साल में शायद उन्होंने कहा है हमसे कि हम ड्यूटी कर देंगे उसको, और वहाँ से हमेशा उनके अनाउंसमेंट आते रहते हैं कि आप काम करिए इसमें, बकायदा वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आपने कोई ऐसा काम किया, आपने बुक लिख दी, उसका मटेरियल लिख दिया, आप मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो उस साइट पे जाइए, आप जरूर उस साइट पे जाइए, यूजीसी की वेबसाइट पे टैक्टाइल के कोर्सेज और स्वयं के कोर्सेज, मूव के कोर्सेज ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को। ऑनलाइन की क्लासेस होती हैं और टाइम में होती है, टीचिंग आवर्स में नहीं, एग्जाम जरूर एक दिन होता है जो वर्किंग आवर्स है हमारे, जो जाना पड़ता है टीचर के लिए, तो टीचर अपने साथी में 4-5-6 बच्चे, जैसे यूनिवर्सिटी का पीएचडी का कोर्स था, हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, बच्चे आ नहीं पा रहे थे या जो भी था कुछ आते थे, कुछ ऑफलाइन रहते थे, कुछ ऑनलाइन रहते थे, तो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टार्ट करवाया और इसमें लेक्चर किया, बच्चों ने पास किया, उनके पास सर्टिफिकेट है कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को पास किया, तो विश्वविद्यालय का जब पेपर होगा वो आसानी से उसको दे पाएंगे, अपना सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो चैलेंज तो टीचर्स के पास भी है, टीचर को खुद आगे आना होगा हर चीज को सीखने के लिए, टीचर भी स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाएगा। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमने बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए हैं। हर इंस्टीट्यूट का दायित्व है, चाहे एनआईआर में आप चाहे लैब में जाए, किसी को आपसे पूछता है आपने कितने सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए, उसमें आपने आईपीआर में कितने प्रोग्राम कराए। जहाँ नैतिक मूल्यों की बात हम स्टूडेंट पे करते हैं, वो नैतिक मूल्य हम पर भी लागू होते हैं। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो उस पर भी हमें सोचना होगा कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लेगरिज्म में वो सब चीजें आती है, और कभी ना कभी वो चीजें पकड़ में आती है जो टीचर्स के लिए अच्छी नहीं होती है या जो रिसर्चर है उनके लिए अच्छी नहीं होती है। तो उन नैतिक मूल्यों को टीचर्स को भी अपने ऊपर भी लागू करना है, और आईपीआर को भी प्रोग्राम करवाने हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट यदि चाहेगा तो हम जरूर उनसे बात कराएंगे कि आईपीआर में कैसे आप अपने पीछे दिन का 7 दिन का 2 दिन का 3 दिन का करवा सकते हैं। वो प्रोग्राम होते रहने चाहिए, आपके कॉलेजेस में समय-समय पर कार्यक्रम होते रहने चाहिए। टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के स्किल के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को कैसे नए प्रोजेक्ट्स बनाना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोजेक्ट लिखा जाए वो इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर लिखा जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो
क्योंकि अभी एक चैलेंज है सबके पास में रिसर्च पेपर लिखने का, तो उसमें भी कार्यक्रम होने चाहिए, उसमें जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे। छोटे आप देखेंगे कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई होता है, 50 का इम्पैक्ट फैक्टर बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया के जो जर्नल से उसमें नहीं होता है, वो कुछ और भी होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। उस इस मदद और इस कॉर्पस और बहुत सारे जो होते हैं उसमें वेब ऑफ साइंस उसमें काउंट किया जाता है कि आपने जो पेपर पब्लिश किया है उस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया है, उसको कितने लोगों ने रेफर किया है, और उसकी संख्या भी हमारे पास है। जो एक्चुअल ऑथर होता है उसके पास सब चीजें आती रहती है कि आपके पेपर को ये व्यक्ति साइट कर रहा है, दूसरे देश के लोग साइट करते हैं। मैंने किसी एक फील्ड में काम किया और मेरे इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल पे जो मेरा पेपर है उसको हर देश का व्यक्ति उस फील्ड में ही काम कर रहा है, तो उसको देखता है और पढ़ता है। जैसे ही वो पढ़ता है तो मेरे पास मैसेज आता है कि आपका ये पेपर इसके द्वारा पढ़ा गया और वो इस फील्ड में काम कर रहा है। तो बहुत एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें रोज रोज मैसेज में आती हैं और हमें पता है कि हमारा पेपर कौन साइट कर रहा है। तो जितना ज्यादा साइटेशन होता है उस पेपर का, उस जर्नल का, उतना इम्पैक्ट फैक्टर उसका हाई होता है। एक पेपर है मैंने कुछ भी लोकल लिख लिया या मैंने यहीं पे किसी भी पेड जर्नल में दे दिया तो उसको कोई साइट नहीं करता, सबको मालूम है कि ये क्या लिखा हुआ था क्या है, उसको कोई रेफर नहीं करता। तो साइंस में का मुझे नहीं पता, हम लोग जो बिब्लियोग्राफी हम बोलते हैं उसमें हम साइंस के रेफरेंस पार्ट को बोलते हैं, उसमें बकायदा मैं यदि किसी चीज को नोट करती हूँ तो वो पूरा नाम के साथ और पेपर के जर्नल के साथ सारी डिटेल्स उसमें होती है कि ये पेपर का पार्ट यहाँ से लिया गया है। तो वो चीजें बहुत जल्दी पकड़ में आती है। यदि रेफर किया है और मेरा ही काम है जो सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया गया तो कोई पकड़ ना। तो टीचर्स को बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, देखा है आपको, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, रिसर्च में भी बहुत हो रहा है। आप चैट जीपीटी लीजिए, जेमिनी लीजिए, आप अपना कोई भी टॉपिक डालिए, आपको फटाक से पूरा वो चीज आपको दे देता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आईपीआर है जो हमारे लड़के को सही करना है कि नहीं, हमें किसी का नाम चीटिंग नहीं करना है। आपको मालूम होगा कि बहुत ही खतरनाक शब्द यूज किया गया है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है प्लेगरिज्म यदि किसी का पकड़ में आता है। उसको ज्ञान डकैती नाम दिया है। अगर किसी ने काम किया है और आपने उसको डकैती किया तो सोचिए उसको चोरी भी नहीं कहा जाता। तो उस सब चीजों का आपको सोचना है और अपने आप को अपने मूल कार्य को ही करना है। मेरा ख्याल है कि अभी हम लोगों ने जो टॉपिक दिए गए थे उसमें कुछ बातें, क्योंकि ये जो टॉपिक दिए गए हैं वो 7 डेज में हो सकते हैं, 2-3 डे में हम बोले तो सही भी नहीं होगा क्योंकि नेट के एनालाइजर का इतना वास्ट टॉपिक है कि खासकर टीचर्स को समझना है, स्टूडेंट को बेचारे आइडिया है कि या जो भी बच्चे बैठे हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो पहले सबसे पहले जो भी एनईपी है और जो भी नेट के एट्रीब्यूट्स हैं वो वेबसाइट पे उपलब्ध है नेट की, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे टीचर्स उसको समझ लें कि वो कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली उसका सार क्या है, उसके डेप्थ में हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है। और नहीं तो फिर हम लोग सब हैं यहाँ पर डिस्कशन के लिए, आप जब भी कभी फोन पे बात करें आकर मिलें, हम जरूर आपसे बात करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें एज ए पैनलिस्ट यहाँ पर इनवाइट किया और कुछ चीजें यदि समझ में आई तो बहुत अच्छा है। लेकिन चीजें ऐसी हैं कि टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हर किसी को, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। मैडम ने मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की, मैडम ने विकसित भारत की बात की, मैडम ने फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिल सकता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने डीएसटी फीस, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, डीएसटी फीस में मैंने प्रोजेक्ट लिखा था, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो अभी यही बैठी थी तो मेरे पास मैसेज आया उसका कि वो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया है। तो काम करें तो इंस्टीट्यूट से मिलता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी मिलता है। मेरे साथ उनका कॉलेज भी है ना, उनको भी ये डीएसटी फीस का प्रोजेक्ट मिला है। तो आप लोग भी यदि लिखें प्रोजेक्ट को कैसे करना है, क्या करना है, मार्गदर्शन लिखे जरूर मैं आपको दूंगी। लिखिए प्रोजेक्ट, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है और उसमें पूरे देश में 20 लोगों से लिख करते हैं, उस 20 में हमारा कॉलेज भी है और उनका कॉलेज भी है। तो आप लोग भी लिखिए उसको। तो आपको फाइनेंस सपोर्ट नहीं से मिलने लगता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट फाइनेंस से होती है, तो मेरे पास पैसे हैं, अब मैं रिसर्च को आगे बढ़ा सकती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट को, आसपास के इंस्टीट्यूट को एक
पे वो काम कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, शुरू से DST ने दिया है, तो आप सबका स्वागत है उसमें काम करने के लिए। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है कि आज पैसे आए हैं तो प्रक्रिया है उसकी खरीदने की, तो हम उसको सबके लिए ओपन रखेंगे। आसपास DST की और सीकॉस की चाहे प्लानिंग कमीशन हमारे किसी की मंशा यही है कि आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करिए सबको, भले वो बहुत कम फीस में करिए उसको, ताकि बाकी लोग भी उसका उपयोग कर सकें, कोई एक व्यक्ति भी उसका उपयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरा वो पर्सनल नहीं है, मैंने मेहनत की है ठीक है, पर दिया तो मुझे गवर्नमेंट ने। तो आप जो भी उसमें काम करना चाहे, उसके बारे में करना चाहे, तो निश्चित रूप से आप सबका स्वागत है। आप मैं करूँगी उसके लिए बस वाले रिलेटेड, क्योंकि मेरा भी प्रमोशन हो गया एज ए प्रिंसिपल, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे उस लैब को यूज करने दिया जाए अभी। तो अभी भी कुछ शंकाएं हैं किसी के मन में, नहीं तो फिर हम इस सेशन को समाप्त करें। सेशन मेरा कहने के लिए हो चुका है ऑलरेडी, तो थैंक यू सो मच। Thank you all for a great discussion. I appreciate everyone's insights and contribution. It was valuable hearing each of your perspectives, and I'm looking forward to building on what we discussed. Let's give it a minute. Thank you, ma'am, once again. समय को ध्यान रखते हुए सेशन को भी शुरुआत करते हैं। Theme 2 of today's national seminar is Research and Development Program (NEAC). For session 2, our keynote speaker is Dr. Arvind Chaudhary, sir, Assistant Professor, Education Department, Kalyan, Postgraduate College. I would like to invite him on stage, please, sir. So please join us on stage. The panelists for Theme 2 are Dr. Shishikuna Bhattacharya ma'am, Dr. Rupani Tripathi ma'am, Dr. Teacher Prashad Sahu sir, Dr. Nisha Srivastava ma'am, Dr. Rakhi Sharma ma'am. I would like to invite all my panelists on the stage. Thank you, sir, for joining us. I look forward to reviewing your profile to learn more about your background and see where our interested goals are.
I would like to say a few words about sir. Dr. Arvind Chaudhary sir is a highly accomplished professional with an extensive background in the field of education. He currently serves as assistant professor in Manthan PG College, Sector 75. Dr. Chaudhary holds multiple degrees including MCom, MA in English, LLB PhD in education. He is also net qualified in education. He has 25 years of experience in teaching. He has published research papers in reputed national and international journals. Dr. Chaudhary is master trainer in the Tata Institute of Social Science for Communicative English, Youth Leadership and Public People Skills and Working with Community. Under Dr. Chaudhary's supervision, 3 research scholars in education were awarded doctorate in each of the other universities. I would like to invite Dr. Arvind Chaudhary sir to say a few things about it. Now I would like to invite Neena ma'am to honor him with memento gift and award. Dr. Shishikona Bhattacharya ma'am. Welcome ma'am. Dr. Bhakti Tripathi ma'am. Welcome ma'am. Dr. Tirat Prasad Sahu sir. Welcome sir. Dr. Disha Srivastava ma'am. Dr. Rakhi Sharma ma'am. Most welcome ma'am. Thank you, Neena ma'am. Now I will hand over the mic to Chaudhary sir. A very good afternoon to everyone. Respected communities on and off the dais. I'm Dr. Arvind Chaudhary, PG College, Sector 75. First of all, I'd like to thank the Prism institution for providing me an opportunity to be a keynote speaker at this seminar. I was given the topic of research and development in HIS, Higher Education Institute by Dr. Manthan. Although it's a good topic, but I find that the audience who are present over here, I don't
know that will be much purposeful for that because it is talking about higher education. So I'll try to bring the session quickly and we'll try to discuss the what points regarding research would be beneficial for the students who are sitting BEd and students of ITL. So I'll try to talk about that. Okay, very quickly we try to find this HEI. HEI actually is an abbreviation that involves higher education institutes. All those institutes which render higher education, all the students are simply termed as higher education institutes. And R&D over here is an abbreviation that says research and development. Okay, now we'll straight away come to the role of higher education institutes in research and development. You might think that what is the function of higher education when we talk in terms of research and development? So first thing is that it helps in creating knowledge and innovation. You might have seen that in government schools and some of the government schools in Chhattisgarh, they are using tinkering labs and they are making the teaching more effective and innovative. This is an outcome of all the research that has been doing in the higher education institutes. Other than that, they also do collaborative and interdisciplinary studies, wherein we find that various streams, physics, chemistry, fields of science are doing collaboration with streams of arts. And as a result, there are new and innovative things that have been come up. Other than that, they provide training and development to human capital, human resources. And they also work in collaboration with industries and academia institutes, like say the students who have done their chemistry. I'd like to just give you an example. If a student who has done BSc chemistry, basically they think that after doing BSc they can opt only for chemistry. But it is also there are many students who are looking for water purification and treatment plants. Over there, they can use their knowledge of science, especially the chemistry, the chemicals that they have learned about, in treating the water and sewage. So, what their higher education is doing is they are collaborating industries with educational institutes. Other than that, there are technical transfers, providing research and infrastructures like RUSA is one of the higher education institutes which provide funds to the colleges for augmentation of the existing research and for making new infrastructure like laboratories and classrooms, smart classes and other facilities. So as a result, what happens is the researcher in the particular institute, they get benefited. Other than that, they also focus in public policies, like the government which frame the public policies. So they help in by innovative research for framing such public policies. One of the policies that has been running in our Chhattisgarh for many years is Manthan project. So what happened is when the Manthan project was implemented, so it was seen that the students in the schools they used to come before Manthan project, and after the Manthan project was over, almost all the students from the school they used to go back to their homes. So the main purpose of the Manthan project was not completed. So as a result, there was a meeting in SCRT and there was a solution that was asked to be found out. And after some innovative discussions, it was decided that the student should be given some snacks, some nutritious snacks like murra or some chana, roasted grams. When the school hours was over and when they were about to leave for their homes, so it was seen that again that rate of presentism improved. So this is just an example of how government policies can be improved or implemented, or new government policies can be implemented with the help of research via higher education. Okay. Now coming to what are the basic types of research that the higher education is doing. I'll try to talk about those researches which are being taken up in a wide scale. One is the basic research, what we also call as fundamental research. There are many research institutions like education has now been collaborated with IITs. So there are many researchers that are taking place in form of fundamental research, and they are promoting new theories, new research principles which helps in
making government policies which helps in various outcomes. Other than that, there are applied research which uses those theories formed in the fundamental or basic research, and it connects those theorems of the basic research into the grassroots level. Other than that, there are collaborative and interdisciplinary research that is taking place with various institutes like, if I try to quote, like the Institute of BEd, students of MAC studying in educational institutes, they can take up projects of SCRT. Like in MAC, there is a part called dissertation. So dissertation, basically what happens is we take up any of the topic of education, any topic related to education or psychology, and we make a dissertation or a practicum out of it. But it can be done that projects of SCRT can be taken up, like how is MGML? MGML is multi-grade and multi-level learning. How is that functioning? Whether it is purposeful or whether it is not that successful in Chhattisgarh or not. So that topic can be taken up from SCRT and it can be quite good. Other than this, there are technological development researchers, social science and humanities that we basically do in education. Clinical researchers nowadays have been taken very abruptly in education because we find that students are suffering from many psychological disorders like autism or dyslexia. So we come across many students in school year studies who suffer from these type of disorders, and till date they will not be able to, the school authorities would not be able to recognize these type of special children. But since there is an inculcation of inclusive education, so nowadays what we are trying to do is there has been an amalgamation of psychological societies and other educational institutes just to help these students who are from the special backgrounds. Next we come to what are the basic impacts of these researches and research and development of higher education. The first impact is that there has been an economic growth. Means the student, I'd like to put that in our Kalyan college, there is a research center and there are almost 14 students who are doing research via JRF. JRF is Junior Research Fellow. We think that doing only this, we can only qualify net because not so students. If you want, you can opt for many scholarships like JRF, NFSC, NFOBC, NFST, then ICSSR, Jawahar Bhavan Trust Scholarship, Maulana Azad National Scholarship. These are all scholarships that is open for everyone. Other than that, those students who are doing BEd, I'd like to put some scholarship to apply for them. That is Tata Trust Scholarship for BEd and DEd, Care Rating Scholarship, UGC Emeritus Fellowship. These are some of the scholarships that are meant for BEd students. Other than that, for students who are doing graduate, there is NSF, Graduation Research Fellowship for Science, that is known as National Science Foundation, International Research Experience for Students, IRES, and there are many scholarships which are available for UG, BEd, and PG students. So, when you clear NET, now NET has got 3 options. Earlier it was only for lecturership and JRF. Now it is for lecturership, JRF, as well as for qualification of PhD. So if you crack JRF, the age limit is 30 years. If you crack that, you will get a stipend or a starting stipend of 35,000 rupees and a house rent allowance of approximately 5,000. And after 2 years, your JRF will get converted to SRF. And the total amount will be around 50,000 rupees per month. And you will get that scholarship for 5 years till you complete your PhD. Okay? But your PhD tenure is 6 years, but that doesn't mean that you will be paid scholarship for 6 years. You will be paid scholarship for 5 years. So on an average, you are given almost 25 lakhs, almost approximately 25 lakhs for these 5 years. And that is a big chunk of amount. So please, there are a lot of scopes for that, and as a result, there is economic impact. Talking about social impact, there has been a lot of changes in the global scenario also. Dramatic changes is occurring. We have seen in YouTube also that there has been a technology in which germinated seeds are put in small balls and they can be thrown anywhere. After a few days, they will germinate and they will form trees. This is a type of innovation that was done in some higher education or might be agriculture. So there are many social changes. Other than that,
There are there is enhancement in the global level also. We are having HEI is having collaboration with NASA and other global level institutes. And our students, there is one student I'd like to quote. He is the son of Dr. Ishwar Singh, who is sitting over here. Then he has taken a project of NASA and he has successfully completed it. And that is a very big achievement for our college. And at present, he is preparing for that NAAC board. So, similarly, other students can also follow this. These are some of the challenges in research and development that the higher education is facing right now. One is funding constraints. We find that the resources with UGC and other funding bodies like ICSSR is quite limited. And nowadays the applicants is lot. When we visited the UGC regarding some issues with JRF, we found that they are per year they are providing scholarship to 85,000 students. At that time, I'm talking about 2019. So if you multiply 85,000 with 50,000, I mean, just you can imagine कि कितना करोड़ों में grants देती है government. So there are more aspirants in research work increasing, and as a result, the government is running a bit like a short of fund. Lack of interdisciplinary collaborations. We find that even in BEd, if I am since I am a teacher of BEd, so I talk in terms of that. I find that there is no interdisciplinary connection. When we go to teach, you might have come across that experience. Teacher of pedagogy of English is asked to teach grammar only. I mean, English grammar, prose and poetry. But there is no connection between the science stream and the arts stream. Whereas we can do it. This can be done. And when the government of India has said so, they have connected IIT with education. And gradually there has been a lot of changes. You see that in IIT, they have taken up integrated courses. ITV recently visited Kharagpur, which is 2,500 acres, and they have a very well-groomed syllabus of integrated course where, other than academics, the child is compulsorily asked to take either NSS or NCC or any cultural activities and sports. Means they are focusing on all-round, really all-round development of the students. Over here, we just simply talk about the all-round development of the student, but we are not focusing so. The student is taught how to go for gaming stations, how to play games, how to make scientific apparatus, how to mend the scientific apparatus, how they can mend the computer, the laptops. They are training them in each and every aspect. Okay. Next is insufficient infrastructure. Now, this point nowadays the government is focusing on it, and they are trying to overcome this problem. There are many colleges where there are aspirant researchers, but they are not able to take up research because of the lack of availability of resources like books, machineries, equipments. One of the examples is nanotechnology. It's a very upcoming field of research, but I think it is not that much viable in Chhattisgarh because of lack of resources. Another is stem cell. If I talk about stem cell, it is a very good topic of research for students, but nowadays I don't think even in Chhattisgarh we have that stem cell development technology. Then ethical and regulatory challenges, as Madam just said. Earlier, it used to happen is that people used to copy down part of researches from other places, but it has been restricted nowadays. And there is a plagiarism check which tells how much percentage of the content have been similarly copied. Earlier, it was sentence by checking, but now even if you are given a phrase from that thesis, so that is scrutinized and it gets caught by the plagiarism software. Then is global collaboration barriers. Due to many political issues, the countries are unable to collaborate. If we talk in terms of India and China, China is quite technologically sound than us. But then due to some political issues and cultural issues, India is not able to collaborate that appropriately with China and exchange technologies. Then is public perception and value of research. Unfortunately, we in India we have the second largest population.
And we are considering the population as a group. I mean, we are saying we are second largest populated, while China considers the population as a human resource. We are first human resource. So first of all, to convert the population to human resource, we have to make them more skilled. And for that, we need to understand the value of research. We can do research in each and every field. Like when you cook, you try to put some spices and you try to check whether the flavor or the taste of this will change or not. That is an example where we are, that's also an example of research. Research is nothing like innovative things. So we can go over this research in each and every field of life, starting from education to home science. And higher education is apparently trying to help the research scholars. These are some of the research and developmental strategies. One is promoting interdisciplinary collaborations. Interdisciplinary collaborations means collaborating the science stream with art stream. Increase industry academia partnerships. Now, what happens is the student who comes to know about only the theoretical aspect of the subject, they don't know how that is converted into practical aspect. Like if I give a very simple thing, we know that we use soaps to wash our hand, but the child doesn't know how the soap is made. So if we go for an industrial tour and we show him how the soap is made out of oil or whatever, I don't exactly know the process. So you will be able to learn, and simultaneously, if he is interested, he can go for a new startup also. Then it enhances research infrastructure and facility. As I told that there are many governmental institutions like USA who are providing a lot of grants to the institutions. Like last year we received 2 crores of funds from USA, which out of which 1 crore 40 lakh was meant for infrastructure, new infrastructure and augmentation, and 60 lakh rupees was provided for purchasing equipment, laptops, and other facilities for the students, as well as for the library facility. So that has helped us a lot. And in the second cycle also we are expecting a similar or a bigger amount from USA for infrastructure and other facility augmentation. Then is encouragement of the culture of innovation. Like just now, Pradeep sir said, there was a student of VIT 4th semester and he had made an innovative software where you can trace the trespasser who is in front of your home. So there can be more innovative things regarding this, but the point is we don't have that culture of innovation. We try to utilize what the other are innovating, but we are not going for new innovations from our side. If we see to the past of our rich culture, we find that India has been a land of innovation, where we found the concept of zero by zero. But that concept, that culture is gradually deteriorating, and we all as teachers need to nurture that culture, and higher education is, of course, helping us to do so. Focus on real-world problem solving. There are many small problems that we face each and every day in class, in the school process. Like say, there is a student who suffers from autism. Autism is a psychological disorder. And if that student is a part of the school, most of the time the teacher cannot even recognize that the student is suffering from autism. Basically, they go for speech therapy or they go for any listening therapy. Unknowingly, they don't know that the child is suffering from autism or not. Okay? Now, if the teacher is trained how to identify and how to treat that child, or how to improve his learning skill, or how to teach so that that particular special child can also learn, and that problem can be solved in the class. But what we do is, we say that child should be given education in a different institute. Why? You are not allowed to do so in inclusive education where there is a right to education. That child has the equal right to learn with the other students. You cannot bifurcate that child and send him to a special education school. Okay? One of your teaching staff, Swapnil Madam, she has done a very good research in autism. And she is a counselor also, she might get my point. So these are very small problems that we can solve, but the thing is that we need to innovate. Then is to promote open innovation and knowledge sharing. Like just now
Madam said, there are a lot of courses in MOOC and Swayam. Other than that, there are many institutions like Aurobindo University, Pondicherry, IFLU, which is earlier was English and Foreign Language University, now it is Center for Foreign Languages, CFL. So they are running many courses which you can learn through online also, and they are degree courses. Anyone who is from commerce stream, they can opt for GST courses, which is run by your Sundar Lachlan Open University. That is a 6 months course, and you get a GST degree. After opting for that degree, you can go for practice also. So there are many small courses which are being run by state and central government because see what happens is earlier government was focusing more on knowledge. Now the focus is more on skill development. Because knowledge might not always give you job, but if you have skill, of course you can earn your livelihood. So that there is a transformation from theoretical aspect to the skill-based learning. And higher education is playing a very vital role in that. To conclude, we can simply say that the research and development in higher education is gradually changing, and if you want to sustain in the field of education, you have to go for research. You have to be more innovative. You have to find more ways, new ways, and clear up already existing ones. Like say, suppose if you are a student, I suppose there are some students of BEd also, 1, 2, 3, 4, 5, 3 students of BEd. You are taught how to teach with the help of teaching aids, right? You are taught how to use teaching aids for students. Anyone who is a student of mathematics? Anyone who is a student of mathematics? Pedagogy of mathematics? No. Okay. If I want to teach table of 9, I repeat, if I want to teach table of 9 to students where I don't have a blackboard, copy, pen, pencil, anything, how will I teach table of 9 to the students? Any idea from the house? Am I clear? How will I teach table of 9 to the students without using blackboard, chalk, pen, pencil, anything? Any idea? No. Okay. Will not. You don't have anything to write. Okay. We'll try to do it. See, 9 1 is 9. So 9 2 is close this way. Where I open this. 9 2 is 18. 9 3 is 27. 9 4 is 36. 9 5 is 45. 9 6 is 54. 63. 72. 81 and 9. So this is how you can teach the table of class 9 to the student without using any chalk, pencil, and all that. Means what I'm trying to say is you have to be more innovative. You have to be more inclined towards research, and of course there is a very huge support of higher education and research and development cell of higher education to support your research. With this, I put a dot to my words, and I thank this of institution for inviting me as a keynote speaker for this session. If you have any notes, you can please ask. Thank you. Any queries, anyone, please? I had a humble request to the institution. Okay, when you have taken up such brilliant topic and you have such brilliant speakers like Sarija Madam and Madam sitting over here, so my humble request is to please increase the number of days from 1 day to 2 days so that we can get more benefit from such experienced teachers. That is my humble request. ये 2 दिन का होता तो हम और ज़्यादा सुन पाते मैडम लोगों को और जो हमारे speakers हैं. So with this, wish you all a very good day. Thank you for listening with such patience. Thank you, sir, for your valuable insights and engaging presentation. We truly appreciate the time and effort you put into sharing your research. Before going ahead, I would like to invite Senior Faculty of Prism School of Education, Swapnil Jana ma'am. Ma'am, please. She will be panelist also for this theme.
everyone. Here I am Swapnil Munita Jana. I am senior faculty of Prism Institute. And before starting, I'll introduce myself. I am Swapnil Munita Jana. I am doing PhD, and my co-guide is Dr. Anirban Chaudhary. Under her co-supervision, I did my PhD thesis. Thank you, sir, for cooperating me. And here I am standing. So thank you, my director, sir, chairman, ma'am, sir, director, ma'am. Thank you very much. So I would like to introduce our panelist. Our panelist and moderator, Dr. Shishir Verma Bhattacharya. I welcome you, ma'am. Dr. Shishir Verma Bhattacharya is an experienced academician with over 33 years. She presently serves herself as a principal in Diet District. Dr. Bhattacharya holds PhD in education. She is resource person in refreshers course at Guru Ghanshidas Central University, Bilaspur, and Pandit Ravi Shankar University, Raipur. She has specialization in English language teaching, research methodology, educational psychology at B.Ed, M.Ed, and PhD postdoc. He wrote so many books for all levels, like State Curriculum Framework, National Achievement Survey. Next, our panelist is Dr. Lubhavni Tripathi ma'am. Dr. Lubhavni Tripathi ma'am is a distinguished educator and researcher with over 17 years of combined teaching and research experience. Currently, she is serving as an associate professor at Kalingam University. She holds impactful roles such as head of the department and principal in leading educational institutions. She holds PhD in education and gold medalist in MSc Zoology. Her specialization in educational technology and management and research methodology in education. The department has authored so many books and published research papers in national and international journals covering topics like ICT in education, innovative teaching, methodology, and educational management. She has contributed chapters to various academic books and for educational tools such as student performance, prediction devices, and teacher happiness monitoring devices. Her publication includes texts like educational technology and management and research methodology. In education, the Dr. Tripathi is an editorial board member for multiple disciplinary journals. Now I would like to introduce Dr. Tiran Prasad Sahu sir. Dr. Tiran Prasad Sahu sir is an accomplished educator with extensive experience in the field of teaching spanning over 12 years. His experience includes teaching in Department of Information Technology, National Institute of Technology, which is NIT Raipur. He is also assistant professor in Department of Information Technology at Shankaracharya Institute of Professional Management and Technology, Raipur. Presently, he serves himself as a lecturer in Department of Information Technology at National Institute of Technology, Raipur. He published so many research papers in national and international journals. Dr. Sahu has authored so many books. He received Best Paper Presentation Award at 5th International Conference on Networking and Information Technology, ICNIT 2014 at Singapore, and also Best Paper Award at 4th Communication Technology and Cloud Computing Conference, CTCCC 2023 at Edinburgh, UK. His area of interest are data mining and analysis, machine learning, feature selections, meta-heuristic techniques, image processing. Thank you, sir. I would like to introduce our next panelist, Dr. Nisha Srivastava. Dr. Nisha Srivastava is an experienced academician with over 33 years. Dr. Srivastava holds PhD in Education and Sanskrit. She presently serves herself as HOD, head of the department at Ghanshyam Singh Arya College. Dr. Srivastava published so many books in national and international journals and events
and she attended so many international and national seminars and conferences. Dr. Srivastav is resource person at Himchand Yadav University and Pandit Ravi Shankar University in Bangalore. I would like to introduce our panelist, Dr. Raki Sharma ma'am. Raki Sharma ma'am is an assistant professor at Apollo College with over 12 years of experience in teaching education. Dr. Sharma holds PhD in education. Dr. Sharma's academic qualification extend to various disciplines, including Hindi, English, and chemistry, as she possesses postgraduate degree in these subjects. Dr. Sharma authored 2 books and 54 research papers in national and international seminars and journals. And I would like to start our panel. Please, Dr. All respected dignitaries for this college. I'm really grateful to all of them, and especially Dr. Anjana ma'am and Kathy ma'am, the director sir, to have acknowledged my presence in this seminar. It was a blessed experience, in fact, listening to the inauguration session, and the first panel that was conducted by Professor Saluja, Professor Astana. In probing into new education policy is itself an adventure. And as far as higher education is concerned, I'm so proud to see that Professor Anirban, who I have seen as a very young learner, has now become a person who can talk on faculties, interdisciplinary modes, and perspectives in research. I'm really thankful for giving me a chance to moderate this session. So I'll begin with what he talked with, and let's go into other element panelists for me. Talking into the experiential part of higher education. Higher education took a challenge. Much of it got into disputes. We were finding it difficult to accept interdisciplinary and multidisciplinary as approaches. Lack of faculty, lack of multidimensional approach to textbooks, to readings, and to curriculum framework strategy. Taking this challenge into action, as Dr. Anirban has, I would like to point out 3-4 things. First of all, when you say the perspectives of NAAC, NAAC is National Assessment Accreditation Council. Okay. Now the paradigm shift has to be taken into account. It's now not evaluation, it's now assessment. When we say holistic development and school education gets a national probe into assessment as PARAK, they say performance assessment of review and analysis of holistic performance and assessment of review and analysis of holistic development. When this is PARAK is evaluation, shift from evaluation to assessment. Now when you say assessment, it becomes acknowledgement for us to see that when we take research into account, what are we researching into? Is every topic a research topic? The first agenda to be counted upon
is every topic a research topic? As Dr. Anilman has rightly pointed out, research in higher education talks about our performance agendas for children. Our main performance. Now, when it is performance, it is a whole profile. The first thing which we need to actually focus in research is, can we have access into student profile when we are talking in terms of higher education? In school education, much of it has been done. Much of it has given a chance for children to be given identities, to be given numbers for keeping their profiles, to have shifted them into projects, into alignments that they can make study forums capable as small projects in schools. But in terms of higher education, it is difficult. एक उदाहरण लेते हैं, देखिए हम लोग डाइट में है, मैं पहले तो एक छोटा सा करेक्शन जाना मैडम के इसमें कर दूं, मैं थोड़े दिन पहले तक प्रिंसिपल इंचार्ज थी, लेकिन मार्च में हमारे प्रिंसिपल मैडम मधुलिका तिवारी मैम ज्वाइन कर चुकी हैं और अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल नहीं हूँ। तो डाइट तो नए डाइट्स मिले, 3 नए डाइट्स, डाइट दूध, डाइट नारायणपुर, डाइट बीजापुर, ठीक है। डाइट का काम क्या है? टीचर ट्रेनिंग। हमसे कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आप स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन नहीं दे पाएंगे। कौन कह रहा है? एनसीटी। तो एक्रेडिटेशन के आधार पर हमसे ये कहा गया कि आप स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्निशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन मांगा कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस ही हैं डाइट्स हमारे, क्योंकि हमारे पास कोई मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट यहाँ नहीं है हायर एजुकेशन में। इसलिए हम जब यहाँ काम करते हैं तो इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का भी काम करते हैं। अब हमको रिकॉग्निशन नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी बच्चों का एडमिशन रोका गया है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमको सस्टेन कब करना है? सर ने कहा हमारा मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेन हम कैसे करेंगे? सस्टेनेबिलिटी के लिए क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो रिसर्च है वो हर डिपार्टमेंट के लिए है। पूरे स्कूल एजुकेशन में, पूरे हायर एजुकेशन में जितने भी आपके पास फैकल्टीज हैं, जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। और आप एमबीए से लेकर पीजीडीसीए तक, एवरी डिपार्टमेंट हैज अ ग्रांट फॉर रिसर्च। अगर 30% 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट का ग्रांट हर डिपार्टमेंट के पास है, तो कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपके एचईआई को हर साल सबमिट होगा? पहली बात। दूसरी बात, हम जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन में काम हम कब कर सकते हैं? डाइट एज अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट नहीं भी हो सकता, लेकिन हम अगर रिकॉग्निशन चाहते हैं तो हम एज अ कोलैबोरेटिव फैकल्टी तो नहीं सकते थे, हम नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स कर नहीं सकते थे। हमारे पास ऐसा स्कोप अगर है तो वो एलिसिटेड क्यों नहीं, वो एक्सप्लिसिट क्यों नहीं? हम जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रिसर्च में 3 एस्पेक्ट्स हैं मेजरली। पहला एकेडमिक, दूसरा बिहेवियरल, तीसरा मैनेजमेंट। इन तीनों एरियाज में हमारे पास काम करने की पूरी संभावना है। सब चीजें अगर फंडिंग पे आके रुक जाए तो दिक्कत होगी। हमें भी सर ने कहा कि कल्याण कॉलेज को ग्रांट मिला था 2 करोड़ का, फाइनली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना ग्रांट है, बाकी के लिए इतना ग्रांट है। 60 लाख का हमको लाइब्रेरी एंड अदर एकेडमिक डेवलपमेंट का मिला। हमें भी ऐसा प्रोपोजल हमारे लिए भी है। मेजरली बोला जा रहा है आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करें। फॉर हमारा डाइट छोटे
यहाँ पार्ट एंड ब्लॉक के टीचर्स को जब हम बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग में 5 दिन किया है, तो हमसे सबसे पहले पूछा जाता है कि मैडम रहने की व्यवस्था है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हिस्सा तो रिसर्च या हमारे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं, ये इसके साथ ही वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। लेकिन अगर हम फंडिंग की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक फंडिंग का डेफिनेशन कैसे देखते हैं? मैडम ने सरोजा मैडम ने पॉइंट आउट किया, रजिस्ट्रार साहब ने पॉइंट आउट किया इस चीज को कि आपके पास फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, आपके पब्लिकेशंस हैं, आप अपने एपीआई के लिए इंटरेस्टेड हैं। एपीआई स्कोर्स को आप जब अपडेट करते हैं तो you actually aim at publishing your researches into peer-reviewed and impact-factor journals. Citations के बारे में हम कितने सचेत हैं? हमको साइट किया जाता है तो हमको कितनी बार इन्फॉर्म किया जाता है? ये क्वेश्चंस हैं, ये टेक अवे क्वेश्चंस हैं रिसर्च और इनोवेशन के बारे में, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली मुझे नहीं मालूम बच्चे को क्यों नहीं मिला, मैं इन पॉइंट्स को स्ट्रेट आउट वर्कआउट की थी कि एक्चुअली रिसर्च विल मीन आई शुड नो व्हाट आई एम डूइंग। हर टॉपिक रिसर्चेबल नहीं है, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे इस बात का फक्र होगा कि मैं ये कर पाऊंगी कि मेरे पास ये फिनोमेनलाइजेशन है। एक उदाहरण और लिटरेचर में रिसर्च करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, मल्टीलिंगुअलिज्म, कंपैरेटिव लिटरेचर जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव लिटरेचर में बहुत अच्छा डेवलप्ड फैकल्टी, कंपैरेटिव लिटरेचर नेट क्लियर करते हैं, उसमें आप जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। कोई लिटरेचर का ऐसा रिसर्च हमारे सामने बहुत कम आता है जिसमें किसी चीज को फिनोमेनलाइज किया जाए, जिसमें ये कहा जा सके कि मैं इस इज्म को इस इज्म में शिफ्ट करती हूँ। इज्म्स होते हैं, सरेलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ना rationalism, isms. Now isms are not only in literature, every faculty has isms. किसी ism को दूसरे किसी ism में shift करने के लिए मेरे पास कुछ rationale होंगे। ये क्यों नहीं हो रहा कि जब रिसर्च और इनोवेशन को वाइवा वोसी को ओपन कर दिया गया तो उस मंच पे जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उसके असेसमेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पर क्यों नहीं? मेरे थीसिस में लिखने में फ्लॉज हो सकते हैं, टेक्निकल फ्लॉज होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकते हैं, होते भी हैं। बावजूद इसके ये संभावनाएं बनती हैं कि उस रिसर्च पे कितने क्वेश्चंस मैं उठा सकती हूँ, कितने क्वेश्चंस मेरे एक्सपर्ट्स उठा सकते हैं और कितने क्वेश्चंस मेरे जो वाइवा कोर्सेज में मेरा ऑडियंस उठा सकते हैं। एक और बात, रिसर्च का एक अपना ओरिएंटेशन है, तो वो ओरिएंटेशन हर पेपर के लिए अलग होता है। फिक्स्ड चैप्टर्स एजुकेशनल रिसर्च में होते हैं, दूसरी जगह चैप्टर्स ना बनाते हैं। यदि मैं चैप्टर बनाती हूँ तो मेरे चैप्टर के रैशनलाइजेशन में मेरे सवाल या मेरे जो तर्क हैं वो कब जांचे जाएंगे? कहीं नहीं जांचते। Nobody accredits this. What I mean to say is, when it is the NAAC perspective, I should understand if it is assessment and accreditation for a system, for a understanding which actually means research and development. I should know when to call something an innovation, when to call something a case study, when to call something theoretization, when to call something a fundamental or empirical research, and when to call something a qualitative research. जब वैल्यूएशन सिस्टम में रिसर्च में क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव
इवैल्यूएशन या असेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम इस बात को कैसे दे पाएंगे कि हम किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को के सामने अपनी जो बात रख रहे हैं वो किस तरह से एस्टैब्लिश हुई। क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर्स, मैं उदाहरण दूंगी आपको। हमारे यहाँ बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, एरिक है एजुकेशनल रिसर्च के लिए फंडिंग करने वाला एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट, ICSR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस एंड रिसर्च। ये जो काउंसिल्स हैं ये जिन लोगों को फंड करती हैं उनके लिए डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन पैनल होता है। हमारे पास एजेंडास होते हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशंस के मेथोडोलॉजी लेते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशंस को किस तरह से लिखा जाएगा इस बारे में बात नहीं की गई। आपके किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के टेक्स्ट बुक में क्या आप MA लेवल पर, MA की बात छोड़ दीजिए, एजुकेशन में एक अलग फैकल्टी डेवलप हुआ है। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि PhD में MA PhD एजुकेशन को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं, जब नहीं है तो वो किस प्रकार का एक मतलब बाईपास है, वो किस तरह से है, मेन स्ट्रीम उसकी कब होगी, क्यों होगी और क्या क्यों होना चाहिए, इस बात को कोई सेटलमेंट नहीं किया। अनिल सर ने उनकी stalwart in that, he plays with data, he knows how to handle qualitative data in ambient. But the point is, can everything be qualitative? तो qualitative analysis किसी भी quantitative topic को quantitative में change करने के लिए हमें तो पीछे पड़े रहते। क्यों? क्योंकि वाइवा कोर्स हमको या जो हमारे एनालाइजर्स हैं वो हमसे यही मांगते हैं। क्यों? एस्पेक्ट्स जब होते हैं रिसर्च के, उन एस्पेक्ट्स में हम क्या ऐसा नहीं कर पाए कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी को लेकर के अब एकदम परेशान हो गए। मल्टीडिसिप्लिनरीनेस पहले भी था। एक उदाहरण दीजिए, देखिए ऑन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जहाँ पर है वहाँ रिसर्च कैसे डेवलप होगी, उसको आप कैसे रिसर्च टॉपिक्स में या इनोवेशंस में बदलेंगे, ये सोचने के हम क्लासेस लगाते हैं। ठीक है, ये ग्लासेस जो बच्चा है जो व्यक्ति बनाता है, मैं दुर्ग में हमारा अपना जैन शॉप का शॉप है, वहाँ मैं शुरू से मैं छुपन से ग्लासेस लगा के बनाता है, वो बुजुर्ग से रहती है, वो आखिरी ग्लासेस बनाता है। उस दिन मैं जब इसको ठीक मेरा नया ग्लास बना तो वो बोले मैडम अब तो नया आ गया है, अब तो रेडीमेड आता है और अब ये फाइबर के आते हैं। जब कांच वाले ग्लासेस बनते थे तो बाइफोकल लेंसेस वो लोग हाथ से बनाते थे। उस व्यक्ति के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो MSc फिजिक्स भी नहीं है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास की डेंसिटी या उसकी क्वालिटेटिव अप्रोचेस को वो वेरीफाई नहीं कर पा, लेकिन वो बाइफोकल लेंस बनाता है और बहुत निपुणता के साथ बनाता है। That person's proficiency is totally experience. We are not able to give him any kind of जो flexibility NEP हमको दे रहा है कि हम कोई भी कोर्स करें किसी भी फेज पर हम सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या इन फेज में आउट ऑफ द स्ट्रीम लोगों को आप सर्टिफाई कर पाएंगे तो किस तरह से? वो व्यक्ति आज भी क्लासेस के बारे में हम कभी भी कार्ड भूल जाएंगे, लेकिन वो ग्लासेस को देख करके ग्लासेस के बारे में बात करेंगे और बता देंगे क्वालिटी। दूसरी तरफ देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड की बात करते हैं। आपके स्कूल में हारमोनियम है, आपके स्कूल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके कितने टीचर्स हैं जो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक कर सकते हैं? आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो उनके बारे में जानते हैं? परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके तबला में उसको ताना जाता है, उसके 3 फेसेस हैं, चपड़े अलग अलग तरह के लगते हैं।
उन सबका इलास्टिसिटी अलग है। मैलेबिलिटी जो तारें लगती हैं सितारे और कानपुरे में, उनकी मैलेबिलिटी अलग अलग है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, वो जाने जाते हैं। और उनके लिए जो नॉर्म्स बने होते हैं उस पर फिडेलिटी होती है, उसमें रेजोनेंस कॉलम्स भी। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक नहीं कर सकते। जो म्यूजिशियन है वो उसको जब उसको रेडीमेड एक चीज दे दी जाती है तो वो उसकी टोनल क्वालिटी को ठीक करता है। बट हु केयर्स फॉर काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट in these kind of innovations? The research in us, the research in higher educational institutes should look into such projects where skill development can actually implement theoretical learning and actually see the loopholes in the formation, sustainability and originality of such things. Music उसी पे जाती है कि मैं कैसे इन चीजों को अपनी सोच को, अपने assumptions को कैसे मैं ले सकूं उसमें, और फिर उसको डेवलप करने के लिए एक ओरिजिनल आइडिया दे सकूं। हर रिसर्च की एक ओरिजिनलिटी होती है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि मैं जितने भी वाइवा से अटेंड की, मुझे ओरिजिनलिटी, अगर ओरिजिनलिटी मिलती, यदि एक क्वेश्चन में ओरिजिनल सर्कमस्टेंस या एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग के बारे में करूं उस रिसर्च के लिए, तो मैं हर रिसर्च को मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट से जांच सकती हूं। और अगर मैं ऐसा जांचने की कोशिश करूं तो मेरा रिसर्च और इनोवेशन फैकल्टी इस बात की अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी कि रिसर्च कब वल्नरेबल हो जाता है, मेरा रिसर्च कब क्वेश्चनेबल हो जाता है, मेरे रिसर्च के टॉपिक में वेरिएबल है भी कि नहीं, उस वेरिएबल को मैं जब जांच रही हूँ तो क्या उसमें मिक्स्ड अप्रोच हो सकता है। हम लोग ब्लेंडेड मोड की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन हम बात कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन जुड़ गया तो उसको हम ब्लेंडेड मोड बोल रहे हैं। ब्लेंडेड मोड इससे बहुत आगे भी, बहुत बड़ी चीज है ब्लेंडेड मोड। ब्लेंडेड मोड में मेरा केवल मोड ही नहीं है, उसके साथ उसका प्रोडक्ट भी है। तो किसी को हम बाहर से कोलैबोरेटिव टीचिंग ब्लेंडेड मोड का एक हिस्सा। तो मैं अगर देखिए इसका उदाहरण मैं दूं आपको, हम लोग पीएम श्री स्कूल्स की ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए थे और वहाँ एक पूरी कॉन्फ्रेंस थी, तो एक डिस्कशन ग्रुप था, तो दो दिन का वर्कशॉप था, उसमें स्किल डेवलपमेंट की या वोकेशनल एजुकेशन पे बात की गई। वोकेशनल एजुकेशन के लिए कुछ बच्चों को साथ में लाया गया था उस ग्रुप के द्वारा, जो एनजीओ बात कर रहा था। वो बच्चे जो आए थे वो अप्रेंटिसशिप ले रहे थे हायर एजुकेशन में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो उन बच्चों से बाकी लोगों को मुखातिब कराया गया। तो चिल्ड्रन वर आस्क्ड, उन लोगों से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि वहाँ जो ऑटोमोबाइल शॉप है वहाँ कुछ बच्चे काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे काम करते हैं। आप जब स्किल एजुकेशन में सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? जो आप जानते हैं उसमें और उनमें क्या अंतर है? तो उन बच्चों ने कहा कि मैडम उन लोग पाना का नंबर बताते हैं, हम पाना का नाम बताते हैं। ठीक है, केवल पाना का नाम जानने से अगर कहीं पर जाकर के वो पाना नंबर नहीं मिला या वो पाना का नाम, वो पाना आपको नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की सोच है आपकी? तो रिसर्च, मुझे जब भी रिसर्च में कोई प्रस्तुत करूं तो मेरी इतनी अच्छी असेसमेंट होनी चाहिए, मेरी इतनी अच्छी क्वेश्चनिंग मेरे लिए होना चाहिए जो ये जान सके कि मैंने इसके कितने संभावनाओं के बारे में सोचा। जब तक ये नहीं होगा, रिसर्च होलिस्टिक डेवलपमेंट को नहीं ले जाएगा। रिसर्च के होलिस्टिक डेवलपमेंट की का मायने होता है मेरे मल्टीडिसिप्लिनरी सोच को इंटीग्रेट कर पाना,
एक दो दो बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस है, मैं इतना कह के अभी विराम दूंगी। पहला चैलेंज हायर एजुकेशन में ओरिएंटेशन, जो मेजर टूल स्कूल एजुकेशन में होता है टेक्स्ट बुक का, वो हायर एजुकेशन में नहीं होता, वो ओपन है। और ओपन है इसलिए अनमॉनिटर्ड है, अनमॉनिटर्ड है इसलिए उसको रीडायरेक्ट करने के लिए असेसमेंट को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हायर एजुकेशन में जरूरी है वो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, एक्नॉलेजमेंट जिसको हम कहेंगे एंडोर्समेंट। एक उदाहरण मैं दूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चा गया, वो आईआईटी पवई में एडमिशन लिया, मेरे एक कलीग का बच्चा था, वो जाके वहां एकदम डिप्रेस हो गया, मेरे से नहीं होगा। मैंने उससे बोला बेटा देखो एक काम करो, जब आपके सीनियर्स जाते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने तो उनके साथ आप जाओ, उनके साथ काम करो, छोटे छोटे स्क्रीन्स पर उनके साथ असिस्टेंस का काम करो, उसके बाद आप देखना आपको अच्छा लगेगा। वो बच्चा जब ऐसा किया उसके बाद वो पेपर्स लिखने लगा और पेपर सबमिट किया। जब वो पेपर सबमिट किया उसके पेपर्स में उसके हिस्से को एक्नॉलेज किया गया उसके कलीग्स के द्वारा और जजेस के द्वारा, तो उसके बाद he never looked back। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को कहीं पर स्टडीज के दौरान ही मॉनिटर करने की आवश्यकता है। एक टेक्स्ट बुक, दूसरा या मॉनिटरिंग ऑफ एकेडमिक्स, और दूसरा प्रेजेंटेशन एंड ओरिजिनलिटी सबमिशन। इंटरडिसिप्लिनरीनेस में कहीं कोई बात नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में कहीं कोई परेशानी भी नहीं है, हम पहले भी ये करते रहे हैं। हम जब कर रहे हैं केस स्टडीज, अगर हम करते हैं एक केस स्टडी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना उसका इतना महत्वपूर्ण है कि वो आपको एक बाइबल बन जाएगा बहुत लोगों के लिए। एक अच्छा केस स्टडी एक बहुत अच्छा रिसर्च है। एक असेसमेंट का टूल बनाना एक कंप्लीट रिसर्च है। डॉक्टर डेविड के बाद इंटरेस्ट का कोई स्केल बहुत उतना अच्छा स्केल आज तक नहीं बना। वो कब 69 70 में बना। अब इंटरेस्ट के जो स्केल्स आते हैं आपके टूल्स एजुकेशन के, वो इतने हल्के हैं। वाई सर ने कहा स्टेम सेल्स के बारे में रिसर्च, वॉलंटरीज के बारे में रिसर्च, मेडिकल को कोलैबोरेट करके इंजीनियरिंग में बहुत काम होता है, वो सेगमेंटली काम होता है। वही सेगमेंट्स हमारे करिकुलम में क्यों नहीं? तो हायर एजुकेशन में रिसर्च की आवश्यकता है करिकुलम में। यू नीड टू प्रोब इनटू करिकुलर प्रोस्पेक्ट्स, और उन करिकुलर प्रोस्पेक्ट्स में अगर अदर कंट्रीज के साथ कंपैरेटिव डेटा है तो वो बहुत Thank you so much, and thank you for providing me this opportunity. Yes, I'll now put it over to you. ये नैनो का आनंद भी बहुत अच्छा होता है, ताकि आप सबको देख सकें और आप सबको देख सकें, है ना? तो प्लीज मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो मन की बात है 2 शब्दों में वही कहूंगी। सबसे पहले तो कहूंगी कि वाणी के सौंदर्य का सब रूप है काव्य, और आपने मुझे बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना सर मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं जब बैठी तो मैडम का जो स्पीच था इतना सार भरी, तो मुझे मेरे मन को पूरे समय में सिर्फ मेरी नजरें इधर थी और कान पूरे समय सुन रहे, तो इस बीच है ना। तो प्रिज्म कॉलेज के सभागार में अतिथि रूपी पुष्प खिल रहे हैं बाहर बैठी, और आप सभी विद्वानों का मैं अभिनंदन करती हूँ। मेरी भावनाओं का हार करती आज की ये दिन समर्पित करती हूँ इस निर्णय सेमिनार के नाम उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। इससे पहले एक बात होती है कि हम बच्चों को कैसे लेके आए।
रिसर्च पढ़ाना है ना, रिसर्च को समझाना है, जो रिसर्च को पढ़ाना है, रिसर्च को समझाना है, तो सामने बच्चा है, वो बच्चे ही नहीं है तो हम कैसे करोगे? हम तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, एक बच्चा अटेंड करता है, 4 बच्चे अटेंड करते हैं, फिर हम करते हैं, सोचते हैं शायद कोई और अटेंड कर ले, शायद कोई और अटेंड कर ले, पर उसने एक भी लेक्चर अटेंड किया ही नहीं तो वो कैसे जानेगा कि निशा मैडम कैसे पढ़ाती है? वो तो उनसे तुलना कर दिया कि हो सकता है कोई लेक्चर उनको अच्छा लगा हो ना लगा। तो पहले तो ये आवश्यक है कि बच्चा क्लास अटेंड करे, इसके लिए आपकी वाणी विद्युत होनी आवश्यक है, क्योंकि अल्फाजों में ही जान होती है, इसी से दुआ और अजान होती है। ये तो दिल के समंदर के वो होती है जिनसे इंसान की पहचान होती है, क्योंकि शब्दों में की धार, शब्दों में हमारी धार नहीं होनी चाहिए, आधार होना चाहिए। बेटा आप अटेंड करोगे तो एमएड करोगे तो आप पीएचडी करोगे तो आप ऐसा करोगे, उनको भी एक सपना दिखाना है कि आप रिसर्च पढ़ोगे तो ये सिर्फ आपकी अभी नहीं, एक तरीके से ये सब्जी में धनिया पत्ती है, ये हमेशा ही काम आएगा आपके, हमेशा ही आपकी सब्जी को महकाएगा, आपके व्यक्तित्व को महकाएगा। पहले हमको वहां से स्टार्ट करना है, बाद में तो हम बताएंगे कि वास्तव में रिसर्च क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से ये करना है, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, लेकिन आधार होती है तो वो मन को जीत लेते हैं। तो हमको भी और बच्चों को भी मेरे अक्सर मेरिट में आते हैं बच्चे, मैं एसएम कॉलेज में 21 ईयर से वहीं पे हूँ, हालांकि 33 ईयर मेरे को पढ़ाते हो गए और हर साल यूनिवर्सिटी में टॉपर भी रहते हैं, बट सिर्फ मैं हर बच्चे को देखकर यही कहती हूँ कि मुझे आप में वो क्षमता दिख रही है, आप में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि आप आ सकते हो बेटा मेरे। 2-4 ऐसे हर बच्चे को कहती हूँ, तो हर बच्चे को घर में जाके लगता है निशा मैडम मुझे इस योग को आती है तो मैं पढ़ाई करूँ, मैं कोशिश तो करूँ। और जब वो बच्चा कोशिश करता है तो थोड़ी हम भी मेहनत करते, थोड़ा वो भी मेहनत करती, 24 आवर्स मेरा वो फोन आपके लिए उपलब्ध है, अब रात में फोन सुबह फोन करो, जब करो आप खुद पढ़ो, मैं भी आपके साथ। मैं इस चीज के लिए जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है कि मैं आपके आगे नहीं चलना चाहती, मैं हो सकता है आपका नेतृत्व ना कर सकूं, मैं आपके पीछे भी नहीं चलना सकती क्योंकि अनुगमन ना कर सकूं, मैं अपने साथ आपको ले कर चलना चाहती हूँ ताकि आपका मार्ग प्रशस्त कर सकूं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए या नदी तो समुद्र की तलाश करें, शीशा तो कल पत्थर से टूट जाता है, ऐसे पत्थर की तलाश करें जिससे शीशा टूट जाए, तभी वो रिसर्च करेगा, तभी हम उसके अंदर रिसर्च की डाल सकेंगे, हम उसको समझा सकेंगे कि बेटा ऐसा नहीं है, आराम से तो सभी जी लेते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लच जाएगा सीने में, और आप पसीने की स्याही को कभी लिखे पन्ने कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते। परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा अपने आप से पूछना कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया, ना हारूं का हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं तुझसे वादा किया, क्योंकि किसी और से वादा किया तो टूट जाता है, खुद से करें हमेशा ये वादा निभता है, आगे बढ़ता है। और जरूरी है हम बच्चों को किस तरीके से हम वैल्यूज डालें, सबसे पहले हम खुद को देखें कि मैं आज 21 साल से टाइम मेंटेन करूं, मैंने कभी नहीं की, आज मेरे पूरे 21 साल के करियर में मतलब उसमें पढ़ाते थे मेरे को 33 ईयर हो गए, पर 21 साल में अगर मेरा 11 बजे का टाइम है तो मैं 11 बजे में 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ, और इसीलिए बाकी लोग भी, बाकी टीचर्स भी, बाकी बच्चे भी बोलते हैं निशा मैडम का मतलब टाइम नहीं है। तो आप खुद अपने आप को उदाहरण दीजिए और आप खुद कोशिश करिए, आप खुद अपने आप को इस तरीके से ढालिए तो ऑटोमेटिक बच्चे आपका अनुसरण करना चाहेंगे, और उनको समझाइए कि मंजिल हो सामने तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में बात हो तो सपने मत छोड़ना, कदम कदम पर उड़ने की मुश्किलें, बस सितारे चुनने के लिए अपनी जमी मत तोड़ छोड़ना। जमी मतलब अपने मूल्य, अपनी वैल्यूज, अपनी संस्कृति, अब खुद के अंदर मूल्य रखोगे तो अपने आप अच्छे मूल्य रखेंगे, सीखेंगे। हम तो जितने भी हैं सब आज भी तो कल पेरेंट्स बनेंगे, सबसे पहले अपने बच्चों के अंदर मूल्य डालें, हम उनके माता पिता को प्रणाम करना सिखाएं, हम नहीं सिखाते हैं, हम तो सिर्फ करिए बच्चे छोटे चाहते हैं ना, जब वो बच्चा मारता है तो खुश होती है बच्चा मारा, अरे मारा नहीं, आप उसको सिखाओ,
अब अपनी बेटी को भी सिखाओ, बेटे को। आज के समय में कोई भी अक्सर जो मैरिज होने के बाद जो लड़के जैसे वो कोई भी साथ में नहीं रहना चाहते, ना अपने माता पिता के साथ, किसी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो बंधन महसूस करते हैं। वो बंधन कहाँ से सीखेंगे? पहले घर से, फिर स्कूल से, फिर समाज से। इस तरीके से सीखो, वैल्यूज आपको स्टार्टिंग से ही करनी है। यदि मैं कहूँ कि जैसे बच्चे नहीं आते हैं क्लास, स्कूल में नहीं आते, सबसे पहले स्कूल से वो ड्रॉप आउट होते हैं, तो ऐसे माता पिता का जैसे जो थोड़ा सा सक्षम है, फिर भी जैसे ड्रॉप आउट ले रहे हैं बच्चे, ये नहीं आ रहे और सिर्फ कारण नहीं, कई बच्चे तो ध्यान करना है, सही बात है, लेकिन कुछ बच्चे तो सिर्फ बहाना करते हैं या कुछ के पेरेंट्स जबरदस्ती ऊपर थोपते हैं कि आपको ये काम करना ही पड़े। ऐसे बच्चों को ऐसे माता पिता का राशन कार्ड बंद कर देना चाहिए। उनको जितनी भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी है, इतने किलो अनाज, इतने किलो सब कुछ बंद कर देना चाहिए। जब आप उस चीज को बंद करेंगे, वो तुरंत एक्शन लेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे और इसको भी भेजेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, ज्यादा कहूंगी तो समय जो मतलब जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जैसे आप पीएचडी कराते हैं या थीसिस लिखते हैं, गुणवत्ता की बात, फर्स्ट चैप्टर में बच्चे नहीं लिखने में कितनी कठिनाई, बाकी तो वो लोग सब कुछ इधर उधर से कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आया, इसको मैनिपुलेशन किया, इसको किया, वही चीज यूजीसी केयर लिस्ट में 4000 6000 एक बच्चा देता है और उसी चीज को सिंपल करके छाप देता है, लेकिन वो तो यूजीसी केयर लिस्ट सेम चीज है, कोई चीज नहीं, गाइड 4 बार चेक करिए, लेकिन यूजीसी केयर लिस्ट में है तो वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 4000 6000 बच्चा देने की कैपेसिटी रखता है। आज के समय में तो बच्चे सोचते हैं मेरा सब काम कोई दूसरा कर दे, सब कुछ दूसरा कर दे, मैं सिर्फ सिग्नेचर करूं। तो उस बच्चे की मानसिकता को हमको चेंज करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी रिसर्च में वो उसे आगे बढ़ने ही ना दिया जाए, आगे से नहीं ना बढ़ने दिया जाए, रोक दिया जाए कि आपका ये है, इस तरीके से आपको एक पुरुष बनाना कंपलसरी है, अब बिना एक पुरुष बनाए आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऑटोमेटिक बच्चे एक पुरुष बनाएगा तो थोड़ा तो सीखेगा। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे डिग्री लेने के बाद भी काफी कुछ नहीं होता। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आंसू तो आंखों से बहने वाले आंसू बड़े लेने हैं, यूं तो दुनिया में बहुत सारे झगड़े हैं, पर आप सभी का साथ मिले तो हम कहाँ अकेले हैं, हम तो सबके साथ ही हैं। और ये कहूंगी कि वक्त कहता है मुझे नहीं पता मैं कल आऊंगा या नहीं आऊंगा, तुझे हंसाऊंगा कि रुलाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं, पर जीना है तो इसी पल को जी ले, इस पल को तुझे सारी खुशियां देके जाऊंगा, ये है क्वालिटी हैप्पीनेस। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Related to research paper, any project proposal writing, so please ask to me. I think a lot of students worried about the research paper publication as well as the writing of research paper. Actually problem क्या है, जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया कि सभी लोग कॉपी टू अदर्स में ही बिलीव करते हैं। जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं बहुत सारे, जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स ऑलरेडी अपने रिसर्च वर्क को पुट किए हैं, रिटन वर्क है, हम सिर्फ यही ट्रस्ट करते हैं कि उनके किए हुए रिसर्च वर्क को ही हम आगे ले जाएं। मेरा ये मानना है कि वी कैन क्रिएट आवर ओन रिसर्च, डू नॉट कॉपी फ्रॉम अदर्स, और ऐसा करने से ही शायद हम एक्चुअल रिसर्च कर सकते हैं। यदि हम किसी की किए हुए रिसर्च पे, उनकी मेथोडोलॉजी पे, उनके टूल्स को कॉपी करके उस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम कोई नए सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जो कि एक्चुअल रिसर्च है। रिसर्च मींस ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स फॉर द सोशल वर्क। अब यदि हम कोई नई चीज नहीं ट्राई कर सकते, नई चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, दैट मींस वो रिसर्च नहीं है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आने वाले रिसर्चर से या हम सभी जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं कि डू नॉट कॉपी टू अदर्स, create your own content and create your own tools and do your own research. Thank you. ख्याति करने की परमिशन हो तो मैं बोलूं।
एक्चुअली टाइम कम है तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं रिसर्च से रिलेटेड ही, वो हम शेयर करना चाहते हैं। हमारी कॉलेज में अभी फर्स्ट एक बार बैक हो चुका है, अब सेकेंड साइकिल की हमारी चांस है, उस पे काम चल रहा है। लगभग 2 सालों में हम एक तैयारी करते हैं। सेम प्रॉब्लम हमें उस समय भी हुई थी रिसर्च को लेकर, तो मैंने यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठी की तो सभी ने कहा कि कुछ कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, वरना थर्ड क्राइटेरिया तो ऐसे ही जाता है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो मैंने सोचा शायद ऐसा है क्या। फिर मैंने अपनी फैकल्टीज को, अपने कलीग्स को, सभी को मोटिवेट करना शुरू किया कि आप थोड़ा रिसर्च की फील्ड में काम करिए, आप पेपर पब्लिश करिए, आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करिए। हमने भी अप्लाई किया, बट इंटरेस्ट कम था और कोई रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा। हम क्वालिटी एनहांसमेंट की बात करते हैं, हम रिसर्च को लेकर बात करते हैं, लेकिन अगर हम मोटिवेट नहीं करें, चाहे स्टूडेंट हो चाहे फैकल्टी, मोटिवेशन दोनों को जरूरी है। तो हमने अपने मैनेजमेंट से बात की कि सर, जब हम बात करते हैं पेपर पब्लिश करने की, सेमिनार अटेंड करने की, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की, हम पीछे हट जा रहे हैं। वो हमारा सेक्शन जो क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया, वो एकदम से खाली जा रहा है कुछ लोगों को छोड़ने के बाद में। तो फिर बहुत काफी डिस्कशन होने के बाद फिर डिसीजन ये आया कि हमें उन्हें मोटिवेशन देना चाहिए। फिर मैनेजमेंट की साइड से डिसीजन आया कि कॉलेज की साइड से सीड मनी दी जाएगी। जैसे ही मैंने सीड मनी की बात करी, कुछ 2-4 चेहरे सामने आए पेपर पब्लिकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए। ऐसे करके साल भर के अंदर आज हमारी बेटर कंडीशन है। लगभग 2 साल भर के अंदर हमारे पास अभी 60 पेपर्स सभी ने पब्लिश किए हैं। कॉन्फ्रेंस सेमिनार भी सभी टीचर्स ने अटेंड किया। इसके साथ साथ अपोलो कॉलेज में एमएड भी, वहाँ पर जैसे कि क्वालिटी गिरती जा रही है, हम सभी जान रहे हैं, क्योंकि शायद हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं हमारे स्टूडेंट हमें ही देखकर सीखते हैं। वही कट कॉपी पेस्ट वाली टेंडेंसी और जल्दी से जल्दी काम हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, तो स्टूडेंट के लिए भी एक हमने वहाँ पर स्कीम रखी है कि जो बेस्ट डेजर्टेशन होगा उसको, उसका डेजर्टेशन का खर्च कॉलेज उठाएगा, और एमएड के स्टूडेंट को भी कॉलेज की साइड से सीड मनी दी जाती है पेपर प्रेजेंटेशन और रिसर्च वर्क के लिए। एक छोटा सा इतना सा काम हमने किया, और वो जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया था वो काफी, उसका ग्राफ जो है आज बेटर कंडीशन में है, मतलब शेमफुल कंडीशन में नहीं है वो। और हमारा एसएसआर सबमिट हो चुका है, विदिन 1 मंथ आई थिंक नेक्स्ट भी आ जाएगा। तो एज एन आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया, मैंने अपनी बात कही, और मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम अपने ऊपर लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमें हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है, हमें वो लो क्वालिटी का दिखा था, हम कहते हैं कि थोड़ा दाम बढ़ाइए। तो वो जहाँ भी बात आती है क्वालिटी की, वो पैसों पे अटक जाती है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सपोर्ट स्टूडेंट को, टीचर्स को मिलना चाहिए। आपको एक और छोटी सी बात बताती हूँ, क्योंकि मैं आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा पीएचडी और एमए का काम बराबर से चल रहा था, हमारे पास टाइम नहीं था खुद के लिए, तो कॉलेज का काम ज्यादा जरूरी है ऐसा भी हमें लगने लगा। लेकिन हम कैसे हो गए थे तो फिर हमने बात कही कि हमें छुट्टी चाहिए, क्योंकि हमें जो है टाइम हो रहा था, तो वो छुट्टी ना मिलकर हमें वो दूसरी तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया।
हम घर पे लिखकर लाते थे और हमें एक टाइपराइटर दिया गया कि आप और एक टाइपिस्ट दिया गया, आप इससे टाइपिंग करें। मतलब ये जो उन्होंने हमारे लिए किया या हमारे रिसर्च वर्क के लिए किया, वो बहुत अप्रिशिएबल है, शायद हम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। और वो एक एक शब्द हमारे हैं, उस मोटिवेशन की वजह से हमारा 4% प्लैगरिज्म आया तो हम आश्चर्यचकित हो गए कि वो वर्ड हमारे थे, वो 4% प्लैगरिज्म कहाँ आ गया। तो मोटिवेशन जरूरी है। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मोटिवेट करने के लिए जो भी आप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जरूर अपनाइए प्लीज। और प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस सेमिनार के लिए चेयरमैन सर को, डायरेक्टर मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को, सारी फैकल्टीज और सभी स्टूडेंट्स को हम बहुत बधाई देते हैं। और इसका जो नाम मंथन है वो आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही अच्छा आपने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और हमें इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद राखी। Now over to Priya Prasad sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, morning, all present here. First, I would like to thank Dr. Anina sir, ma'am, and the team Prism for inviting me to this particular place. This is the first time I am interacting with you people, not only the you people, but people from the school and degree colleges, as I am from the Institute of National Importance. So, usually we interact with the scientists from the national importance and abroad. But yes, I have heard many people say, and I have heard their ideas or the experience they are having through their journey. And I'm happy to listen to them that they are having the great minds. Even they are old, but they are having the great minds. And there are many words that has been quoted here. And if you talk about why I'm calling it as words, because it makes sense. Each and every word has its own importance. So through this seminar, if you see what word has been told, so how we can look at. So maybe some of the words that has been given more weightage, like ICT. I have heard about ICT. So maybe the people don't know what they mean by ICT, that is information and communication technology, right? So I'm not going into that, but see, I think I'm supposed to talk about the role of AI into the research. But before that, I will talk about the quality of the research, because basically we are not just only the teachers, we are also the researchers at our institute. So we are having many PhD students, many MTech students, and ma'am's daughter is my MTech student actually. And in my profile, introduction, there are 2 base papers. I am having many more base papers, but one base paper that has been put here, that is in collaboration with ma'am's daughter, right? That I have presented there in that Edinburgh. Anyway, so the quality of research means, see, how we can assess the quality of the research. See, the different people has different perspective, but there is the global metrics that actually judge the quality of the research. Like sir has already told many things, that is the brief discussion about the research. I am surprised that in a very less time he has given many things, right? So see, first thing that we assess the particular the research has a qualitative research or not. So there is the impact factor, right? But see, even we receive many mails that this particular journal is having 10 research impact factor or 15 impact factor, but don't rely on that. Because impact factor is assigned to only those journals that has been SCI index. That is only SCI index. So maybe this SCI word is new to you, but this SCI means Science Citation Index. And the second word that has been already quoted, that is Scopus. So yes, I'm not saying that Scopus journals are not qualitative. It is also qualitative. And you people rely on UGC care journals, UGC index journals. So generally we avoid UGC in our institute because we only rely on 2 types of journals, that is SCI and Scopus index. And not only this SCI index, SCI index journal, even it is having impact factor, right? So those journals have been categorized into the many categories based on Q1 journals, Q2 journals, and Q3 journals. And one ma'am has told that 50 impact factor journals. See, that is very high, right? That is very high. Even I am having my best
journal paper is having 8 impact factor only, right? So see, that Q1, Q2, Q3, Q4, nowadays whenever we recruit the faculties, we always ask how many Q1 journals you are having. So that is one thing. That is one research paper that has been published in the journal. The second thing is conference. As per my suggestion, don't go for one. I mean, I'm not saying that don't publish the conference paper. I'm saying that if you are doing the research, don't read the conference research paper because कुछ भी आप लिखोगे वो publish होगा. मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी लिखो. हमारे यहाँ conference, मेरे डिपार्टमेंट में 17, 18, 19 पर आप वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा अगर थीम और स्कोप वही है. क्योंकि उनके पास भी है कि how many research papers we are receiving. We have to show the number. Then only it shows the successful of the event, right? So sometimes ऐसा होता है कि यार पेपर नहीं आया चलो उसको कर लेते हैं. That type of things are there. Another thing is, other than journal, conference, there are book chapters. Nowadays, how the books are published. So they are asking the authors to publish the new research that will be published as a chapter. So that is what about the research, and the quality is one that is impact factor. And the second thing is that how the quality is measured for a particular author. So sir has already told there is a profile of each and every who are doing the research, so they can create it easily, like in Google Scholar. Similarly, we are having the Scopus profile. Similarly, we are having the ResearchGate profile where the author can receive. You see, citations are received for a particular research paper. Based on that, the particular paper has been judged, right? And this is what about the quality. And the second thing is that as I belong to the computer science area, so yes, एक मैम की कल्याण कॉलेज से मैं नाम भूल गया हूं, बट उनका जो लास्ट स्लाइड था वहां पर लिखा हुआ था देयर आर, I mean, see, where is the jobs are there nowadays. So there are many domains where jobs are there, but there is no domain which is untouched with AI nowadays. There is no domain which is untouched with AI. If I talk about AI, so AI is a broader category under which we are having the machine learning, under which we are having the deep learning, right? So see, अभी आप सरप्राइज हो गए जितने लोग भी रिसर्च कर रहे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका रिसर्च इतना अच्छा हो जाएगा आपको बिल्कुल AI लग सकता है. अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि विदाउट यूजिंग ब्लैक एंड बोर्ड एंड अदर सपोर्टिंग टूल्स हाउ टू लर्न द टेबल ऑफ 9. तो सर ने क्या बताया कि कुछ बताया फिंगर से करके, मुझे नहीं पता यहाँ से क्योंकि मैं नहीं पाया कि कैसे बताया, बट बताया कि दोनों में से एक से 5 क्लिक करने थे दूसरा. मैं क्या बोल रहा हूँ, I want to add into that. What is that? See, 9 into 9, 9 to 18. तो 9 में कैसे लिखते हैं 01, 18. So 90 जब 10 जब होते हैं तो क्या होता है 90. अब क्या होता है 81. So there is some pattern in that particular table. यही pattern पूरे AI और machine learning. Actually, we wanted to look for the pattern that is associated with the data. और आज की डेट पर मैं ये बोलता हूँ कि डेटा से कोई अछूता नहीं. और डोंट थिंक दैट कंप्यूटर जो हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप दिखते हैं वही कंप्यूटर आपके पॉकेट में. सब चीजें आप स्मार्ट बना चाहते हैं, क्यों बोलते हैं उसको स्मार्ट? क्योंकि वो स्मार्ट है. स्मार्ट क्यों है? क्योंकि देयर आर सम टेक्निक्स व्हिच हैज बीन इंटीग्रेटेड विद दैट पर्टिकुलर डिवाइस. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज स्मार्ट, नॉट होम. स्मार्ट होम तो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं. उसमें आपके पास नहीं है सॉफ्टवेयर पाइथन नहीं है, आप वहां जाइए, उसी में आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएगा, उसमें कोडिंग कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए. तो I want to suggest that in this particular institute also there should be some coding subject, programming subject, not only C and C++. Nowadays C and C++ सब basic है. C logic programming आना चाहिए, programming logic क्या है, but nowadays everything can be implemented in Python, right? तो Python में क्या करेंगे, आप जाएंगे रिसर्च, कोई भी रिसर्च करना चाहें आपको उतना कोडिंग करने की जरूरत नहीं है. आप डाउनलोड कर लीजिए, जितना रिसर्च करेंगे अच्छा, ये इस प्रॉब्लम के लिए आपको कोड मिल जाएगा, आपको 8, 10, 15 मिनट सीख करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है. बस आपको सीखना है कि वेरिएबल क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, कंडीशन कैसे लिखते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, लाइक दैट. एंड नाउ आई एम कमिंग इनटू द मशीन लर्निंग. दैट इज AI, right? That is AI. AI means AI is nothing but a tool that provides the interaction between the man and machine. वो सारी चीजें AI में सकता है. और उस AI उसको करने के लिए there is some algorithm. We want some algorithm. That is called, that algorithm may be the machine learning algorithm, deep learning algorithm. अरे बहुत इजी है, आप अपना मत समझिए कि बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, वो उनको के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि we are working on the core problems of machine learning algorithms. We are just analyzing it. What is the advantage? What is the disadvantage? Where it fails? वो हमारा काम है, हम उसको डेवलप करना, वो हम लोग करते हैं. Like the research with
Ma'am's daughter is correlation based feature selection and feature building for classification. प्रॉब्लम क्या था? माइक्रोवेव डेटा था। माइक्रोवेव डेटा कहाँ से आता है? मेरे को नहीं पता माइक्रोवेव डेटा क्या है, उसमें आरएनए डीएनए कहाँ पर होता है, कहाँ पर जीन है, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को सिर्फ सभी चीजों को प्रॉब्लम को किस तरह देखता हूँ, दिस इज अ डेटा सेट। अब डेटा सेट में मुझे we have to identify the pattern, but pattern carries some characteristics that is known as features that we keep it in columns. जब भी हम करते हैं प्रोसेसिंग डीप लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डीप लर्निंग ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, और अगर मशीन लर्निंग की बात करूँ तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें जो कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको एट्रिब्यूट बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। और वहां पर जैसे मैंने बताया था, किसी ने बोला था मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल और हाई डायमेंशनल मींस जहां पर 1000 को सी व्हाई वी आर यूजिंग दिस एआई टेक्निक्स और एआई टूल्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, बिकॉज़ दोस प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग पेन एंड पेपर। तभी तो हम जा रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा कि fx = x स्क्वायर है, जस्ट गिव द वैल्यू ऑफ x which will give you the maximum value of fx, that is the maximization problem actually। and maximization से याद आया, optimization is very important। optimization integrated with AI tools, everybody is doing for optimizing something। हम यहाँ पर क्यों है या ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया है, to optimize something। optimize मतलब होता है either minimize or maximize। every minimization problem can be converted into the maximization problem and vice versa। तो अल्टीमेटली अगर मेरी बात करो कि मैं क्या मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, कम से कम एफर्ट लगाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ, so that for the betterment of my family and society। यही चीज है, everybody is looking for optimizing something। तो ऑप्टिमाइजेशन जब भी आता है तो ट्रेडिशनली जब ऑप्टिमाइजेशन होता था तब हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले करते थे, तब यूज करते थे कुछ इन linear programming, integer programming, quadratic programming like that। But nowadays, this optimization contains some heuristic method and meta heuristic methods। meta heuristic नाम दिया गया है। So actually, I am working in meta heuristics and I am applying the meta heuristic techniques for selecting the most important features for some machine learning problem, maybe the classification problem। क्योंकि high dimensional जब होता है, high dimensional means thousand column होंगे, 10,000, तो कैसे कर पाएंगे? अल्टीमेटली हम लोग जो सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग से, दैट इज नॉट लीनियर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। fx = x स्क्वायर आप भी बता दोगे कि अगर मैं बोलूं x की वैल्यू केवल -5 से 5 तक हो सकता है, तो क्या बात करते हो? इसका x = या -5 कर दो या 5 कर दो, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। अब मैं बोलता हूं ठीक है fx = x to the power 5 plus 2x to the power 4 minus 3x square plus 5। अब बताओ x = ठीक है -100 to 100 कहीं पर प्लस है कहीं पर माइनस है, अब नहीं पता। मेरे पेपर में भी चलो ये तो हो जाएगा, जब मैं x to the power 5 नहीं आपको बोलता हूं x to the power 100, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई सी यहां पर मैंने केवल एक वेरिएबल लिया, दैट इज x। देयर कैन बी मेनी वेरिएबल्स, दैट इज fx1 x2 और fxy बोलते हैं। तो अगर इक्वेशन में x और y दिया हुआ है तो सी इन ऑर्डर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये मैं अभी इक्वेशन मैथमेटिक्स के थ्रू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज we have to take some real world problems like traveling salesman problem, NAAC problem, not only this like stock market forecasting। कैसे करोगे स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग? आज कितना किसी पर्टिकुलर शेयर का क्लोजिंग प्राइस कितना है, प्रीवियस कितना है, उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, कुछ उसकी बिजनेस पॉलिसीज हैं। सो दीस आर एक्चुअली द फीचर्स वी नीड टू लुक फॉर द इंपॉर्टेंट फीचर्स इन ऑर्डर टू predict accurately the next day opening price or the closing price kind of see। तो यहाँ पर fx जो है पेन पेपर से सॉल्व नहीं होगा, दैट इज व्हाई वी यूज मेटा हयूरिस्टिक मेथड। तो सपोज सॉल्यूशन तो होगा, अब सॉल्यूशन इसके हैं तो सपोज आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो चलो मशीन लर्निंग बताता हूं, मशीन लर्निंग होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट स्टेप। 2 मिनट और दूंगा, 2 मिनट बाद फिनिश कर दूंगा, अगर ज्यादा करना है तो बाद में कांटेक्ट कर सकते हो। पहला डेटा एक्विजिशन। मशीन लर्निंग में कोई भी फील्ड हो, आप चाहे बायोमेडिकल फील्ड से हो, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी फील्ड यू कैन अप्लाई द मशीन लर्निंग। मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, अगर आप मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट विद अदर्स और यू आर नॉट गोइंग टू हैव द एफिशिएंट सॉल्यूशन और एफिशिएंट प्रोडक्ट, राइट? तो अल्टीमेटली फर्स्ट व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी एक्वायर द डेटा। अब एक्विजिशन जब डेटा एक्विजिशन करने का अलग अलग है, वो तो कई बार ऐसा जैसे EMG सिग्नल है, अगर EMG सिग्नल ले रहे हैं तो कैसे डेटा एक्वायर करेंगे? सम EMG डिवाइस, EMG ये होता है जैसे सिग्नल आता है ECG EEG होता है, EEG ब्रेन के लिए होता है, ECG हार्ट के लिए होता है, वैसे EMG मस्कुलर एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए होता है। और देयर आर मेनी मसल्स डिसऑर्डर, उसको एनालिसिस करने के लिए EMG सिग्नल लेते हैं। सो सिग्नल्स कैन और द डेटा कैन बी कैप्चर्ड थ्रू some question
जेईई वगैरह में करते हैं, जनरली साइंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी करते हैं, बट if you wanted to really work on the high dimensional data set, so that data should be generated through some automatic process, so there should be some device and all, right? So data acquisition हो गया. अब data हम जो चाहते हैं वो जरूरी है कि सारा data उसी को, या data में contain many information that is called as noise, that is unwanted information. In order to remove those data, we do the processing, pre-processing, not processing, pre-processing. अब pre-processing में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. We need to eliminate unwanted information, we need to extract the important features. Once the features are extracted, you need to select the most important features, क्योंकि हमारा सिस्टम है वो लिमिटेड थोड़ी है. ऐसा सिस्टम थोड़ी चाहते हैं कि जो हमको एक साल बाद रिजल्ट दे, नहीं चाहते. वैसे हम कैसा चाहते हैं जो कि रिजल्ट, अगर हेल्थ केयर वाला है तो चलो ठीक है, एक आध घंटे ले लेता है रिजल्ट, कुछ हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के लिए बोलते हैं 1 घंटे बाद रिजल्ट आएगा. लेकिन कुछ हमको चाहिए, इंसान मरने वाला है, हमको तो चाहिए 1-2 मिनट में रिजल्ट चाहिए, टेस्ट करो इसका क्या क्या नहीं. कई बार डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि ये डायबिटीज है और ये इसका मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा क्योंकि ये मर जाएगा. So such type of devices should be developed, right? So that is feature extraction and feature selection. After this pre-processing task, we should develop model that depends on the problem on which you are working. अब problem की बात करूँ तो machine learning में क्या problem होता है? Problem can be regression. जैसे मैं stock market forecasting बोला तो ये regression problem, right? अगर मैं बोलता हूँ कि मैं intelligent हूँ कि नहीं, there are very many criteria to judge whether the person is intelligent or not. The person is suffering from disease or not. So disease or not करने के लिए we should identify the feature. This is a binary classification problem. Classification problem बहुत हो सकता है. One more thing sir, शायद बोले थे कि multi-level data. See, there are two types of data. One is single level data and another is multi-level data. When we talk about the multi-level data, which is different than the single level data, because it is very complex than the single level data. जैसे होता है आप मोबाइल में मेल जब रिसीव करते हो, it suggests automatic reply like thanks a lot, thanks kind of thing. Means one mail is associated with many labels. That means we are classifying one received mail into many labels. That is called multi-level classification. अगर एक पर्सन को बहुत सारे डिसीज से सफर कर रहा है, तो डिसीज से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, that is single level classification. और single level में भी binary classification. You can have multi-class classification. But if person is suffering from many diseases, then if we wanted to find out what are the diseases for a particular patient, so that is known as multi-level classification. उसका feature selection, उसका classification, उसके अलग मॉडल्स है. लाइक आपको पॉपुलर एल्गोरिथम जानते हैं कि NAAC, SVM. अब आप जो मेटा ह्यूरिस्टिक में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सर्च किया जाता है, वो सपोज एक जेनेटिक एल्गोरिथम आपने नाम सुना होगा. जेनेटिक एल्गोरिथम जो बायोमेडिकल फील्ड वाले होंगे या बायो वाले ज्यादा चीजें होती है. जेनेटिक एल्गोरिथम इज वन मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक in which we are having genetic operators like selection operators, mutation operator and crossover operators. Through that, first हम क्या चाहते हैं कि हम जो population है या ये इवेंट क्यों हो रहा है, अभी जो स्टूडेंट है उनका quality को improve कर रहे हैं. That is why we are conducting such type of event. So whatever the populations we are having, we wanted to have the next population which is more efficient than us. तो वही concept यूज होता है मेटा ह्यूरिस्टिक में. फर्स्ट वी टेक द इनिशियल पॉपुलेशन, यहाँ हम लोग जो है अब उसी में हम सिलेक्शन करेंगे, म्यूटेशन परफॉर्म करेंगे, क्रॉसओवर परफॉर्म करेंगे. अब उसको हम चेंज करेंगे पॉपुलेशन. क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम सब को सर्च नहीं कर सकते, हम कुछ ही सर्च कर सकते हैं. ये इटरेटिव प्रोसेस होता है, एंड थ्रू द इटरेटिव प्रोसेस व्हाटएवर द रिजल्ट वी गॉट इन द करंट इटरेशन शुड ऑलवेज बी बेटर देन द प्रीवियस रिजल्ट. और ऐसा करते करते हमको कहीं कहीं स्टॉप करना होगा. जब हम स्टॉप करते हैं तब स्टॉप करते हैं देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंजेस इन द पॉपुलेशन. और उसी पॉपुलेशन में जो उनके सैंपल होंगे, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम. अब ये हो गया क्या मॉडल की बात. यहाँ पर हमने मॉडल डेवलप किया किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. मॉडल डेवलपमेंट के बाद एक बहुत अच्छी चीज है, मॉडल बहुत बार वर्ड यूज किया गया है इस क्लास में, एक्सपीरियंस लर्निंग. लर्निंग मतलब ये होता है एक्सपीरियंस. लाइक एक्सपीरियंस मींस व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन द पास्ट, that is the training has been given, the experience has been given. Based on that you need to predict future, or you need to predict the class level for the new samples. If I talk about classification, तो मॉडल को ट्रेनिंग देना एक बात है. लाइक हमको सब एक्सपीरियंस है किसी फील्ड, दैट इज यू हैव लर्न समथिंग. तो लर्निंग का मतलब ये नहीं होगा जो मैं पूरा बात अभी बोल रहा हूँ इसमें से पूरा जितनी बात पूरा सबको समझ में नहीं आएगा. कितना परसेंट आएगा? 70%, 80%, 90%. इसको बोलते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी और लर्निंग एक्यूरेसी. तो अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी ही 90% है, 100 क्वेश्चन पूछा आप 90 समझ पाए हो, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जब मैं कुछ अननोन क्वेश्चन दूंगा जिसका मैं सॉल्यूशन पूछूंगा तो बता पाओ या ना बता पाओ. तो 90% की ट्रेनिंग एक्यूरेसी. सिमिलरली वी विल बी हैविंग द टेस्टिंग एक्यूरेसी.
तो यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग देने का भी तरीका अलग-अलग होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, बट लेटर ऑन वी आर गोइंग टू टेस्ट अवर मॉडल कि हमारा जो मॉडल डेवलप किया है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दैट वी शुड हैव सम इवैल्यूएशन मेजर अगेन। लाइक अगर जो जानता हो मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करें, एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, अल्फा मेजर है, लाइक दैट वी आर having नाउ based on the whatever the result that we got from the model, we will take the decision. Based on the experience, we have developed the model, we have developed the trained model, and once the model is trained, we can assign some tasks to the model so that it gives the solution. And वो उसका solution हम उसको evaluate करेंगे, अगर हमारा testing data set बहुत सारा है, उसके बेसिस पे कितने में अच्छा दिया, कितने में नहीं दिया, like that. So that's all about machine learning. और machine learning जो आपका कोई भी data set हो, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, if you can generate the data for that particular problem, definitely you can apply the machine learning. But deep learning, I'm not very much confident that you can apply the deep learning, because deep learning is applicable for large data sets, and like image में ज़्यादा use होता है, text mining में ज़्यादा use होता है, क्योंकि text जो हम बात कर रहे हैं, that can be converted into the text, and that can be analyzed for a particular problem. So if you have any query regarding this, how we can use the AI or machine learning or deep learning into the experiment. Thank you. Thank you, sir. Thank you. इस पैनल की ओर से डॉक्टर अनिमान, सर, मैसेज श्रीवास्तव, मैंने की ओर से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस पैनल डिस्कशन को स्टेज करने के लिए। और ये टेक अवे पॉइंट जरूर है, हम सब ने अभी तक इतने एक्सपर्टीज के साथ सबको सुना जी का, तो ये टेक अवे पॉइंट जरूर बनता है कि इंटर्नशिप इज अ मस्ट, ऑन हैंड लर्निंग, ऑन हैंड टेक अवे। और अब आभार के लिए मैडम को एक पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए। हालांकि भूखे भजन कोई न गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है ना, चार पर भीतर तक पूजे देव की तरह सा बोला जाता है। फिर भी मेरा मन धन्यवाद देने के लिए आतुर है, तो मैं दो शब्दों में कहूंगी कि कदम कदम पर खुशी और बहार मिली, प्रिज्म कॉलेज को, पूरे इंस्टीट्यूट पूरी टीम को कदम कदम पर खुशी और बहार मिली, तमाम सभी लोगों का प्यार मिले। तो हमेशा आप इस तरीके से करते रहे आप नेक काम, जग में फैले आपका नाम, आप दिन में सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगाओ, रात में तारे की तरह टिमटिमाओ, हमेशा करते रहो नेक काम, जग में फैले आपका नाम, आपको हर दिन को विशेष और इस नजर से मिलाद की बधाइयां हो आनी, आशीर्वाद मिले बड़ों से, सहयोग मिले अपनों से, दौलत मिले रब से, शोहरत मिले जग से, यही दुआ है हम सब की दिल से, हम सब की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि तमन्नाओं से भरी हुई जिंदगी, खुशियों से भरा होकर और दामन बीच में डाला इतनी खुशियां दे आप सभी को। Thank you. Now it's time to take a break and enjoy some delicious lunch. We hope this break gives you a chance to relax and work and recharge for the session ahead. Lunch is being served at canteen.